middle voices or ways of telling something a bit differently. You have to the sort of write those characters that are known for 20-25 years, public viewing, and continue that, and then with that writing process, lots of meetings of production assistants or editors, etc., where they reviewing. Sometimes decisions can be made that act is not available, or this is not available, or we're changing the storyline, and those decisions are made by those editors and storyliners who will then write a look. I need you to do this. It's much more not writing by direction. It's a different kind of. So, you have meetings where you'll discuss ideas, and then stories will be chosen, and then play out over a year, 6 months, or whatever. But a lot of other input into that kind of story. It's not an original drama. It's a very different beast. So, and great experience. It was great. It's very, and I'll see. I'll see where I go in the future. But it's different from a completely different beast from writing your own novel, or which collaborate with people on. Maybe you'll have dramaturg or artistic director, but you have a lot of freedom in that. It's a different kind of animal, but great at the same time. So and are very attached to it. So yeah, there is slight life in a way. Realize sometimes, and that so it was good. It was really good, but in a good experience to that. Series like Midsummer Murders or more or series like that, it's much intensity out, and yes, actors do have a say in some of that, but they can be overridden. They can be like, oh, we don't want this, and there can be many reasons for there's not there's many heads involved, Yeah. So yeah, it was great, but at the same time, I kind of loved the now being able to go, right, I've got to finish these things, send them out, and then see what happens, which is what I'm really more and more. The novel, there's bits of party in there, all stuff, and I want to be able to put that out. And I'm more looking at who would I have to go sort of outside the country. There's a novel about on the shelf. Where is it? Jennifer Okumbi's Kintu, and I think he was published first from some Ugandan publisher after selling English agents and people not taking. So I'm also kind of just trying to understand the market that my work might be accepted in a novel, because I want it's not a kind of main thing. At least it's almost mainstream, and then I'm going to write a book that's very un-mainstream. It's not a hit, so there's a powerful hits out there. The brown faces and the black faces, like those, but my book is very, the novel is very specific to the community, and it looks. Yes, you've spoken about being from Small Heath, of parents who came from Kashmir. You have gone away from Birmingham and come back to Birmingham. You mentioned the writer Salman, a book of his, a book of essays. One of the essays is homelands. Where's home for you? I think that's where it is. That's where it is. I think sometimes my home is really close connection with my mum, with my mother, and with my grandmother, who's here, died a couple of years ago. Sometimes home is in that space where I feel I remember I sit with, and we connect, about their lives, because older, I've got to know, the more I'm sort of interested in. The novel is about the 3 generations of women from the Kashmiri community. So home is maybe sometimes that companionship with those, and the rest, I think, it is imagined. It's bits of everything, I suppose. It's what we
perceive something, it may not be true, you know, and that's all we have, I suppose, as children writers of or artists of children the that came before, and we just can't, you know, and that's okay. That's just, you know, exciting as well to be in that position, but it's also irritating for some because it's findable. I don't know what you're saying. I think talk about some of these things forever. Yes. Thing about bilingualism, and it makes me sad sometimes. You just move to your side. You. Sorry. Yeah, that's it. I'm conscious of how monolingual the British system is, and not lingual, but actually monolingualizing. I come across many young people who say my tongue. How good is your? My body's fine. My children don't matter. My husband is not really. So it's not being straightforward to speak that language. I tried that. I wasn't as, you know, trained enough as some of friends who tell me of stories of partners being from different places, and then one part speaking one language and the other speaking the other. With us, I've tried, so my kids understand bits of Bali, but not loads. So for years I've speak in military or Bali to them. I'm just using both because I'm still in the habit, and she has. But I've got older nephews and nieces who already imbibed everything that is take their bits. Yeah, it makes me worry, you know, and it makes me worry about the future and makes me my own shortcomings. And again, that's kind of, I'm hoping that bits, if we can keep within even storytelling or conversation, so going over and being in those rooms where everybody's speaking, the English speaker has to sort of tune in, you know, the English children, and that still happens with my family. It's not enough. It's fine. I'm practicing it less and less. You know, I'm saying it less and less, as you can, because where I'm going and what I'm doing, time often I don't have an opportunity to speak it. So it's members that I speak to, you know, and wider family members. That's all kind of related. How to keep a minority language alive and functioning, especially where much of your communication happens to be English. I remember the advice I was given when I first came by somebody who said, if you want to learn, improve a language, you have to read a lot. So I tend to read Urdu because that gives me the vocabulary for Pahari, and either speak Pahari or certainly listen to Pahari. I think we're now fortunate to have YouTube and you know, internet to do it systematically. Definitely. Yeah. I saw Gospels that I read, some Urdu poetry, which really helps me. I was learning little when I was about 10. It all stopped when there were just conflicts about, we shouldn't be teaching like this and blah blah. And then I had to just pick up myself, you know. I learned about Urdu from watching films, Bollywood films in auntie's houses. You know, we didn't have a video player, so we didn't have films, but some of my aunts had video players before us, so we'd be watching them, and I was transfixed. You know, I learned a lot of the language from just doing that. So I kind of do that with my boys. I put stuff on. I said, we're going to watch this together, you know, and they do that a lot, so they get to see things, because this is the internet generation.
the texting, TikToking generation, you know, it's so hard to keep their attention. So in those ways, I kind of do that. I didn't send them to a language classes, etc. You know, it's something that I still don't know. I think I probably will regret. I do, you know, have regrets about, but I'm trying to keep that sort of thing alive in different ways, and maybe return to. But for myself, I think that's where, you know, I try and improve what I know. But my writing is predominantly in English with, you know, dialect. Yes, yeah. Thank you for that. Is there a book you'd like to recommend to our viewers? Too many books. Where do you start? So I've got those from your bookshelf. Yeah, you know, too many books. But Arundhati Roy's collection of essays, My Suspicious Heart, poetry from places from the earth, you know, Toni Morrison, James Baldwin, Hudson, you know, all these writers who really, for me, been liberating to read. And then this poetry by Zafar. I don't know if you've heard of this. No? Yes, I have a copy. Yeah, and so just the fact that, you know, a Brahmi sort of poet, you know, and that background, that, you know, that whole, and he's He'll Speak. Yes. It speaks a lot about what we sort of talk about, but yeah, anything else. To read it? I'll read it. I haven't practiced it though. No, that's fine. It's a there nice way to end our conversation. Yeah. There is no dictionary for my father's language. His dialect, for a start, is difficult to name. Even this writer who talks it lacks the knowledge. Some say it's Pahari, he'll speak. Others, Patwari, or Pahari, Patwari. Too earthless to find books. This mountain language is a low language. Ours, no good. You should learn to getting the runaround. What it is, this talk, going back, did once have a script. Landa, queen of the Buddhists. So was that speech some kind of Dogri? Is it Kashmiri or Irpuri? The differences are lost on me. I'm told it's part way towards Punjabi, but what that tongue would call Dwada, Dad would agree, was Dusanda, yours. True, though there are many dictionaries for the tongue I speak, close by things I've lost to say, things as pulsed and present as the back of this hand, no mind stumbling towards the plane. And either way, even at the rare moment I get towards, or thank God, even getting to points, I can't put into words where I've arrived. Thank you for that. Okay. I think poetry is always meant to be read out loud, I think. Yes, I think practicing is good, but I just think that some of the conversations you're having and everything, I think it's really, you know, it's speak to that and just to that having that pride, you know, in what in the language and in expressing ourselves in it as well, you know. Yeah. Yes. So thank you, Amber, for giving us your time. Thank you. We need to conclude, and we will stay connected with you, and I'm sure we will have you back for follow-up station at some point in the future. It's great conversation. Yeah. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye.
کے صدر ساجد اعظم عابد عزیز ابتشار رشید آکے بنارس فیصل اشفاق کی رہائی کے بعد ایک بہت بڑے جلوس کی شکل میں تھوراٹ لایا گیا. یہاں ان کا پرتباک استقبال کیا گیا. عوام کا سمندر امڑایا. رہائی پر تھوراٹ شہر ناروں سے گونج اٹھا. اس موقع پر ایک بڑا استقبالیہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا آج عوام نے ثابت کیا کہ عوامی حقوق اور ظلم کے خلاف لڑنے والے ان کے ہیرو ہیں. تقسیم کشمیر کے خلاف عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے. وحدت کشمیر پر اور تقسیم کشمیر کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے چاہے جان بھی قربان کرنی پڑے. ٹوریزم اتھارٹی بجلی فری مراعات یافتہ طبقے کی خلاف ہماری جدوجہد جاری اور ساری رہے گی. عوام نے ثابت کیا کہ اگر عوام متحد ہوں دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی. حکمران بھی ہوش کے ناحل لیں. غاصب قوتوں کے اہلکار بننا چھوڑ دیں. عوام کو بنیادی حقوق دیں. ریاست کو باوقار با اختیار بنانے کے بجائے بے اختیار بنانے کے ہتھ کنڈوں سے باز رہیں ورنہ عوام کی غیظ و غضب سے نہیں بچ سکتے. تاریخ میں میر صادق اور میر جعفر کے نام سے پکارے جائیں گے. ساجد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گی. آزاد کشمیر حکومت نے تہاڑ جیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا لیکن ہم نے ان کے لیے کشمیر کو سری نگر بنا دیا اور اب عوام باشعور ہو چکی ہے. وہ اپنا حق لینا جانتی ہے اور یہ صحبتیں ظلم و بربریت ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی جس کا انجام آج تھوراٹ آولا کوٹ کی عوام نے اپنی اسیران کی رہائی پر تاریخی استقبال کر کے دے دیا. اس موقع پر پولیس حراست میں شدید تشدد کا نشانہ بننے والے عابد عزیز نے کہا میں لوگوں کا استقبال دیکھ کر اپنے زخم بھول گیا. رپورٹ تھوراٹ سے سردار عابد شفا. ہم چپ تھے کہ گلشن کا سکون برباد نہ ہو جائے. ہم چپ تھے کہ گلشن کا سکون برباد نہ ہو جائے. نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں. سامعین ذی وقار، میں آج تھوراٹ کی غیور جسور غیرت مند لوگوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک ظلم کے خلاف سیسا بلائی ہوئی دیوار بن کے اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا، اپنے حقوق کے لیے لڑے، ان سے مبارکباد کے مستحق ہیں. میں عابد عزیز صاحب اور جن جن اسیران نے جیلیں کاٹی اور جو اس تحریک میں شامل ہوئے میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح آپ اپنے یکجہتی اور ایکا کے ساتھ تو دنیا کی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ان کو اس کا ظلم کا حساب دینا پڑے گا. میں آج یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سبز علی خان ملی خان کا ہم فخر سے نام لیا کرتے تھے آج ہم محمود علی خان کا نام بھی فخر سے لیں گے. 47 میں جس طرح ہمارے لوگوں نے اپنی چمڑیاں اتاری اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے اپنے جسم پہ بلیڈوں سے کاٹ کے نمک اور مرچی برداشت کی لیکن اپنے حقوق اپنے جدوجہد سے ایک سٹیپ پیچھے نہیں ہٹا. میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم نے اصل جو بات ہے وہ ساجد اعظم کی سننی ہے، دیگر اسیران کی سننی ہے. بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ ایک برقرار رکھنا ہے لیکن ان اشعار کے ساتھ کہ اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. اٹھو لوگوں بغاوت سے قیامت کا سما کر دو. تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار جائے گی. تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی. ریاست اگر بچانی ہے تو چھین لو سیاست ان سے. ریاست اگر بچانی ہے تو چھین لو سیاست ان سے ورنہ اس ریاست کو یہ سیاست مار ڈالے گی. جب اپنا قافلہ آزما یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ جب تک یقین سے نکلے گا جہاں سے جائیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے یہاں رہنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. سب سے پہلی منظم جو تحریک جو اٹھی اور پھر یہ کہ پھر عوام نے اور پھر خصوص نوجوانوں نے اور پھر یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کون سی یہ تحریک سب اٹھی پوری آزاد کشمیر بین الاقوامی سطح پر پوری جہاں بھی دنیا کے اندر کشمیری آباد ہیں سب نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا اور میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میں برملا طور کے اوپر سردار ساجد اعظم خان کو دیتا ہوں اور سردار ایڈوکیٹ کو جو جنہوں نے بنیاد رکھی اور پھر تائیں کے مقام کے اوپر ان لوگوں نے معمولی سی بات رکھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالانکہ
हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगरचे बहुत बड़ी ज्यादती हुई एक शहीद के बेटे के साथ, मैं उस बात का बिल्कुल नहीं शायद हूँ कि उसने किसी कोई ज्यादती कोई नहीं की, ना वहां क्या हुआ था, किसी को ना गाल गलौज की, शायद कोई सख्त बात तो हर आदमी करता है जैसे के अंदर। मैं समझता हूँ कि जो आपस के साथ ज्यादती हुई ये सबसे बड़ी ज्यादती है। ये मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के लोग भी हमारे मुसलमानों के साथ नहीं करते, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि उसका वालिद शहीद था और वो शहीद का बेटा था। जब उसके साथ ये जुल्म हुआ तो फिर पूरी दुनिया में लोगों ने नाबंदू उसके हक में आवाज बुलंद की और फिर ये जो हमारा बुनियादी मुतालबात थे उनमें जान पड़ी और फिर ये देखिए जो सारी जमातों ने, सारी आजाद कश्मीर के लोगों ने, फिर इस्लामाबाद के अंदर जो APC कायम हुई वहाँ सारी जमातों को मुतफिका तौर पर वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर को इस बात पर मजबूर किया कि आपको इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि तमाम जो FIR है वो सिविल फोर्स वापस लें और जितने असीरान हैं उनको ना गैर मशरूत तौर के ऊपर रहा करें। और उस पर क्या बात थी, जो आपका इत्तेफाक, इत्तेहाद और आवाम की कुव्वत थी, तो इस बात से गवर्नमेंट के और सारे लोग मजबूर हुए। आप ये देखें पिछले दिनों हमारा एक नौजवान नार्वे से आया हुआ था, सरदार अली शाह जो हमारा ही अजीज था, उसने भी अपने यहाँ आके अपने तौर के ऊपर जहाँ सफारत खानों के अंदर पाकिस्तान की नाबंद जितनी हुक्मरान थे उनके साथ बात की, फिर आजाद कश्मीर के हुक्मरानों के साथ बात की, उसने वो अपना हिस्सा अदा किया। हर जमात ने, हर आदमी ने हिस्सा अदा किया। मैं समझता हूँ कि आप अपने इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती को कायम रखेंगे। और मैं समझता हूँ ये बात नहीं है, ये 15वीं तरमीम की रियासत है। 15वीं तरमीम के लिए न हमारी कोई जमात है, न नजरिया है, उसके लिए आपने मुद्दे और जिस तरह आपकी सब खड़े रहे उसी तरह साबित कदम रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज हुकूमत पाकिस्तान जो है आपको तक़सीम कश्मीर का कोई काम फार्मूला नहीं अदा करेगी। क्योंकि बाहर से जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पतन शेर खान से आए हुए हैं, पंद्री से आए हुए हैं, मांग से, सारे लोगों ने, ये सब लोगों का मुतफिका तौर के ऊपर ये तहरीक थी, उन सब लोगों का शुक्रिया। और बतारो हार एलियन थुरार और ताई और कांडी के लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सारे नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक असीरान भाइयों का इस्तकबाल दिलो जान से किया जा रहा है और पूरी अकीदत के साथ उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये तारीख तो उन्होंने रकम कर दी है, साबित कर दिया है कि कोई कमजोर, कोई नाअहल शख्स इस धरती को फतह नहीं कर सकता। ऐसे कमजोरों के लिए फरमाया गया है कि ये वो मिसाल है कि जैसे मेरा खालसे में किसी ने कोई कब्जे के लिए झुग्गी बनाई होती है, वहाँ मगरब के टाइम गीदड़ आकर बोलना शुरू हो जाते हैं। उस पर मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि लुटी झुग्गी वेख मोहम्मद गिदड़ा अंत मचाई। इन गिदड़ों को मैं इस मजमे और इस मकाम शहादत के मकाम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम नाअहल हुक्मरानों को हम नामंजूर करते हैं। हम यहूदियों की 75 सालों से दलाली खाने वालों के सब दलालों को नामंजूर करते हैं। हम शुहदा और गाजियों के वारिस हैं। हम किसी बेगैरत हुक्मरान को कभी तस्लीम नहीं करते। जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा होगा इस कश्मीर का सौदा कोई माई का लाल नहीं कर सकता, कोई तरमीम असेंबली में नहीं ला सकता। अगर तरमीम लाएगा तो वो मुजफ्फराबाद के 2 मील के अंदर घर किया जाएगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे आसीरान दोस्तों, भाइयों और पिंडाल में खड़े मेरे दोस्तों अजीजों, आज हमारे लिए एक खुशी का मौका है कि हमारे वो भाई जो हमारे लिए लड़ते हुए जेलों के अंदर गए और जेलों में जाकर उन्होंने मशक्कतें बर्दाश्त की, खुसूसन आबद भाई जिन्होंने इतनी मशक्कत मेरे और आपके लिए बर्दाश्त की। आज इस फोरम से मैं ऐलान करता हूँ कि आबद भाई आपने जो करना था वो कर लिया, आप पर जो किया गया था वो हो चुका है। अब उनके साथ हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम जो आपके किरदार है उनका बदला लेके रहेंगे। और
اور یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، یہ تحریک ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پہلے بیان میں اعلان کیا تھا، میں نے 2 طاقتوں کو متوجہ کیا تھا، آپ اس وقت شاید سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیوں نہیں متوجہ کر رہا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کو بتایا کہ غاصب بھی ہمارے سروں پر دوڑا آ رہا تھا، کافر بھی ہمارے سروں پر دوڑا آ رہا تھا، اسی لیے میں نے ان کو جوتے کے نوک پہ رکھا تھا۔ اور یہ تمہارے ہاتھ گندے اور یہ جو تمہاری زنجیریں ہیں، یہ ہمیں آزادی سے نہیں روکیں گی۔ یہ آزادی کا آغاز ہے، انشاءاللہ ہم آزاد ہو کر رہیں گے، ہم آزادی لے کر رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی ہمارے ہوں اور قبضے تمہارے ہوں، ڈیم ہمارے ہوں اور قبضے تمہارے ہوں، اور یہ ساری چیزیں ہماری ہوں، ان پر قبضہ تمہارا ہو اور ہم حق مانگے اور بدلے میں تم عابد صاحب جیسا کردار ہمارے ساتھ ادا کرو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آج بھی اس تحریک کے ساتھ ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، اگر ان کو کیمرے کی بات تک نہ پہنچایا گیا تو پھر انشاءاللہ ہم بھی میدان عمل میں ہیں اور رہیں گے۔ آپ بھی میدان عمل میں رہیں گے انشاءاللہ، ہم سب میدان عمل میں ہیں اور رہیں گے۔ جس طرح سے کوئی مقتل پہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس طرح سے کوئی مقتل پہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا کوئی اعتبار نہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، میں آج تھوران پہ ہمارے جو ساتھی اسیران اور گردونوا کے جتنے ساتھی رہا ہو کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر تشریف لائے ہیں، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تحریک جس کی ابتدا تھی اور ابتدا کے اندر ہی کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اس تحریک کو کچھ نقصان پہنچا ہے، یہ تحریک ابھی شروع ہے اور اس تحریک کے اندر کچھ ساتھیوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، جس کے اندر ہمارے عابد عزیز بھائی ہیں جن کا نام نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی، لیکن عابد بھائی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ تھوران کا ہر بزرگ، تھوران کا ہر نوجوان، تھوران کا ہر بچہ، تھوران کا ہماری جو خواتین ہیں، ہر آپ کے لیے جو وہ ہر موقع پر جو وہ کھڑی ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے لیے کیس لڑیں گے اور ہم جو ہے وہ پہلے اس کیس کو عدالت اور ججز جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہے، وکلا ہمارا ساتھ دے رہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے، اس کے بعد ہم لائحہ بنا کر جنہوں نے زیادتی کی ہے انشاءاللہ انہیں دین ہم ان سے قصاص لیں گے۔ دوسری بات، آپ جی فیصلہ کریں، یہ میرا ایک نوجوان یہاں کھڑا ہے، یہ اندروڈ کا رہنے والا نوجوان ہے، یہ بھی اسیر اور قید لے کر آیا ہے، یونیورسٹی کا یہ طالب علم ہے میرا یہ عزیز۔ آپ پتہ ہے کہ اس کے خلاف FIR کاٹی گئی اور وہاں کچھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ان نوجوانوں کو جو یونیورسٹی اور کالج کے اندر پڑھتے ہیں ان کے خلاف FIR کاٹے تاکہ ان کا جو ہے وہ کہیں باہر نہ جا سکے، ان کے جو وہ کردار کو جو ہم خراب کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کوئی دہشت گرد نہیں ہے، تھوران کے اندر رہنے والے کوئی دہشت گرد نہیں ہے، البتہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور ہم حق لے کر رہیں گے۔ ایک بات میں آپ سے گزارش کروں گا، انتظامیہ کے لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے، وہ بھی لکھیں کہ یہ جو نفرت ایک عابد عزیز کے اوپر آپ نے ظلم و زیادتی کر کے، میں IG آزاد کشمیر سے ڈپٹی کمشنر اور دوسرے افسران سے اور ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جو آپ نے زیادتی کی ہے، آپ پورے آزاد کشمیر کے اندر اب کیمپ لگا کر لوگوں کے اندر اپنی محبت پیدا کرے تو محبت نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی ہے، یہ پولیس اور یہ انتظامیہ یہ ہمارے لیے تھی، اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے جسم کاٹ کر ان کے اندر مرچی اور جو وہ نمک جو وہ ڈالا جائے۔ اس لیے انتظامیہ کو میں ایک بات پھر کہتا ہوں، آپ اپنا کام کریں اور آج سے آگے نہ جائیں۔ پہلے گہرائیوں سے اپنے بزرگوں کا، اپنے نوجوانوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کا، اپنی تاجر برادری کا، تاجر تنظیم کا اور بالخصوص اپنی ٹرانسپورٹ یونین کا اور پہیے سے منسلک محنت کشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، آپ کی محبتیں، آپ کا اخلاص اور آپ کی پختہ المثال یکجہتی یہ محض
हमारी रिहाई की बात नहीं थी, बल्कि आपने पूरी दुनिया के अंदर अपनी यकजहती का लोहा मनवाया। आज पूरी दुनिया आप ये समझे कि महज किसी एक मखसूस मसले के ऊपर हम एहतजाज कर रहे थे और हमें गिरफ्तार किया गया। उसके रिएक्शन में आप पूरी ताकत के साथ रियासती जबर के आगे शीशा पलाई हुई दीवार बनकर बाहर निकले। ये महज एक मसला नहीं था, बल्कि आपके मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए तकसीम किया जा रहा था। आपकी सालमियत को, आपके तशख़्ख़ुस को, आपके इज्जत और वक़ार को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा रहा था। और आपकी जवाब मर्दी ने, आपकी इस कुर्बानी ने इस मुल्क को बचाया है। और ये दुश्मन कुफ्ते मुस्तकबिल में भी ऐसे हमले हम पे करेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अगर ये यकजहती कायम और दायम रहेगी तो हमारा मुल्क तकसीम नहीं हो सकता, बल्कि हमारी आज़ादी का सूरज इंशाअल्लाह बहुत जल्द तलू होने वाला है। आज हमारी जंग बहुत बड़े पैमाने पे चली गई, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अजियत आपने बर्दाश्त की, जो अजियत हमारे ताजरों ने बर्दाश्त की, जो ट्रांसपोर्टरों ने बर्दाश्त की, जो हमारे अंदरोट के लोगों को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया और उनको हरासा किया गया, उनको टार्चर किया गया, रब्बे जुल जलाल की अजमतों की कसम एक लम्हे का इनसे बदला लेंगे। और जिन लोगों ने ये जंग इस रियासत को बचाने की जंग थी, हम कहते थे कि थोराड़ का कोई एहलकार या इस कश्मीर का जो वर्दी वाला एहलकार है वो मुजफ्फराबाद में आईजी बनकर बैठे, ये थी हमारी जंग। हम इनके लिए जंग लड़ रहे थे, इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर तशद्दुद किया। ये मीर जाफर और मीर सादिक नहीं बचेंगे, इनका पूरी रियासत के अंदर, रियासत के कोने कोने में इनका पीछा करेंगे, इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करेंगे, इनके खिलाफ कानूनी, इखलाकी, सियासी और स्वार्थी जंग जारी और सारी रखेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, ये कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं कि हम 25 दिन जेल के अंदर चले गए। आप अब्द अजीज के उस दिन के लम्हात को आप देख लेते तो शायद कहीं लोग अपनी जिंदगी बरकरार नहीं रख सकते थे, लेकिन जब हमारा मुल्क बचा, जब 15वीं तरमीम जो ये नुसरबाज बंगुई का आके बैठा हुआ मुल्क बेचने के लिए इसके मुंह पे मारी गई, जब टूरिज्म एक्ट का खात्मा हुआ, जब वो चिट्ठी उसी स्पीड के साथ आपकी ताकत से दरियाई जेलम से उस पार हुई, कोआला पुल क्रॉस किया, उस चिट्ठी ने, जो चिट्ठी इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद के इन बेगरतू को लिखी गई कि कश्मीर का फैसला हो चुका है, अब इधर हम उधर मोदी, तो वो चिट्ठी आपकी ताकत से उस तरफ चली गई। आपने अपनी तहरीक और तारीख को जिंदा रखा। उस वक्त हम तमाम तशद्दुद भूल गए, उस वक्त हम जेल की अजियतों को भूल गए, जो जुल्म हम पे किया गया गिरफ्तारी के दौरान, फिर मेरे भाई की सूरत में टार्चर किया गया सिर्फ इसलिए कि ये लोग बैक फुट पे आ जाएं, ये लोग दब जाएं। लेकिन जिस ताकत के साथ आप बाहर निकले, आज पूरी रियासत ने एड़ियां रगड़ने पे मजबूर हुई, और ये हुक्मरान, इनको आपने नाक की लकीरें खिंचवाई हैं, और आज पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर, गलगित बल्तिस्तान से लोगों ने हमसे राब्ता किया, श्रीनगर से लोगों ने हमसे राब्ता किया, और आजाद कश्मीर तो आपने अपनी आंखों से देखा कि आपकी इस जदोजहद पे किस तरह लोग आप पे ऊपर फख्र और नाज करते हैं। सामीन जी वकार, एक तारीख मेरे और आपके असलाफ ने 1832 में रकब की, और आपके असलाफ ने 1832 में रकब, एक तारीख मेरे और आपके असलाफ ने 1947 में रकब की, और एक तारीख आज आपने रकब की है, जिसे दुनिया की तारीख में और आपकी आने वाली नस्ल
बड़े फख्र से, बड़े नाज से बयान करेगी कि हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने दिल्ली इस्लामाबाद के गठजोड़ को इस ऐद के अंदर मुस्तरद किया, नाकाम किया। आज़िज़ अवाम, अपने हुकूक के लिए अब बात बहुत आगे चली गई है। अब बात टूटी खम्बे पैप सड़कों से बहुत आगे चली गई है। अब हमारी बड़ी जंग है, ये जंग हमने मुनज़्ज़म होके लड़नी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन हुक्मरानों ने, जो हुक्मरान मेरे और आपके टैक्सों पे पलते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स मेरे नौजवान अपना जिस्मों का ईंधन कुर्बान करके जिनके पेट पलते हैं, वो हमें काट रहे हैं और काटने के क्या है, उनके गलों में पटे जरूर डाले जाएंगे। इन लुटेरों को, इन जमीन फरोशों को और इन वतन फरोशों को, इनके लिए कश्मीर की सरजमीन को हम तंग कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ, किसी वजीर मशीर का बेटा, कोई रिश्तेदार सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में हमें मिला तो फिर उसको निशाना इबरत बना देंगे और हमारे टैक्सों पे पलने वाले हम पे भोगना शुरू हो जाए, हमारे चादर और चार दीवारी के गर्दिश को पामाल करना शुरू कर दें, हम पे लश्कर कशी करें और फिर वो इस रियासत के अंदर आराम से इक़्तिदार के मजे लूटें, ये मुमकिन नहीं रहेगा। हम कल भी इनके खिलाफ लड़े हैं, हम आज भी इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम हमेशा इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैं आलमी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि आलमी दुनिया रियासत के इस तरफ और उस तरफ होने वाले जुल्म का नोटिस ले। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पासपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, ये मुद्दा का हमें यूएनओ का पासपोर्ट दिया जाए। अब हम अपनी जंग स्वार्थी महाज पे, सियासी महाज पे, अस्करी महाज पे हम ये जंग खुद लड़ेंगे। हम इस नाम नेहाद वकील को मुस्तरद करते हैं, ये जंग हम लड़ेंगे। आज हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि दुनिया के कोने कोने में कश्मीरी मौजूद है और उसकी आवाज इस्लामाबाद के हुक्मरानों से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर आवाज है। हमें किसी इमरान खान, किसी नवाज शरीफ, किसी जरदारी की जरूरत नहीं है। आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे से लीडर पैदा होगा, आजाद कश्मीर के चप्पे चप्पे से कश्मीर का महाफज पैदा होगा। हम एक कौम बन के अपनी आजादी की जंग लड़ेंगे। यहाँ हमारी मर्जी के बगैर आज के बाद ना कोई डैम बनेगा। अब ये हमारे साथ मायदे करेंगे, अब हमारी बिजली का हिसाब दिया जाएगा, अब हमारे पानियों का हिसाब लिया जाएगा इनसे, और हमारे टैक्सों पे ये जो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, ये जो इदारों के अंदर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, इनको अब हिसाब देना पड़ेगा। 18 करोड़ की करप्शन पे आवाज उठाने के खिलाफ हम पे लश्कर कशी की गई। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा। मैं आपको इनके मकरू चेहरे दिखाऊंगा कि 18 करोड़ का डाका थोराड़ के लोगों के हुकूक पे डाला गया और उनको दबाने के लिए मुझे 25 दिन गिरफ्तार रखा गया। कहा गया ये 18 करोड़ हम इनकी खलक से खींच के बाहर निकालेंगे। यहाँ बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ बैठे हुए मुलाजमीन कान खोल के सुन लें, जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते, हमें इन बाजारों में, चौकों और चौराहों में कोई अफसरशाही करते हुए नजर आया तो इनकी टांगे तोड़ के इनको भेजेंगे। आज़िज़ अवाम, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा नारा इसके बाद लगाया तो मैं चला जाऊंगा। ये पूरी ये ज़हनी गुलामी है, इस गुलामी से हमने बाहर निकला है। हमारा नारा हो अवाम जिंदाबाद, अवाम एक ताकत है, और अवाम का नारा हमने लगाना है, कौमी यकजहती का नारा लगाना है। आखिर में मैं नावला कोर्ट के अंदर पीपल राइट्स फोरम जो बना, तमाम सियासी जमातों का, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम अवामी कमेटीज का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी तहरीक का साथ दिया और हम सब लोग
पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग कामयाब हुए। मैं ट्रांसपोर्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने अंजुमन ताजरान के जितने भी अहदेदारान हैं, ज़ुबैर सदीक साहब, ताहिर अमीन साहब, उनका और उनकी पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आखिर में अहलियान नवाब जस्सी खान, दिगड़ू, कांचरी, मंग, पत्थर शेर खान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब हम पे मुश्किल घड़ी आई तो पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ वो निकले और हमारे साथ खड़े हुए। हमने इस यकजहती को बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। और आखिर में ये वादा है हमारा कि 2023-24 कश्मीर की आज़ादी का साल है। मैं उनके हौसलों को, उनकी बहादुरी को, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ और साथ ही जो आबद अजीज पर इंतजामिया की तरफ से तशद्दुद किया गया, मैं इंतजामिया के इस अमल की भरपूर अल्फाज में मज़ामत करता हूँ और साथ ही हुकूमत वक्त को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि जिन एहलकारों ने हमारे भाई आबद अजीज पर तशद्दुद किया है उनके खिलाफ फिलफौर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें डिसमिस किया जाए, वरना हम अवाम खुद इसका हिसाब लेना बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर हुकूमत ने संजीदगी से इस मामले का नोटिस लेते हुए उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो एक हफ्ते के अंदर हम फिर इन्हीं रोडों पे होंगे। हम फिर अवाम को लेके अपने भाई के इंसाफ के लिए फिर रोडों पे निकलेंगे और उस वक्त तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक आबद अजीज के तमाम जख्मों का हम बदला नहीं ले जाते। आखिर में बात मुख्तसर करते हुए कि ये अवामी हकूक की जंग है, ये लंबी तवील जंग है, ये 2 दिनों में खत्म होने वाली जंग नहीं है। हुकूमत ने 2 माह का टाइम दिया है। अगर 2 माह के अंदर हमारे मुतालबात हल न हुए तो हम फिर अवाम को मुनज़्ज़म करते हुए फिर भरपूर क़ुव्वत के साथ अवाम को लेके निकलेंगे और अपने मुतालबात के हल तक अपनी जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए जो दोस्त हमारे साथ इस तहरीक में हमारे साथ जुड़े रहे, ट्रांसपोर्टर हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए, बिलखुसूस नौजवानों का इस तहरीक में कलीदी किरदार रहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए, अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा कि कुंज भी रावा ओ खियासन कुंज गल बिच गमदा तोक बिसी कुंज शहर के लोग भी जालम सन कुंज सनु मरंदा शोक बिसी। बहुत शुक्रिया। इलम जदोजहद फतह। जिला मीरपुर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात नहायत अकीदत और एहतराम से मनाएगी, भरपूर जोश जज्बा और मिली बेदारी के साथ मनाएगी। जश्न आज़ादी के सिलसिला में परचम कुशाई की सबसे बड़ी तकरीब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सब्जाजार में मुनक्किद हुई। ठीक 8:58 पर सायरन बजाया गया। 1 मिनट की खामोशी के बाद कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत अली, DIG डॉक्टर खालिद महमूद चौहान, डिप्टी कमिश्नर चौधरी अमजद इकबाल और SSP राजा इरफान सलीम ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के परचमों की परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास किया। परचम कुशाई की तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासर रियाज, DSP नदीम आरिफ, सदर बार इम्तियाज अहमद राजा, DHO डॉक्टर फिदा हुसैन राजा, MS डॉक्टर आमिर अजीज, चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी अरशद महमूद, साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी अमजद इकबाल, DFO राजा आबिद हुसैन, FO राजा इमरान शफी, तहसीलदार सैयद कलीम बादशाह, एक्सिन बल्दिया इम्तियाज हुसैन भट्ट, अंजुमन ताजरान के सुहील शुजा मुजाहिद, राजा खालिद खान, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मोहम्मद जावेद मलिक शहरी, दफा राजा मोहम्मद इश्तियाक
ریاست ریسکیو 1122 کے ملازمین، تنظیموں کے رہنما سید کیسر شراز کاظمی، ملک طارق محمود چودھری، بشارت راجہ، راشد اقبال بزمی، علاوہ سرکاری محکموں کے افسران و اہلکاران، صحافیوں، انجمن تاجران، ٹیچروں، بچوں، سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ محرم اور حرام کے سلسلے میں مرکزی امام بارگاہ خانگاہ سیدہ بوکڑا منڈول میں آج ماتمی جلوس نکالا جائے گا۔ میں مجھ کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ ایسے ہی گھر میں رہتی تھی مریم، ایک لمحے میں مجھ کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ وہ ایسے ہی گھر میں رہتی تھی مریم، ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی رکھتا ہے اور پاک رتبہ ہوتا ہے اور اسی کو مومن کہتے ہیں اور رسول خدا کہتے ہیں۔ تو اس سے محبت جو رکھے گا وہی مومن ہوگا، جو تو اس سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ نہیں نہیں جینے کے بدلے چھوڑو شہادت، نہیں نہیں تم کون ہو نقاب رخوں سے ہٹاؤں گا، میں کون ہوں یہ لوگ کے سنا پر بتاؤں گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ آ کر در خیام پہ زینب کو دی صدا،
اے میری غریب بہن قریب لے آخری سلام حسین غریب کا. مقصد ہے میرا کیا یہ سبق تجھ کو یاد ہے, میری شریک کار مجھے اعتماد ہے. میں رہوں یا نہ رہوں, میں رہوں یا نہ رہوں, میرا اسلام رہے گا, میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو ان کا مقصد تھا, حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو تکمیل کیسے دیا, اور قوم نے اور عاشقان امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد سے کیا درس حاصل کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصد امام حسین نے جو اپنے خطبے میں مدینہ سے چلے تو بیان کیا تھا کہ میں کسی جنگ کی خاطر یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہا ہوں, صرف ایک مقصد ہے کہ میرے جد رسول اللہ کی سیرت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور ان کے دین کو چھوڑا جا رہا ہے. کربلا کی شہادتوں کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبوں سے درس توحید دیا, درس رسالت دیا. اصل میں قیام امام حسین ظلم کے خلاف تھا. سب سے پہلے تو ہم JKTV کے آپ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. ہمارے SSP صاحب کی نگرانی میں DSP صاحب اور AC صاحب یہاں پہ موقع پہ موجود رہے. 124 بندے ہم نے ٹریفک اور پولیس کے ریزرو اور ڈسٹرکٹ پولیس کے یہاں پہ تعینات کیے تھے, اور جلوس کے آگے پیچھے اور سائڈوں پہ فل پروف سیکورٹی مہیا کی. انشاءاللہ اب بھی کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے سول ڈیفنس کے اور باقی ادارے بھی اپنے اس ڈیوٹی پہ متحرک رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس وقت تک تو پرامن خیریت سے گزرا ہے, تو باقی بھی شام تک ہم انشاءاللہ پرامن رہیں گے. تو آپ نے آج ٹریفک کا جو پلان تھا, آپ نے ٹریفک والے جو آفیسر صاحب سے مل کر کیسے تشکیل دیا؟ جی, ہم نے پہلے تو یہاں پہ روڈ جب تک جلوس سڑک پہ نہیں آیا تو روڈ کو ہم نے یہاں پہ ڈسٹرب نہیں کیا ہے ٹریفک, لیکن جب سے یہ پروگرام ابھی سڑک پہ جلوس برآمد ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے بائی پاس پہ ڈائیورٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تھوڑے ٹائم بعد ہم انہیں واپس اسی روٹ پہ گاڑیوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ. مرکزی امام بارگاہ خانگاہ سیدہ بوکڑا شریف کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو رہا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں عاشقان امام حسین علیہ السلام ماتم, نواح خوانی, زنجیر زانی اور ذاکرین اور علماء مصائب اور شان اہل بیت بیان کر رہے تھے. بہترین انداز سے کام بھی کر سکتے ہیں. میری مراد راجہ جلال فقیر, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا بہتر طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درنگا کشمیر بازار میں آج کے اس احتجاج, اس ہڑتال کا میرے خیال سے پس منظر اسیران پنچ جو کہ گزشتہ 10 دن سے میرے خیال سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان پر بدترین ریاستی تشدد کیا جا رہا ہے, جس میں لیاقت ایاز صاحب ہیں, NSF کے دیگر نوجوانان ہیں, ان کو بری طرح سے ان پر لاٹیاں برسائی جا رہی ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. جموں کشمیر لبریشن موومنٹ اور میں بذات خود اس بات کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں, اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ نیشنلسٹ کیا کر سکتے ہیں, پونچھ سے نکلنے والی آواز آج اس نام نیاز آزاد کشمیر کے ذرے ذرے میں پھیل چکی ہے, اور پاکستان کو اور اسلام آباد کو یہ سوچنے میں مجبور کر دیا گیا ہے کہ یہ وطن ہمارا ہے, اس کا فیصلہ ہم کریں گے, اس کا راز ہم کریں گے, اور اس کے مستقبل کا فیصلہ ہم کریں گے. میرے حق میں تمہارے یہ ناچ گانے, یہ ترانے, یہ پرچم مسترد, میں تمہارے خلاف بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. ہم آج پاکستان کے خلاف, ہندوستان کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں.
और सिर्फ एक बात जानते हैं, हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तियारी, हमारे वसाइल, हमारे हुकूक हमारी दहलीज पर दिए जाएं। हम 47 के उस हालात को मुस्तरद करते हैं, हम 14 अगस्त को मुस्तरद करते हैं जब पाकिस्तान बना और इस रियासत को तकसीम कर दिया गया। 15 अगस्त को मुस्तरद करते हैं और ब्लैक डे के तौर पर बनाएंगे जब हिंदुस्तान बना और रियासत जम्मू कश्मीर को 85,806 मरबा मील रियासत को तकसीम कर दिया गया और इसके जो वसाइल थे उनका डाका डाला गया, इसके पत्थरों को, इसकी बिजली को, इसके पानी को, इसके जितने भी वसाइल थे उनको मिलकर लूटा गया। हम नहीं जानते कि इन्होंने जाकर लंदन में इन्होंने जाकर ट्रंप के सामने क्या किया। हम नहीं जानते कि इन्होंने मोदी के साथ क्या सौदा किया और हम नहीं जानते कि भुट्टो ने क्या किया। हम इन सब का हाल जानते हैं। मैं क्लियर बात करता हूँ, किसी को बुरी लगती है 100 बार लगे, हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, ये वतन हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे, इस पर हुकूमत हम करेंगे। और फिर इसी तरह बिजली के बिल्लात पर बेतहाशा टैक्सी लगाए गए हैं और ये हमारी गुलामी के इससे बेहतरीन मिसाल क्या होगी कि 4,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये खिता 300-350 मेगावाट बिजली के लिए तरस रहा है और फिर जो बिजली दी जाती है उस पर भी 4 गुना ज्यादा टैक्सी लगाए जाते हैं। और गर्दी बाग वालों जफराबाद में मैं ये तकसीम नहीं करना चाहता, लेकिन ये सोच लो कि हमारी कोई आवाज नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है जो हमारे हक की बात कर सके, क्योंकि बाग जो जिस बिल की जफराबाद में जिस पर टैक्सेस लगाए गए हैं उसकी अगर कीमत 350 है तो बाग में उसकी कीमत 750 है। ये ज्यादा आखिर क्यों? ये तकसीम हमारे अंदर क्यों पैदा की जा रही है? ये पार्टियों में हमें तकसीम कर रहे हैं, फिरकों में हमें तकसीम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम अपनी आज़ादी की बात ना करें, हम अपनी खुद मुख्तियारी की बात ना करें। हम दिल्ली के, हम इस्लामाबाद के आला हुकाम को बताना चाहते हैं ये वतन हमारा है, जिस पर हुकूमत हम करेंगे, इस पर राज हम करेंगे। और फिर एक बात और बता दूं कि मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठा हुआ हर शख्स कयूम खान है, हर शख्स इब्राहिम खान है। जैसे उन्होंने 47 में तकसीम की वो एक बार फिर तकसीम करेंगे। किसी भी गैर रियासती पार्टी से मुंसलिक शख्स इस्लामी में असेंबली में बैठे शख्स को उस पर भरोसा न करो, क्योंकि ये तुम्हें तकसीम करना चाहते हैं। इनकी एक ही हवस है और वह हवस इनका इक़्तिदार है, इनकी कुर्सी है। ये तख्ते गाजियाबाद हो सकता है, तख्ते मुजफ्फराबाद हो सकता है, इन सब को मुस्तरद करो। गलगित से जम्मू हम सिर्फ एक बात जानते हैं, ये वतन हमारा है, इस पर हुकूमत हम करेंगे। आश्चर्य के मुकाम पर तमाम लोगों ने ये हड़ताल की। इस हड़ताल का मकसद जिनके पास है सारे लोग वीडियो भी बनाए, तस्वीर भी बनाए, असीराने पुंछ की रहाई और बिजली के बिल्लात पर बेतहाशा टैक्सीज और इसी तरह टैक्सी यूनियन और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उन पर, उनकी गाड़ियों पर बेतहाशा टैक्सीज लगाए जा रहे हैं। इस सारे प्रोपेगेंडे के खिलाफ आज जो है वो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया था, क्योंकि अब उसको यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है और दिलकोट मुंतकिल किया जा रहा है। और फिर हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि वो जो लायामल देंगे, हम फिर उसके बाद जो है यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने सुबह सवेरे आकर यहाँ के रोड बंद की, मैं आपको शुभ सलाम पेश करता हूँ। और आपने साबित किया कि आप हकीकी मानों में इस रियासत के वारिस हो, आप हकीकी मानों में रियासत के लिए तड़प रखते हो, आप रियासत की आज़ादी और खुद मुख्तियारी और बहाली चाहते हो। और इसी तरह जो भी इधर जो लोग मुसाफिर हैं उनको खासी तकलीफ हुई है, हम उससे माजरत चाहते हैं। हमारा ज़ाती किसी से कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, हमारा ज़ाती कोई, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। हमारा सिर्फ मकसद सिर्फ एक है, ये वतन हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे, इस पर हुकूमत हम करेंगे, इस पर राज हम करेंगे। और एक बात और बताता चलूँ कि मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठा हुआ हर शख्स कयूम खान और इब्राहिम खान है। जैसे उन्होंने कराची माइजा किया, जैसे उन्होंने एक्ट 74 नाफज किया, हम उन सारे एक्ट 74 को जूती की नोक पर रखते हैं, हम कराची माइजे को जूती की नोक पर रखते हैं। अगर आप 15 तरमीम के खिलाफ है तो फिर आपको एक्ट 74 के खिलाफ भी होना पड़ेगा। अगर आप 15 तरमीम के खिलाफ है तो फिर आपको कराची माइजे के खिलाफ भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक खिते को, मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान को हमसे जुदा करके पाकिस्तान का सूबा बनाया गया। और उस करारदाद पर हमारे नौसरबाजों, हमारे वजीफा खोरों और जिनके 25-25 रुपए उस वक्त जो है वो वजीफे लगे, तो
उन्होंने इस गलगित बल्तिस्तान का सौदा किया और कहा कि जी गलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। हम तुम्हारी इस बात को जूती की नोक पर रखते हैं। हम इस हालाती को अगर के पाकिस्तान का ये मुनाफिराना चेहरा इसी तरह रहा जूती की नोक पर रखेंगे। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, हमारी आज़ादी, हमारी खुद मुख्तियारी, हमारी जद्दोजहद, हमारे हुकूक, हमारे वसाइल हमारी दहलीज पर हमें दिए जाए, दीगर कोई बात नहीं है। और जितने भी लोग हैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और हम असीरान पुंछ पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको ब्लेड के साथ चीरे लगाकर उनकी जख्मों पर जो है वो नमक छिड़का गया। और यहाँ के कुछ नौसरबाद दंदियां खुली कहते हैं कि जी जो है वो ये जो इधर पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। और इससे बुरा हाल क्या होगा, 4000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये खिता 300 मेगावाट बिजली के लिए तरस रहा है। और फिर जो बिजली मिलती है उस पर 4 गुना फ्यूल एडजस्टमेंट और पता नहीं कौन कौन से नाम पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। हम इन टैक्सेस को जूती की नोक पर रखते हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं, ये वतन हमारा है, इसके वसाइल, इस पर हक मलकियत, हक हकमियत हमारा है। मैं नारा लगाऊंगा, तमाम लोग जवाब दें, राहत करो, राहत करो, हसीराने पूछ को राहत करो, राहत करो, हसीराने पूछ को राहत करो। हम क्या चाहते है, हक हमारा, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी इस पार भी लेंगे, आजादी उस पार भी लेंगे, वादा हमारा, हम लेकर रहेंगे, आजादी आजवा सुन ले, आजादी अब्बास सुन ले, आजादी मोदी सुन ले, होले होले, आजादी धीरे धीरे, आजादी ललकार के बोलो, आजादी वो भी सुन ले, आजादी वो भी सुन ले, आजादी क्या चाहते हैं, आजादी होले होले, हक हमारा, रहा करो, रहा करो, रहा करो। भिम्बर के नवाई इलाके बिडिंग में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, नासिर जमान नामी शख्स कत्ल। मामला रास्ता के तनाजा पर पेश आया। भिम्बर के इलाके बिडिंग में मुबैना तौर पर वाजिद नामी शख्स ने फायरिंग करके नासिर जमान वल्द मोहम्मद जमान को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भिम्बर लाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। वाकया की इतला मिलते ही SSP भिम्बर चौधरी जुल्करनैन सरफराज, DSP भिम्बर चौधरी मोहम्मद आमीन, SHO CT चौधरी सिकंदर आजम नफरी के हमरा Welcome everyone to a new episode of Diaspora Voices, where we normally interview members of the Kashmiri diaspora settled somewhere in the world away from Kashmir. Today our program is slightly different in that we're interviewing someone whose work has benefited the diaspora, our community, especially our language. So it's my pleasure to welcome Professor Lena Robertson. We're going to hear about her work, especially in relation to the Pahari language. So welcome, Professor. Thank you. Very pleased to be here. Very, very pleased. Yeah, good, good. So what are you doing currently? So currently I am working in a university, London University. I've been there rather a long time. And at the moment I work with research students. So that is students who are preparing their doctoral studies. So that'll be PhDs and professional doctorates. And it's very, very fulfilling and interesting and enjoyable. I think this will be how I will end my career, doing this kind of work. It wasn't how I started. Okay, okay. Do you want to say how you started with your academic life? With pleasure, pleasure. I was recently in a group of women who were thinking, I think this is quite a common question that is asked today.
that if you were a superhero, what would your power be? What would be your superpower? And all sorts of colleagues and friends were suggesting all sorts of things. And many were saying, oh, I don't know what my superpower would be. And I said, I don't need to hesitate with this answer, because I know I am a teacher. Okay. So I started as a primary school teacher, teaching the youngest of children, sometimes nursery school children and sometimes 5 and 6 year olds. I think my heart is with the 5-year-olds, the ones who are just starting school and beginning to navigate that new cultural place, new social space where slightly different rules operate to the ones from home. And that's true to all children. So that's where I started. And then, and I tell you about the schools I taught maybe a bit later, and then moved into, at some point, universities. And for a long time, I worked with teacher training programs. And worked with early years teachers and primary school teachers who were getting ready to get the QTS, qualified teacher status. And then hoping to go into school. And that, again, was a very, very satisfying bit of my work. So that's who I am, teacher through. Okay. Good. So from teaching, you moved into academia through teacher training? Say that again. From teaching, I moved into academia. Through teacher training? Yes. I first became a lecturer in a different university, and I supported teacher training programs. I was their English lecturer, which was quite good and interesting, since I am not English. So I was born in Finland, and that's where I went to school. And when I was 20, I decided to come to England after my school and my equivalent of A-levels. And I wasn't too sure what to do with my life. I knew that I wanted to go to university, but wasn't quite sure what I would like to study. So I thought, right, I'm coming to England as an au pair. And I worked in a family in London. And it was fascinating, again, very interesting experience to come and live in somebody else's house. And this was a Jewish family in London. And they weren't very religious, but they had maintained many of their Sabbath rituals. And it was interesting to learn about that. And then very, very quickly, having arrived in London, I met my first husband, and then decided to stay. And we had children. I had children very early, very happy years, had 2 boys. And I was a stay-at-home mum with them. So was this the first time you left Finland? Correct. Yes. And I traveled a little bit. I was very interested in languages. I thought maybe I'd sort of travel around the world and practice more languages, and then maybe at some point go back to Finland. But the fate decided differently, and I've never regretted it. London is a fascinating place, isn't it? All big cities in England, I think, they are sort of so full of color and cultures and different people that arriving from a different place was relatively easy to settle. London, I felt, was very welcoming. We had Italian neighbors. We had neighbors from Nigeria. We had neighbors from sort of Southern Europe, Greece, and various places, and Ireland too, and Scottish. So it was very, very multilingual, and it was very, very sort of rich in ethnicities and faiths. So really good place to be. And of course, you will have been bilingual already, probably multilingual.
and you were then exposed to all of these different cultures and languages. Is that what got you into researching bilingualism, multilingualism? Kind of. I mean, Finland invests a lot in language education. So yes, I had studied various different languages, and English was my favorite. I also studied French and German, and Swedish is our second national language. But I really was keen to, I think children or youngsters of my generation, we were drawn to film and pop music, and England and America was the place to be. So what got me into bilingualism and multilingualism, I need to tell you how I kind of woke up to certain factors. So I had been in England about 4 years when my first son was born, and I was in the maternity hospital in London, and he'd just been born, and the sort of everything got a bit quiet. My son's father went back home, and there was nobody in the room, and there was I with my baby. And I started talking to him. We had made a family decision that I would always speak to him in Finnish, and my partner would speak in English. Right. And there I was at the maternity hospital talking to my first baby in Finnish. Okay. And the midwife pops back into the room just to check that I'm okay, hears me talking in Finnish, and said, right. Oh no, Mrs. Robertson, don't do that. Don't do that. You are confusing your child. Don't do that. Okay. Stop. Yeah. Stop. And I was taken back, and I was a young girl, didn't have the confidence I have today. So I didn't say, I certainly didn't challenge much older woman and my midwife. I kind of felt my life depended on her a bit now, physical bits anyway. Yeah. And she went away, but I stayed obviously in the room with my baby and thought, well, I don't think so. I don't think like that. So I carried on talking to my son in Finnish, but whispering. I wasn't confident enough to say it out loud. Sure. By the time my second son was born, I didn't give a toss what other people thought. Yes. I'd seen by then, my older one was 1.5 years, and I knew how brilliantly he coped with mum speaking Finnish and dad speaking English, and how the shared language at home was English, and how he just, it was really comfortably switched from one language to another, depending who he spoke to. So that's what first got me interested in these issues about multilingualism and bilingualism, and how hard it was to find a voice about talking about these matters. I felt that people in authority said something different to that I didn't accept, I didn't believe, but who nevertheless had power over me. Yes. So I guess it's a case of, because you knew about bilingualism, and in your case multilingualism, because you spoke Finnish, Swedish, French, German, and now English. That's a lot of languages. Yeah, I mean, you're being you'll be very polite. I had studied them, and French was okay, and Swedish not too bad, but by now, I've forgotten them all. So I would say that I am bilingual. I'm no longer multilingual because I haven't had the opportunity to practice those languages regularly. I suppose if I moved to one of those places, it would come back, but I wasn't then, and certainly am not now, very skilled in the other languages. Yes,
in my experience, bilingualism or languages is something, if you don't use it, you lose it. And I didn't learn as many languages as yourself, but for 2 years, I was exposed to English, Farsi, Arabic, Urdu, while speaking Pahari. And English, obviously, I built upon when I arrived in England. Arabic and Farsi, I have lost. Occasionally, there are words that are similar in Urdu, but most of the time, you know, I've lost those languages. But what it did do for me, and I'm sure it did for you, is very early on, it, you know, as a first year in secondary school, at the age of 10, it told me that there were different ways of speaking and different ways of reading. In other words, there were different languages in the world. And I think that is critical. Do you find that in terms of our attitudes to learning languages? Absolutely. I think we need to really accept that the world is multilingual. The majority of populations always, I think, have spoken more than one language. That is certainly true today, even if it hasn't always been the case with all remote communities. But so we are surrounded by people who's, particularly now in urban spaces and in most sort of Western countries and places, and around the world too. I mean, Pakistan is a really good example of that, as are many others, where languages have existed coinciding for generations. And yeah, it's normal, it's everyday, it's not exotic, it's not something to be constantly celebrated. It's just what we do as human beings. I'm all about also sort of thinking about languages and celebrating the variety of ways that we can express things. But that's a different thing to celebrating somebody who speaks many languages, having been identified then, as often happens in England, that they are kind of exotic and special because they speak more than one language. So London particularly, I think, is an interesting place because, of course, it's the most multilingual in the globe at the moment. Today, there are at least 350 languages spoken in primary schools, probably growing as we speak, the number of them. So it's an aspect of human life. Yes. But within that, would you say that there is a hierarchy of languages or hierarchy of bilingualisms in the plural? Absolutely. Absolutely. Yes. So when I came to England, Finland was not in European Union. Right. And very little was known about Finland in England then. And the people I met at that family where I was au pairing, for example, they would ask me questions like, do you have a television in Finland? Yes. Or do you have roads? Because we know that there's lots of snow and, you know, the winters are hard. Do you have roads? Yes. And when my boys went to primary school, their process of learning to read wasn't very easy. They didn't learn to read as quickly as most of their schoolmates. And
before they were diagnosed as dyslexic. Okay. Having a sort of learning difficulty in terms of learning to read, particularly in their case, as had been the case of their father, as incidentally is now the case with my son's children, the sons. So we've got dyslexic boys in our family now for 3 generations. Right. But when they didn't learn to read so easily, the teacher noted that they had difficulties in rhyming, so making rhyming word, picking out the pairs. And this is a difficulty that some dyslexic children have. They find it difficult to hear the pattern and focus on the pattern of the sound. But the teacher thought that this was because I had spoken Finnish to them and had not taught them English nursery rhymes. Right. And again, the teacher told me to stop speaking Finnish. And I was so shocked because I thought, well, I've surrounded them by books. I mean, you only need to look at my home. I'm in my front room and you can see how many books we do have. Yes. And I had taught them so much Finnish poetry. Yes. And again, I was really hurt that the blame was put on being bilingual. Now, in those days, obviously, Finland wasn't very known, so it was kind of put in the same bracket of many Eastern European languages. Today it's very different. Finland is known supposedly for its good educational achievement and system. And but then it wasn't. So people were very, very negative about speaking Finnish. So yes, I met the hierarchy. I also have to sort of point out that I met the hierarchy myself, but obviously I'm white. I lived a comfortable life. I wasn't struggling economically. We had no sort of issues to do with I don't know, disabilities or so I benefited from some privileges, which I do count now. But nevertheless, they that whole business about hierarchies between languages was interesting. And it was such my interest in this whole idea about bilingualism that I decided that when my boys started school, I'm going to become a teacher. And that's when I joined university and went to do my Bachelor of Education. And there I met people who saw bilingualism differently, who openly spoke about language statuses and hierarchies. Right. Okay. And also sort of learned to recognize the baggage that many languages have because of this. So when I then qualified and got to teach in a school that was 60% the children were of Pakistani origin, sometimes 60%, sometimes 90% came from Pakistan, and they came from Kashmir. I also began to realize how complex these issues to do with hierarchy are, because here were these people telling me that they speak Bahari. And I also knew that the children after school, they often go to the mosque to learn to read the Quran. Yes. And then they also wanted, the families and the community wanted them to learn to also speak some Urdu, the national language, so that they can maintain sort of more different kinds of relationships with their country of origin. And how some of the people who worked with us at the school, they often didn't quite get what this Bahari was. So we talked about it at length, absolutely at length. What should we, as a teaching group of teachers and the school and its leadership, what should we say about the
children's language? Should we say that it's a Punjabi dialect? Right. Should we say something else? And every time we went to the community, right, they said, no, it's Bahari. Okay, that's interesting. We also had, by the time I then had sort of stayed teaching a bit, I did a master's. Right. And during that master's, I had an opportunity to engage with many other researchers and professors of bilingualism. Yes. And we met people from Birmingham. Okay. And there seemed to be a very similar group of Kashmiri kids in a school. And yet these people called it Punjabi dialect. And they said to us that you can't call it a Punjabi, you cannot call it Bahari, because that's carries so much baggage that it means hill speak or hill language of the, and that means also that then the whole group of people are sort of framed with some kind of negativity, that they are sort of backward hill people. And so we went back to our parents and our community. By then I had developed very good relationships with the parents and community elders, and I said, well, I'm terribly sorry if I have offended you by calling it Bahari. And they said, we know all about that kind of stuff. It's the name is our, it means our language, and if other people use it for negative purposes, that's their problem. Yes. It is our language and our identity. So I've learned an enormous amount, unbelievable amount from that community of Bahari speakers, and sort of began to explore the different experiences that community people in different communities can have, and realized, of course, that in many ways I had an easy ride coming from Finland, speaking Finnish. So it hadn't been that difficult, but I sort of connected with some small difficulties that I had. I could feel empathy with others, but I totally discovered that there's an awful lot of wrong information. There's lots and lots of people who want to maintain something, want to maintain their own powerful position, and therefore do not want to move on and look at different communities differently. So I'm sort of losing my thread here a bit. That's interesting, and it's very interesting for you to say, because I've got a title, and you've got a title. We are highly educated. You are much more educated than I am, and for you to say that you learned something from some ordinary people in the Kashmiri community, I think that is very encouraging, very heartening, and I'm sure it will be for any from the Kashmiri community and others, because I think often the researcher goes out, researches, and maybe never heard of again, and takes away the knowledge, benefits from it, and if you're not careful, and if there's no intentionality about it, it could be a form of exploitation. So I'm very encouraged that you are talking about, actually you're articulating that you benefited from that community. Absolutely. It opened I was still relatively
new in my teaching role, and I was baffled, sort of didn't really always understand what is going on in my classroom teaching the children of Kashmir. And largely because I had got so into teaching reading, and I suppose because my own children had struggled with it, and so combining that with bilingualism, multilingualism, but there were not enough books that helped teachers to teach children who are simultaneously learning to read in more than one language. All the theoretical books, all the books that teachers used to get about teaching children how to learn to read, all those both theoretical books and more sort of teacher books for good ideas or topics or lesson plans, all that, none of them seemed to understand or include also multilingual children. So with the help of that community, and it was so lovely teaching there, because of course they all lived around the school. So if I popped into a shop, they'd go, Mrs. Robertson, you taught my cousin's son. Or you go to a restaurant somewhere there and they'd say, Mrs. Robertson, right, you're going to have a free sagaloo for us or something. So it was a wonderful feeling of community. So anyway, they helped me to come and observe what happens in the Urdu class. And suddenly my eyes are opened. Totally opened how different it was. But even more so, I went to watch and follow what happens when they learn to read the Quran. And there was that one first time when I went to listen, I remember they had all arrived, the children, but clutching a carry bag, and inside was their Quran. And they'd go and wash themselves, and then they'd come and take the Quran out, and then they'd start reading. And often they fiddled with the carrier bag. So you get this crunchy of the carrier bag, and then the children reciting the Quran. And although by then I knew something about the process of learning to read the Quran, obviously I never learned that myself, but I knew something about it. And as the students, the children there, and there was a group of 2, 3, 10-year-old girls who sat very close to me, and they were reading the Quran, and then one of them said something about one word, and then they start talking about that word. And I said to the girls, I said, well, what does that mean? And they said, we don't know. And although I knew that this was the case, that one learns to recite the Quran, that you don't read it for meaning in the same sense as English schools. Nevertheless, of course, it's not meaningless. It's incredibly meaningful. So much so that the teacher came and said to the girls that you mustn't be speaking and chatting over an open Quran, that's disrespectful. Either close the book or carry on reading. And of course they carried on reading. And then I began to understand how reading for meaning is also very much a cultural construct. It's what we said, or I said as a teacher in the school, was that children learn to read stories with a meaning so that they can tell what happens in the story. That story knowledge is important. But of course, in the Quran classes, it was very different. It was a sort of bordering on spiritual experience, or so the children and the teachers told me. So I was very privileged to be taken to these
contexts and lessons by these community people. And it helped me enormously then to see, so since there were no books about this either, it helped me enormously to begin to think, okay, so what do I need to do in the classroom? What do I need to do? Not necessarily that I got to change everything, but, and you can't anyway, because you're kind of sort of governed by the school curriculum and what the teacher profession wants you to do. Yes. But I can be very mindful. I can open my eyes to see what the children are doing. And of course, that became then my own doctoral thesis. So I continued with this. And and we say in English that we read for PhD, don't we? Because so much of it is just reading, trying to understand it. And by the time I'd kind of read so many books, there's a moment when you kind of think, okay, enough. And now I go and do the data collection. So I went in, continued to look at Urdu lessons, and I continued to look at Quranic lessons. And then I had lots and lots of data. Then begins the process of data analysis. So all that means is that you look at what in my case, what the children have said and what the teachers have said, and you begin to look at patterns. This was a qualitative study. So you look, what is it? What's emerging there? What are the children telling? And of course, they were always delighted to see me, whatever context I was in. So if I went to the mosque, they said, oh, I saw you at school the other day. And same back at school, they said, oh, Mrs. Robertson, you were at the mosque again. Yes. And then they started telling me that, let me show you. I want to show you how I do it. Or they might say, such and such is not doing it properly. They're cheating. Right. So there was a lot of this discussion about, from the children, that doing it. This is how you do it. Yes. And that was probably the lowest point of my doctoral study. I was thinking, so how come other people discover amazing things in their studies, and all I've discovered is that children say, this is how you do it. Yes. And I really nearly cried and gave it all up, until I began to look what's behind that statement, this is how you do it. Yes. When they say it from the three separate contexts, it means that they've learned how you do it in the mosque, how you do it in the Urdu class, and how you do it in the English class. Let me show you how capable I am already. And these children were 5 when I started working with them, and they were 7 when I finished. So I followed them in and out of these lessons for 2 years. Yes, yes. So what they're showing me is that they're not confused. Yes, yes. That's first what they want you to know. Yes. I show you how to do it. Yes, And you said that in your article, Parallel Literacies. Yes, yes. Where you spoke about children speaking Pahari at home, going to learn Urdu, learn Arabic, speaking English. And you made the point that this was not a confusing matter, which I think many people, and you were speaking about your own personal experience as a first-time mother, being told not to speak Finnish because it would confuse the child. And of course, your children, and I've often said teachers of EAL, although I prefer the term bilingual, are people, if there's no one else
I think things have got better, though sometimes I think they're getting worse. But in the 70s, in the early days of multicultural education, often the person who the children saw as a friend, certainly Black and Asian children, saw as a friend was the EAL teacher. And in your case, I imagine they really appreciated you entering their world beyond the classroom. Absolutely. The fact that you were a teacher who came into their space, that they could now connect, and that might have encouraged them to become whole beings, not living compartmentalized lives. Did you find that? So true. So true. And I was lucky that I worked with a couple teachers who were similarly minded. So one was an Irish teacher and one was a English teacher, and then we had one teacher who was also from Pakistan, but I think from southern Pakistan, not from Kashmir. So we were similarly minded and were able to do this. I mean, it's not hard, is it, to give one afternoon and go and see what local other teachers do? No, it's not. It's not. It's not. But only if you prioritize it. Yes. Yes. You know, there are times when I find that there's something takes half an hour for a meaningful interaction with somebody, a conversation or a meeting, but only if you prioritize it. Only if you prioritize. And only if you see its value. And of course, the funds of knowledge approach, the community funds of knowledge that has come along and encouraged people to go out. Yes. You know, sadly, the Swan report talked about commuter teachers. And I've talked about it in my own work, that we have many schools where teachers are hardworking, but they are nevertheless commuter people who come from somewhere, come into the school, may be working there 10, 20 years. I've never gone outside of the school gate walking. They drive in and out. And so the children are forced to have a school life and have a home life or have a wider community life that they never connect because the teacher is not able to understand. Yes. Yes. So I agree with you. Yes, absolutely. And I still don't understand, why is it that we have we've got all sorts of guidance for teachers to for example, learn what children's prior learning is. Yes. Or what kind of, where do they come from, and all this kind of thing. And that it remains in the school building, that teachers don't go much out. And we used to do, as reception class teachers, of course, we used to do home visits quite a lot initially. But of course, there again, it's a bit of a scary moment when the teacher comes to visit you at home. You know, a lot of cleaning is involved, and all sort of trying to make the home look good. It's a very different kind of visit than what I was doing with the children. It's about relationships. It's about developing trust. And there were moments when I was totally challenged, for example, by one imam in the mosque asked me things like, "Do you believe in God?" Yes. And I had to say that I am sort of agnostic. I was taught to believe in God, but now I don't think so. Yes, yes. And I could see that something is happening here. A bit of a barrier is developing. Yes. Against us, between us. And then the other question, next one was,
you don't have rings on your fingers. No. Are you not married? And I said, that is true. I was married, but we have separated, and I am not living with my first husband. Yes. I was together, but with the man who became my second husband. Yes. And I could see that there was again this barrier. And I thought, well, I cannot but be honest. Yes. Cannot. Yes. And I felt that maybe this will just destroy whole of my study now, because this imam is not maybe happy with who I am. But that wasn't the case. That wasn't the case. He wasn't interested in the right kind of answer. But if I come to the mosque to study the children, then they need to know, am I a trustworthy person to do that? Yes. And he had a right to ask me questions. Obviously, I was totally shocked and almost went home crying and thinking, this, I bet I won't be able to go in. But the following time I went in, there's a cup of coffee and huge plate of biscuits for me, and I can never pretend that I became a Muslim person, because I am not. But they could see that I had the community, was important to me, and I had the children close to my heart, that and my brain, I wanted the teaching profession to understand what the children experience, but also the ones that I saw around me, I was also had very warm, good relationships based on trust and honesty. Yes. I've spoken about bilingualism, deficit model of bilingualism, monolingualizing education, assimilationist, subtractive bilingualism. I think all of those have certainly been part of my experience as an immigrant in this country, especially as a visible immigrant, and yet are benefits of bilingualism that you have spoken of. Do you want to, for the ordinary person who may be thinking bilingualism is confusing, what are the benefits? Why should we be bilingual? Well, I think many children don't have that choice. They are. Yes. They're born to a context where mum and dad, or maybe speak one language, or one parent speaks one language and another parent speaks another language, and they're born in that context. They absolutely have a right to learn those languages. It's not difficult. They have a right. More so, really, also for sort of long-term purposes. I have watched so many generations of children who might have spoken Bahari very well in their early childhood, or Finnish in their early childhood, or any of the London languages. And as the years go by, they become less and less fluent in that language. So much so that when they're sort of plus 20, 25, 30, they turn to their parents and say, why didn't you teach me my language? That it belongs to me, it's mine. And now when I FaceTime or visit family, I cannot communicate with them as well as I was able to when I was a little girl. Why did you let it happen? And more so when I go to these places that also belong to the children, or by then the adults, they say, now I feel like a tourist. They don't see me, they don't accept me anymore as a Finnish person or Kashmiri person, that I become something in between, in both places.
don't always feel I fit in here and I don't fit in here. So I'm in this sort of in the middle land. That why did it happen? And often the parents don't know what to say, because of course all parents want the best for their children. Yes. Now, Yes. if the teachers, if the people with power say that it's best if you don't teach, and even if they don't say it, of course you can communicate an awful lot without actually making the statement as clearly as that. Yes, yes. If there is a pressure on here on just using English, and the parents want the best for their children, it's no surprise that they then at some point begin to perhaps favor English. And they it's tragic, I think. And unnecessary. But one understands that the parents were not making those decisions in the conditions of their own choosing. No. So the conditions were such that they were already positioned as a bit of an outsider. And in order to gain a better entry into the insider school community, then the more they hear you speak English seems to be benefit the children. But of course, this is not so. This is not so. No. So there's a huge amount of work that needs to happen still with teachers. But, you know, it also needs to happen with health professionals. It needs to happen with those nurses. I've just recently worked with nurses who give advice to parents, you know, health visitors when the child is 1, 2, and they might say something about nutrition. So they might also then say something about languages. And they often say that, well, you know, yes, keep talking in your own language. That's really good. But by the time you come to school, you know, it's best because, you know, all that Quranic reading and all that, you know, Urdu, is it really helpful? It might be best, you know, for better results. And that again is not right. And it is not true, because of course the research shows that your brain is like any muscle. The more you use it, the more flexible it becomes. So different writers have talked about multilingual flexibility, how it's easy then to switch from language to language, and actually how it develops. The academics say that it improves the cognition. So it's a cognitive strength. And all that means that it enables you to be creative in your language, and for children to use all their thinking resources. So if they've got some ideas located in one language and then they've got another language with similar words, they can draw on both. And of course, in schools, the highest achievements often have been found to take place when children are able to draw on their thinking resources. And that is not only just for the learning benefit, but it is also for identity development, isn't it? They become more secure in who they are. They're okay with their parents' baggage, the migration baggage. They have fewer conversations like, well, Mum, why do you do that? Or Dad, you know, that's, you know, we don't do that anymore here in England. So they have fewer questions like that. They feel more secure in their own skin and in their own home and in their family relationships. So there's lots of benefits of bilingualism. I think you in one of your articles and research pieces, you spoke about the life and contribution of Razia, the bilingual practitioner. Who, one of the words you used for her was a bridge. And there are many people in our community, Kashmiri community, and the wider Pakistani community,
who work as bilingual practitioners and as teaching assistants or classroom teachers or, senior leaders. And I was very interested in the word bridge you described. Do you remember that? Yes, I do. Yes. So that is Razia herself said that. Yes. That she is the bridge. That she's a bridge in all sorts of ways. She's the the person welcoming all children in, but whereas often those who don't share her ethnicity or faith, and particularly language, just sort of might nod and walk past, whereas the ones who share her language and ethnicity sort of made eye contact and often came with a question. What is this? We've had this letter. What's happening at school? And she was able to bridge that because she knew she had been a migrant herself and knew what it was like with young children when you don't get it, what's going on at school. And I have to say that, of course, that's true to many parents, English speaking, whatever, that the early school practice, the early school years are a bit baffling for parents. When they go to parents' evenings, they have to sit on the little chairs and just hear jargon about phonics achievement and how children haven't learned graphemes or whatever. But so Razia had gone through this herself and was incredibly committed in teaching her own children Bahari. Right. And so she bridged with parents, but more importantly, she always talked to us that she bridged with the children's learning so that she knew what kind of home learning experiences the children had had at home. So she knew something about the funds of knowledge, as Moll is the writer who writes about funds of knowledge. Yes. So these are the kinds of networks that families have and practices, social practices, and they're often very situated practices. And all that means that they are unique to that local context, that if you have one kind of home practice in 1970s in one area, in 2022 it's slightly different. It's the situatedness means that it's sort of accrued different practices and technologies and all that, but she was more aware of what is going on at home, and she knew, for example, that often it wasn't so much the third child who struggled because the older siblings took such good care of the younger child. So she would often sort of support differently the ones who were the firstborns of a family. She knew the enormous role that grandparents played in the children's lives, and actually all of the family. So in England and many Western countries, European countries, we tend to think of family as sort of consisting of parents and children, no one else. And of course, in many communities, it's much wider. It's my own pupils in the primary school used to call them cousin sisters and cousin brothers. So they are in the same role as sisters and brothers, although they are. I think minorities have to learn the majority language, as I did, and to a reasonable level. I sometimes wonder whether it would benefit people, monolingual, English-speaking, local majority community members, whether it would benefit them to learn a language other than English. I think people do learn European languages, but there are rare examples of people learning Punjabi or Pahari. Do you ever imagine that will happen? I mean, of course, there are many teachers included who are multilingual.
So in the schools, I trained so many of them who spoke another language at home. And what was staggering again were how these, and early years it often was women, they'd come to me and say, I'm going for my first teaching placement to practice to become a teacher. And I've realized that a lot of the children speak Turkish. And I am Turkish. I speak Turkish. Is it allowed for me to speak Turkish to them? Yes. So there is that huge barrier that other languages have to be kept outside the school. Would it benefit? No doubt it would. No doubt it would. Yeah. I think it's obvious with the globalized world that large sections of our society, people are bilingual, multilingual. Yes. So I think, you know, it's becoming a norm to have, you know, we talk about super diverse cities. They invariably are super diverse in terms of languages as well. I'm conscious of the time. Just one last question, which is behind you there are many books. I'm sure you've read them all, and you know your brain is so big, and with all the languages you know, it must make you very clever. Is there one book that you would pick out from your library that is special to you? It's an impossible. I mean, yes, I could pick out many books. So no, just one. You're only allowed one. Just allowed one. Can I have two? Literature go on. And academic book. Okay. So I think the academic book I would go for a study by Shirley Bryce Heath that came out in early 1980s, and she did a study of three communities in the States. One was a Black American, one was white American working class, and one was white middle class. And she showed how different the communities were, how the practices in each one accrued rules. They were rule bound. Everyone shared those rules, and how the working class Black and working class white communities didn't have the same rules as the school community. The school had, and that had a huge impact on me. And just recently I've been thinking about it again, how profound that book was. As for literature, honestly, it's really difficult to say. I read ferociously. I read poetry. I've got a lovely Bulgarian book of poetry there. I read Shakespeare when I can and feel kind of up to it. And I suppose one of my long term favorites is Virginia Woolf, a British writer. Right. Her book To the Lighthouse. So that I select that. Yes, thank you for that. And I will. I've not read either of these. Maybe I will look them up. But for now, it leaves me to say thank you for giving me your time. Yours was probably 15 years ago. When I started to research and had access to the academic world, and I will have searched for Pahari and will have come across your work, which invariably was affirming for me that not only do we have a language which often people are not interested in, including sometimes our own community, but here are academics, people like yourself, and there are a few others who have researched it. And so thank you for doing that. And long may it continue that you are blessed with
with your work. So thank you very much for your time. Thank you. Thank you very much. Welcome, viewers, to Diaspora Voices, another conversation in the series that we have started some time ago. And it is very humbling for my generation, for people who came as the first generation of Kashmiris, very humbling, a sense of pride also, because we've grown up as migrants and working in factories and doing menial work, any work that we could find. And slowly we've settled and made progress, some progress, plenty of progress actually, as I'm learning. And our future generations have made even more progress. And I'm speaking to one of those people who are part of our pride for the community celebration. And maybe it's an opportunity for my generation to say, well, you know what, you can relax, you've done your bit. And the future generation, you can pass the baton to them and they will carry on the work. So I'm here, it's a pleasure, absolute pleasure, to be in the company of an accomplished writer from the diaspora. And for the next hour or so, I'm just going to be in conversation, learning about and learning from Sabah Khan. So Sabah Khan, welcome. Thank you so much, Dr. Karamat Iqbal. I want to call you Uncle. Can I call you Uncle? Is that okay? I look at you and I'm thinking, my uncle. So. Yes, I think there are viewers who may not understand what that is about. We are not related as far as I know. We're a very large community. And do you want to explain why you want to call me uncle when we're not related? Well, first of all, calling you Dr. Karamat Iqbal just sounds very formal. And I also wouldn't call you Karamat. I wouldn't call you by your first name. Calling you by your surname sounds very formal. And it's really out of respect. It's out of the fact that you are from that parents' generation, the elder generation, and we've got real deep respect and love and honor for our older generations, to the point where we will not call your names. And we'll call you uncle, mamu, chachu, whatever it is. I guess uncle is just the anglicized version of it. But you look like my mamus, you look like my chachus. You're certainly of there, of that generation. So it just feels only right and only natural to call you uncle as opposed to your name. Now that you've explained it, whatever comes out of your mouth, you're absolutely right. Dr. Karamat Iqbal, the full kind of title is probably too much of a mouthful. So just, remember this conversation is about you, not about me. So hopefully there won't be too many needs to call me, but whatever comes out of your mouth. Just briefly, tell us what you do currently. Okay. So I also just want to mention that I got really teary-eyed as you were doing your introduction to me and to the work. Thank you so much. It was really beautiful to hear your thoughts and just
this process that our community is going through the struggles, and then also just that position of letting go and seeing that the next generations are going to move and they're going to shift in ways that are unpredictable, but also there are moments that you can celebrate within that as well, and it's not all just scary or intimidating or whatever. So thank you for that. That's got me really like open and raw. So that's where I'm starting from. In terms of what I'm doing currently, can I just stop you there? This won't be apparent from the screen, but I've got tears ready on my face. For some reason, I really don't understand, because I find my body takes over and emotions, and maybe it was you telling me, reminding me of my age, or and certainly you the age of my children, and so yes, it's absolutely a emotional kind of connection. Just tell us what you do currently. Yeah, let's stick to the script, otherwise we're just going to be bawling our eyes out, aren't we? But it's honestly it's a real honor to know that feeling is mutual. So what I'm doing currently, so I did the book that we're going to talk about, my big offering to the world that we're going to talk about, was published last year. That took about 5 years, and in the process of making that, I transitioned away from my architectural work. So I trained as an architect. I was one of the first in my family to go to university and continue that higher education. So it was a real privilege, and it was a real honor to be able to do that, within the family structure, and then continue that. But for its own reasons, architecture as an industry, and we might go into that today, was really difficult for me. I couldn't really express so much of the things that I had experienced. So really, the book became that avenue for me, and it's also helped me build up my own art practice. So I consider myself now that the book is out there, I consider myself as an artist and an author. And a graphic novelist. I also still do architecture. So I met my partner whilst I was studying in my part 2, and he was also studying architecture. He's now a qualified architect, and together we're setting up an architectural practice that's in East London. And I was making the book for the last 5 years, and for the last 5 years he was self-building our house. So we bought a house off my dad because he bought a few houses in the 80s and 90s really cheaply back then, before the Olympics, before the whole baby boomer scenario. And we've ended up buying one of those houses, and we basically demolished the whole thing, took it down to the ground, and for the last 5 years we've been doing most of the labor ourselves, building it slowly. And you can see bits of it around me. Not very much, but I'm basically in the dormer right now, and we've been living here for nearly 6 to 9 months now, and we're in the final runs of that. So that's what I'm doing. Okay. We'll come back to that, and also part of the introduction bit. Just tell us a little about your Kashmiri connection. Yes. So my family consider themselves Azad Kashmiri. That's a title that I've been unpacking myself, but that's the immediate response to your question. Azad Kashmiri on the Pakistan side of Kashmir, and we come from a small village near Mirpur city, called Boti, so near Karak, which is on the northwestern edge of Mirpur city. But when you look at the dam, it's on the sort of southern tip, and it's kind of around there that they originated from. My dad's family, so we're all part of one clan, but my dad's side of the family ended up going to Dina near Jhelum, and
subsequently there was this divide within the family. So my mum's side stayed in Doti, in Karak, and my dad's side went to Medina. And there's a real tension between, are we Pakistani, are we Kashmiri, what's going on here? And my dad, and I explore it in my book, he actually migrated to the UK when the dam was still being constructed. So as far as I'm concerned, both of my parents come from Karak, from Dina, and my dad doesn't have memories of growing up in sorry, I say Dina. He doesn't have memories of growing up in Dina, in Jhelum. His memories of life in Pakistan is Azad Kashmir. So I identify as Azad Kashmiri, even though, you know, some of my cousins are like, you know, we're Pakistani, like the later generations, because, you know, some of the children were born in Dina as opposed to Azad Kashmir. So convoluted history, yeah. But my connection. Yes, thank you. Yeah, so let's go back to your career, profession, and really, I mean, I think you're probably the first Kashmiri member of the community who I know who's trained as an architect. Wow. And I think most of the time one finds parents wanting their children to go for science subjects, medicine, law, you know, that kind of thing. Yeah. And when you talk about things like art subjects or subjects like architecture as a subject, you know, people may think, what sort of subject is that? Is that something you do as a hobby? So just tell us how you came to, you know, at what stage in your education or in your life did you think, I want to do the arts or I want to do architecture? Just unpick some of that for us. Okay. Uncle, my family, my parents are no different to that wider general sense of like, you've got to be a doctor or a lawyer or, you know, a solicitor or an accountant sometimes as well. Just things that are considered established careers, and there's a clear trajectory, and it's very sort of, you know, streamlined, and there's professionals and there's an industry and there's jobs. And I think it's that sort of connection. There's a sort of safety in knowing that by the end of it, you're going to be employed by this large institution. I think for me, my family is actually incredibly creative. They're secretly very creative. My mum was a seamstress as we were growing up, and that was one of the ways that she would supplement our family income. My dad was really in love with houses. Like, he was a train driver for TfL. That's what his day job was. But he wanted to be a landowner. He had his Rajput ideals of his, you know, previous caste, and really sort of channeling this idea of ownership and spaces and homes and facilitating that for other community members as well. So he ended up climbing the property ladder and, you know, doing that sort of stuff. And I think for me, architecture was an interesting choice, and I ended up in my book, I end up dedicating a whole chapter as to why I studied architecture, and there was a whole host of reasons. I ended up doing it because it was a profession, and it was something that I could say to my mum and dad, this is a profession, you know, it's equal to law and medicine. It takes as long as they do, and I'll come out of it and I'll be fully qualified. It's just not, and it is more connected to the arts. And I think it's because for me, if I really didn't have the pressure of, you know, societal pressures, I would have done something like fine art, and I would have done something that's a lot more perhaps creative and expressive, I think. And I think for me, architecture was a bit of a halfway house. It was expressive, but it was also, you know, it sort of ticked lots of different boxes. I also like
that I would be in university education for 7 years as well, to be like, yes. I'm also, it's important to mention that I'm the youngest in my family. So being the youngest and being a girl, you know, I didn't have to help with the bills and the finances of the house. I was the youngest, so by the time my mum and dad had me, they were in relative financial stability in comparison to my older, you know, there's a 12-year age difference between me and my eldest brother, and for him it was a completely different story. He had to work from the moment he was able to. So that sort of comes into it, and I think all of that allowed me to have an element of choice, even though there were still those background pressures. I was still able to sort of, to some extent, be able to dictate. So it was a real coming together of lots of reasons. Yeah, just as you started to speak, I began to think about the arts and crafts movement. Yeah. And this idea that whole life and everything in it is art. Yeah. Is a craft. And when you started to talk about yourself and your own family being creative, for some reason I had a image of an uncle, because I was 12 when I came to England from Kashmir. And so I spent the first 12 years of my life over there. And I had an uncle who used to build dry stone walls. And, that's craft. That's a real craft. And I could just picture him doing one in the Kus, in the big ravine near us, between our village and Saraki. There was a Kus, and it was that kind of very smooth stone from near the water, almost like kind of big pebbles. And he was making this wall, and I was just sitting watching him. And I have seen, I have memories of seeing people make baskets with branches of bushes and so on, and a whole host of, and I've seen women in our family crocheting and stitching, and whenever they had time, they would sit away from their chores. So absolutely, I think we sometimes think of art as a narrow. Yeah. And you can probably relate to that, presumably, because I have this image that architects kind of go and stand in the environment, get under the skin of the environment, and create something. Yeah. I totally agree. There's such a disconnect with, and I think it's like high art, right? There's this real perception of like, what is art? And it's just like all this, sort of bourgeois kind of distant stuff that's not connected to our sense of self. And as you're talking, Uncle, I'm literally thinking of that chapter towards the end of my book where I liken my mum, I think there's a bit where I say my mum is the first architect I know. And it's doing exactly that. It's putting this idea of this lofty, an architect, what does that mean? And these aspirations that we have, but then bringing it to something that's so recognizable and familiar to you. And for me, I make that analogy because she would house me in my best clothing, made my clothes until I was like 15, 16 years old. And she would make my shelter, because that's what architecture is. Architecture is shelter. Clothes, parda, is shelter. And it's a really, I think we need to do that more for ourselves, because it's an exercise in love and giving ourselves back our humanity, I think, because we are artists and we are
And that example of the Stonewall guy, you know, that memory, it's beautiful because stonewalling, it's a dying art, it's a dying craft. People, you know, it's not getting passed down, especially here in the UK, but it's a thing here in the UK as well, and across the whole world. It's a way of building those walls and demarcating those lands. So yeah, we need to honor those. Yes. Yeah. I think when in the early days, I'm old enough and know, you know, in the 70s and 80s, our community didn't really prioritize girls' education, and I think here you are from within the community who has done, you know, not just compulsory education, but you're talking about earlier, you were talking about 7 years of study post-compulsory, maybe at university level. Yeah. So in your book, you talk about growing up in a safe, multicultural, urban environment where there were large numbers, maybe the majority, but certainly significant numbers of the Kashmiri community or other minorities. So you left that, the safety of that, and you went away somewhere to study. You will have gone into what I call white spaces of university, and in your case, professionally, architecture is generally a white space, and just how was that leaving? Because when you're growing up in a particular world, you think that is the world and that is what it's like. So you will have seen that and become familiar with it and safe and comfortable. And then you went away and you thought, oh my goodness, the world is different. Yeah. So how was that transition into going to university, leaving your area and entering other spaces professionally? Yeah, gosh. They are definitely white spaces. So you totally hit the nail on the head there. I think education, higher education, university settings are white spaces designed for white people. I think black and brown voices come into it, but then they're almost guests. That's the way I see it, where we are observers of this wider structure. And as you say, at that point, literally like when penny dropped for me, and I'm like, oh my gosh, there's all these hidden structures, there's all these power plays, and architecture as an industry as well was really at the forefront of that, because it is such a white male middle class dominated profession. There's such an intersectional hierarchy of what makes it such an elite industry. You don't have the same thing with doctors and lawyers. So going back to my mum and dad's earlier wishes, I can see why they're like, what? Why would you do architecture? Because actually it is so impenetrable and it is such a challenge. And it really knocked my confidence. It knocked my sense of worth, my contribution to society. It made me feel like I wasn't really able to do what I originally thought was my passion. And I think the graphic novel stuff is me trying to find another passion, another way to be a contributing member of society. I think in terms of my experiences brought, like generally, there's a real, there's a bit in the book where I talk about how in our early days, me growing up in Forest Gate in East London and being surrounded by other Asians and other ethnic
communities, different types of, global majority communities, I recognize, and I leaned into more of those differences, not realizing that actually there's these wider structures, there's this wider race structure, class structure. And it really came to a head, if I'm completely honest, when I eventually met my partner, who's white, middle class, British. And I end up going into that as well, because it's that close relationship, that intimacy when you're in that kind of relationship with each other. You see the world through each other's lenses. And it was only at that point when the penny dropped for me again. There's a whole series of moments where I'm coming to terms with these structures that dictate our lives and inform us. We would both walk into a room and he'd be received in a completely different way to me, and especially in jobs as well. I would often feel like I constantly had to prove myself. In university, or just being around other peers, people that are in the same arena as you, and seeing that he didn't have to do it in the same way. And I really had to work hard to assert that I have skills and I have talent and I have things that I have to say as well. And I want to make space for myself. And he would just be offered that space as opposed to having to claim it, which is two completely different things. So that's been a heavy challenge to deal, I think. And I mentioned earlier that we've got our own architectural practice, and that's something that I still struggle with, because for me, architecture has been quite traumatic in that respect, and there's a lot of negative feelings towards that. But he's still like, come on, Sabah, like, we can only deal with these systemic issues head on, and I think I kind of want to shy away from it sometimes and just be like, I want to do my art and I want to do my books now. But he's just like, actually this. And I was talking to a friend who is from East London. She's Somali, she's female, and she did architecture as well. And we were both just, in this space, there's not that many people that have actually gone through this route that have taken this baptism of fire. And it does get to that point where it's like, we are at a position to be able to vocalize and talk and challenge that status quo. It's just so difficult. It's so difficult with the industry because it's connected to construction, which is a huge industry. It makes lots of money, and it's very, it's not very regulated. It's, there aren't very many measures to uphold a certain standard for these kinds of conversations. So it's a minefield. It's a lifelong challenge, I think. Yeah, thank you. I think last year when I had agreed to do this series of conversations, I remember sending you a message saying it would be good to have you on the program, and so you were on my radar. But then one day, I'm part of a Kashmiri academics group, and somebody posted an article from The Guardian in that group, and it was that where you'd won the Jalk Prize, and Sarah Shafi had written an article in The Guardian. And as soon as it was posted, I remembered that I had heard of the name. There was something, so I looked up, and then it was the person who I'd communicated with before. And you won this prize, and I was thinking, obviously a sense of pride that we have got somebody now who we can use to encourage other people to write, to do art, and to do whatever, and say that writing is a proper thing. Maybe you can even make a living out of it. But then I discovered that you'd won a prize for a graphic novel,
And I was thinking, I've been reading books all my life. It's something I discovered when I first came to England in the 1970s. But for goodness sake, what is a graphic novel? So I've been learning what a graphic novel is, and really enjoying it, and certainly done a lot of digging into your work on the internet and now your book. So just tell our viewers what a graphic novel is. How does one, read it, experience it? Do you read it? Do you look at it? Yeah. What do you do with it? And how you do it? So yeah. Is my book your first graphic novel? Absolutely. Oh my God, that's so beautiful! Thank you so much, Jazakallah. That's such an honor. Oh my goodness! Wow. First proper book, but I have to say, I'm looking at it and I'm thinking, yeah, I've connected with comics and I've connected with books of photographs, and how to look at books of photographs where you don't see, you don't flick through, because you can flick through too quickly and get to the end and you think, I've done it, and then actually you haven't done it properly. So I've got books on my coffee table, those big books that you can use as doorstops. Yeah. And I look at them, I tell myself to look at maybe a dozen pages at a time and then stop, because after you then begin to be punch drunk with it and you don't look at it properly. Yeah. And so I've been trying to do the same with yours. So anyway, how should one read and experience a graphic novel? Okay, so here it is, and I'm just gonna try to flick. Oops, let's just try to get it in. Yeah. So it's very. Oh, I'm like not doing it properly. Yeah. There we go. It's all visuals. Well, it's visuals and writing. So a graphic novel. There's so many. The starting points for graphics was very much comics. It was graphic novels was very much comics, and that association of like superheroes and action and that sort of stuff. It's still kind of holding on to the origin story of graphic novels. So I think a lot of people, when they think that, they think of those sorts of things like Marvel and superheroes and things. It's moved on so much since then, and there's a whole subgenre where so those comics, those Marvel type ones, they'll have a person who writes the comic, they will have a person who draws the comic, who colors the comic, who puts the lettering in the comic. There's a whole team of people that come together to do those guys. But now there's like a subgenre, and it's been going on since the 80s, I think, of the singular artist, author, writer, doer, they do everything. And this is the sort of more independent graphic novels from which my book comes from. So I'm the complete artist for the whole piece. I've written it, I've drawn it, I've colored it, I've laid it out, I've scripted the whole thing. It's all me. It's my singular vision. And the publisher Myriad were completely hands off. They were like, it's your baby, you do what you want to do. So as a publisher as well, that's absolutely fantastic. I think a lot, from what I've heard from other people, they'll often try to help you shape it and edit it and curate it. But with these publishers, it was completely hands off. And then in terms of the way you read it, things like that, and it's so interesting because I see graphic novels as almost like a hybrid genre. So they look like a book, they're physical, they've got pages like a book and they read like a book, but then they've got images, and your mind, when you're going through it, you're like, do I read text first or do I see the image? And in what order? And I think, as a designer, we try to make that as easy as possible for you, so you're not stumbling over the immediate things. But essentially,
it's the way you as a person, your experience come to the page and how you bring it all together. And there's something incredible about graphic novels in that they can be read within a couple of hours. So I've had people read my book within a couple of hours. I've had people like you take their time and read it slowly. But that's what makes it really fascinating, because it becomes almost like a film. So like with films, they'll be a couple of hours long, but they'll take years to compose and put together. And there'll be a whole team of people that come to it, but you consume it very quickly and you get the idea of it very immediately. And so for me, a graphic novel sits almost between a book and a film, actually, and it's this sort of like multi, kind of weird fusion genre, and it really messes with your mind. I love it because it allows people to bring themselves to the table. So I'm asking you as the reader to make the connection between what I've written and what I'm drawing, and it will be based on your own experiences, what you read into it. And I think that's where I get really emotional when other Mirpuri people, when other Azad Kashmiri people read my book, because they will read into it in ways that other people will not. They'll get to a certain point, but then they'll be like, okay, I don't really, I can relate to that and get an understanding of it, but it's not my story, it's not my experience, and that's okay. So it really, it allows people to just come as they are, really, which is really, really beautiful, and I love it. Yeah, I think as you were talking, and as I was going through your book, I was thinking, actually, I have come across a graphic novel before. We have 2 children, and I discovered through them children's books. Yeah. And some of those were graphic novels. Yeah. They were sometimes were written by 2 people. So one would write the words, one would do the illustrations, and sometimes the same person would do it. And so there is that, and I mean, currently I usually get a Guardian newspaper on a Saturday and try and spread it out during the week, and I will flick through it on the Saturday, the news section, start to finish, flick through to see what there is, get the overview. And then I'll go back and read the ones I really want to read properly, and I decide where I want to read them, and some sections I may want to read during the week. And I think when I received your book recently, I flicked through it because I was trying to prepare for this conversation, and then I decided that actually this wasn't a book where you want to know what happens at the end. This was a book of sections, yeah. And I quickly got the overview, and then I keep going back to little bits and connecting with it and reflecting on it and connecting with it maybe as my own story connects with it, or learning, or then going off and researching around it, what that means, and finding bits of connection. So there was one bit where you included a tweet from I think it's Bo Wren. Yeah, that's right. Yeah. He reads, "My parents were tasked with the job of survival, and I with self-actualization. The immigrant generational gap is real. What a luxury it is to search for purpose, meaning, and fulfillment." And in the academic world, we talk about that as the kind of immigrant paradigm, where the first generation really struggled to find a space. It was sufficient achievement for them to arrive in England from Kashmir and get a job, any job,
that would help to pay for the food, help to pay for the family back home. And the future generations have come on to do other things. And I think, you may have come across Maslow's hierarchy of needs. Yeah. And it's basically a hierarchy where at the very basic level are our basic needs for food, survival, or shelter. Yeah. And much later, we come to things like leisure and higher order activities. And so the luxury of having one's child, youngest child in your case, going off and studying for 7 years, not worry, hopefully you didn't have to worry about where the food was going to come from. Yeah, yeah. And somebody done the work and was providing for you. Yeah. And society, your parents, your family, your community. And so I think it's that kind of connection that people will hopefully make. And I've certainly, I think on 3 different occasions, I've told people, I've almost gone out of the way to say to them, you need to be reading or put it on your book list, the roles by Abba Khan. And I think I'm making a presentation at the British Education Research Association in September about Kashmiri parents and their contribution. And the opening slide will hopefully be your map of Azad Kashmir. So thank you. So I want to talk about family. You talk about it in your book, and most of us know when it comes to family, you can find it is a supportive structure, and by family I don't mean just parents, mother and father, and immediate siblings, but the wider extended family. It's a supportive world. It protects us from lots of things. But we also know, and you talk about it, it can be oppressive, especially for women. And our community is good at that, oppressing women. And, how do you, knowing the wider world is hostile to our community, how do you decide when to be critical of our community, of your parents, of the extended family, and when to be nice to it and just focus on the positives? Oh gosh, that's so interesting. It's such a paradox, I think. I think when I first came to the book and when I first came to like my sense of expression, like what I wanted to express, there was definitely lots of like anger, a lot of like bitterness, lots of negative. I think it's an easier emotion to tap into as well. Like, the injustices that have happened to me, both socially, with the place that I studied and stuff, but also within the home environment. And my family is, mashallah, a very big family in East London. So it's not just my nuclear family, it's my mammals and my jajus and my halas and my pupos and my cousins. And there's, now over the years, there's so many of us, and we're all still so connected as well. And once you've got that, any structure and the scale of the structure as well, it can become oppressive, it can become controlling, it can be dominating and dictating what is right and what is wrong. And especially when you chuck in things like, what does it mean to be
close to your culture, what does it mean to be a coconut? You know, like a lot of my family will be like, oh, she's become a Gori. Now that she's with a Gora, she's become, you know, they'll say things like that. And I'll be like, oh God. You know, and then things like religion as well, which, you know, can be very outwardly, you know, you can really manifest this idea of the devout Muslim, but not actually be critical of your own actions and just do things that are, you know, kind of like repetitive or ritualistic or things that everyone does and you don't ever question, in terms of like the moral, you know, sort of compass of it. So there's all this sort of convoluted stuff, and I think originally it was very much like, you know, that's the sort of stuff I want to talk about. And what I wasn't seeing was the fact that actually, yes, that's a makeup, but what are the wider structures that influence those behaviors, and what is the root of those behaviors? So yes, the behavior is happening, and on a one-to-one level, I might be getting really annoyed at my mum being really controlling and telling me what to wear and what not to wear. And yes, my emotions are valid, because on a one-to-one and interpersonal level, that's really frustrating, and I'm feeling really controlled, and, you know, I'm having to navigate around that. But what is it that's making her feel like she needs to do that to me? And is it coming from a place of, I'm going to control my child, or is it coming from a place of, I want to keep my child safe? And I think that's those bigger questions I get really excited about, because suddenly it opens up beyond the narratives that we're taught from, like, you know, your sort of tabloid newspapers and the rhetoric that we're given from wider society, and it allows you to be a lot more empathetic. So that was my whole process with the book as well. And there's another piece that I did that's not the book. It was a rolling pin piece. I don't know if you've seen this. It's on my website, and it's basically like I took a physical rolling pin and I carved my dad, me in the middle, and then my mum on one end, and I turned it into a printmaking device. And I allowed voices, and there were lots of different prints, and basically the first one is a very frustrating one. My dad's telling me to cook, my mum's teaching me how to cook, and I'm being in this subservient mode of the men are there to be fed and the women are there to feed them, and very much my sort of starting point for when it comes to making roti and that ritual, that tradition. And I then allow it to move. So that's the starting point. And then there's in the middle, there's anger, there's frustration, there's confusion, and there's lots of rising resentments. And then in the final one, the women are transitioned away from subservient to the people who hold the power, because they are the feeders, they are the nourishers. And suddenly these three figures, the male, the mother, the father, and the daughter, they move. The action is still the same. They're still making roti throughout. You know, we make, it's a staple food. We eat it every single day for years and years, and my mum and dad have. But it's like, if we can just change the narrative, if we can just change the way we see ourselves, we can still do the same action. We don't have to question this ancestral legacy that we've continued and we've migrated with. But the women can be empowered by it, and they can be given strength and conviction, and really feel like they're connected back to their community as the nourishers, as the providers. And suddenly it's not a subservient role, but it's a powerful role. And I think I tried to do that in the book as well. Yeah, I've noticed music is very much part of your work. Obviously, some of it is because of your age. I certainly couldn't relate to it, but there was plenty, and I was interested to see that your generation is still aware of Muhammad Rafi, Nusrat Fateh Ali Khan, though I didn't see any signs of Bruce Springsteen in there. So how did you come to connect with music, and what does it mean for you? You know what, you touched on a really interesting question there, like the generational breadth of, like, you know, you're kind of, you're 1.5. If you came here when you're 12, you're 1.5 generation.
And I see myself as the ends of the second generation. Like most second generation people that I meet are definitely older than me, and they are of the Bruce Springsteen era. But you know, like Sarfraz Manzoor, he wrote a whole book about how, you know, he is such a inspiration for him growing up. And I definitely recognize that I'm on the trail ends. I've got people who are like just a couple of years younger than me who read my book and be like, oh, that's like my mom. Like your story is like my mom's story. And I'm like, but we're just a few years apart. So there's a real generational gap, like it sort of crossover there of things just bleeding into each other, and also just the continuation of time, the beautiful, you know, the fact that it just never ends and there's no marker in the sand. But yeah, then there's the timeless ones like Rafi and Nusrat Fateh Ali Khan. And in terms of the music, there was a real connection between like stuff that my mum and dad absolutely love. You know, the Rafi songs, they are like Jodhvi Ka Chand, that's me and my mum. That's our favorite song. You know, we are each other's chand, we are each other's moons, and we love that song together. And a lot of that is like the symbolic kind of declaration of love through music. And that's my own little secret message to myself and to my mum. And then, yeah, some of the other stuff, there's like neo soul from D'Angelo from the 90s, which is very much what me and my sister would listen to. And I've grown up with rap and hip hop and R&B as my thing, and it's a reflection of that, and sort of embracing that, and not being embarrassed that I didn't grow up with Bruce Springsteen or you know, some of the other big hitters like Kate Bush. Like I only started listening to Kate Bush when everyone else was like, what? Why haven't you heard Kate Bush? And I'm like, I've never really listened to it. So well, you have missed out on not knowing Bruce Springsteen. So yeah. If my one request to you is to go and educate yourself. Okay. Your education is not complete until love it. You I will do that. You know, I mean, you know where I've come from. Where I came from, there were no books, no libraries, and there was no music, because music was seen as a low activity done by low people. And I discovered music, and when I discovered Bruce Springsteen, I felt that he was actually writing about me, coming, you know, when he talks about Independence Day or his conflict with his father, it felt as if he was talking about me. And I suppose you will understand that good literature, you know, like your book, is lots of people can connect with it, regardless of whether they come from that culture that you're talking about and that ethnic group. It is universal, and so hopefully you'll find that. How good is your Pahari? बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल बोली सीखनी है। I mean, you know, this conversation is probably the only program on JKTV that's in English, so we can't now go into speaking Pahari, but I'm of a generation that actually came and didn't really have too much time in the schooling system here, so I've been able to keep my Pahari. So I'm always encouraging the younger generation to, if they have some Pahari, to keep it alive and find strategies. Nowadays, you know, there's lots of YouTube videos and so on, and family and so on, where you can converse. So do you get an opportunity to speak Pahari? मैं उन पहाड़ी विच बोलना चाहनी हां, बस मेरी फैमिली ने नाल मेरा मौका होना वा। मैं उन जिसने नाल में शादी की है वो नहीं बोली सकना, ता इंशाल्लाह आई डोंट नो थोड़ी देर बाद या ओवर टाइम मैं उसकी सिखाई सकसा, मे बी यूट्यूब वीडियो देखिएगा। पर बहुत मेरा दिल नहीं करना उसकी उर्दू सिखाने ना, मैं वो ना करना चाहनी, बिल्कुल पहाड़ी उसकी सिखाना चाहनी हां। So maybe the thing that I've discovered, I read Urdu, I speak Pahari, and I speak English.
And the thing I find with Urdu is I read Urdu regularly because it provides me with the vocabulary for Pahari. Yeah. So the words in Urdu actually provide, because I know you can read Pahari sometimes, there is literature, but generally I'm familiar with reading Urdu. So you may have to use Urdu with your partner and for yourself as a kind of foundation for the Pahari. So yeah, good luck with that, because I'm a great advocate of bilingualism, and I think it's important. I'm conscious that we haven't looked at any of your pictures, and we haven't got much time, so it would be good to look at one or two pictures. So let's see if I can work the technology and find something. Cool. And then I can just briefly describe it. Yeah, sure. I'm curious to know which ones you chose, because I sent a whole bunch. All right. Ah, you chose this one. So this is part of a larger piece. So this is 2/3. There's another third that I didn't share. And this one starts to define what is a displaced person and what is a diaspora. And it was a really critical point for me. And it was important to do this in the book because my family, and I don't know about you, Uncle, but my family do not consider themselves as displaced people. They will not talk about themselves as displaced people. And it was only during the process of doing the book, making the connection between Mangala Dam and the water treaty of 1965, I think. And then the reason why the water treaty happened because of partition and all of the geopolitics and the landscape of that area. It was absolutely fascinating. And I think this is what education gives you, right? Like my family may not have made those connections themselves consciously. They obviously lived through it and experienced it, but they haven't, you know, at least in my knowledge, they haven't made, like I was not aware of those connections growing up. And this book for me was about making those connections in time, going back in time, doing the research, and actually like putting this word onto what happened to Mirpur, what happened to Azad Kashmir, what happened to what Mangala Dam was. It was a tool of soft power for the British. They pulled out and they suddenly realized that, oh my gosh, the whole of the UK, the whole of Pakistan could essentially be starved of water. You know, India could have this this power hand of controlling the tributaries, the 5 rivers. And so these dams were built, and the dams, Mangala Dam is not the only one. There's other huge dams as well. At the time, it was the biggest in the world, I think, when it was built, a huge civil engineering project. And this is the dam, yeah. And it displaced 280 villages, thousands of people, and that's where this migration came to the UK as well, that we now know of. And it's just, you know, that word displacement, you know, our homes were displaced. My dad came to the UK because his family was getting scattered. And he was given this voucher, as many others were, to come and work and be a labourer in the factories and do that cheap menial labour that nobody else would do, or, you know, people that died in the war and there was that labour shortage of the 1960s. So that was a really important thing. And then, so this one here, so this is the 5 rivers. Sorry, Uncle, did you want to say something? Should I just continue? Yeah. Briefly, yeah. So I sort of merge poetry with it as well. So I'll look at the lines of my hands, and, you know, the 5 rivers are like the 5 fingers of a vice-like grip that controls these lands, and I'm making these analogies. And then I go on and I look at I went to Wikipedia and I looked at the size of Mangala Dam, and I was just like, I want to relate to this in a way that's
familiar to me. And so I took the square meterage of the Mangla Dam area, and I looked at the boroughs of the UK, of London, the boroughs of London where I live, and I basically tallied up so that the amount in London would make up the same amount in Mangla Dam. And I was just like, okay, so the size of Mangla Dam is akin to 8 boroughs of London. And so I've written them: Haringey, Walthamstow, Forest, there's 8 of those boroughs, and they make up the same square meterage of Mangla Dam. And it's just this, this continuous connecting back to who I am, what I know, what's familiar to me. Yeah. And I just wanted you to talk us through this particular map, which is quite critical, I think. Yeah, so I think a lot of people don't know that Kashmir is actually a really convoluted history. I still don't know the full extent of it as well. So that little knuckle right at the top, you've got India, you've got Bangladesh, which is kind of enclosed by India, which is another thing that we don't talk about. Then you've got Pakistan as the blue entity. And then at the top, you've got Kashmir. It's currently, there's bits of Kashmir that are controlled by China. The predominant part is controlled by India, and that's where it's often cited as one of the most militarized zones in the whole world. And then the dark blue at the top of that is the Pakistan administered side of Kashmir, and that's where my family are from. And I think that's where I'm going to assume, Uncle, that's where your family are from as well. Yeah. So yeah, that's just a really simplistic version, because there's so much more that goes into it as well, and sort of just making it digestible. Yeah, yeah. Let me just move. Yes, so time is not on our side, sadly. Would you like to recommend a book to our viewers? So I have been reading Mannu. Have you heard of Mannu? No. So Mannu is also a graphic novel. Oh, wow. It's authored by Malik Sajjad, and it's by Fourth Estate, the publishers. It was published, I think, in 2016, and it's from the India side of Kashmir. So Malik is an artist, Malik Sajjad is an artist from the India side of Kashmir, and it's his lived experience. He ends up becoming a political cartoonist, and he ends up having these incredible, really fraught, tense, and it's a really great book to give all of us as people in the UK and who are wanting to know more about Kashmir. Kashmir isn't spoken about enough of, and we don't get things like this that allow you to go into the area. I've always wanted to go to the India side of Kashmir as well. I don't know if we'll ever be allowed to, but this is a small insight into that, because he draws it as well, and he draws the spaces and the cities that he's walking around, and the family relations that he has, and the people that he meets, the relationships that he ends up making along the way. And I think it's still so relevant. I tried to speak to him for South Asia Heritage Month this year. I think that group were trying to get us to be in conversation with each other. Me as Azad Kashmiri diaspora, and him as actually there and living it on the India side. And it was a really exciting prospect, but I think because of the communications blockade, we've not been able to make it happen. And I think they're about to announce the fact that, we're going to still keep trying, but that's still a very real thing. And, we're not hearing about it, but it's still happening. And all of us have a responsibility and a duty to find out more about it, these hidden, untold things that are happening. And we only get, snippets through the media, and there aren't very many channels. So this is the one that I would recommend, definitely. Mannu, A Boy from Kashmir, Malik Sajjad. Okay, thank you very much. I think it is stating the obvious that I would like our viewers to go out and buy your book, but I'm going to read one particular recommendation, and this is from Simon Chadwick, the Cartoonists Club of Great Britain. It says, utterly engaging, instantly relatable. It takes a degree of bravery to write and illustrate something so personal and forthright
the fact that it also manages to embrace a sense of humor just furthers how remarkable a book this is. And you already know that I have bought 2 copies because I want both my children to have a copy. It's almost a piece of me and piece of my heritage, my side of the family, because of the way you intelligently talk about sociology, ethnography, biography, exploring identity, migration, multicultural life. So there is so much in the book that every family should have at least 1 copy. So thank you. That really means so much to me. Thank you so much. And I have every confidence that you will be winning more awards and you will be writing more books and other pieces of work. So no doubt there'll be reasons to have you back on this program in the future. But for now, thank you very much. Thank you. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल फ्रंट में सरदार साजिद नवाज खान, और आज हम समझेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज़ाद कश्मीर हकीकत में आज़ाद हो रहा है, जैसे कि पहले से अनाउंस भी था। इसके मारूज़ात में या इसकी बैकग्राउंड में या इसकी सराउंडिंग में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर खुसूसन ये जो एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियाँ अवाम की तरफ से हो रही हैं, बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो रियासती इंतज़ामिया है उसकी तरफ से जो पुरअमन मुजाहिरीन पे जो तशद्दुद हो रहा है, रात को भी मुज़फ़्फ़राबाद में तशद्दुद हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई नौजवानों की जो आज़ादी पसंद है। हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, और इसमें अगर ये कोई तहरीक है, अगर ये तहरीक की सूरत अख्तियार कर रही है, तो बुनियादी तौर पे किसी भी मुतनाज़ा इलाके की जो पॉलिटिकल साइंस होती है या जो समाजी साइंस होती है, उसमें तहरीकें बनती कैसे हैं, पनपती कैसे हैं, उन तहरीकों का मकसद क्या होता है, उसमें अवाम का बयानिया क्या होता है, क्या तहरीकें अवाम जो चलाती हैं वो क्या रूलिंग एलीट के ख़िलाफ़ होती है, पॉलिटिकल एलीट के ख़िलाफ़ होती है, या उस निज़ाम और सिस्टम के ख़िलाफ़ होती है। तो जब आप किसी रियासत के जबरी फ़ौजी कब्ज़े में हों, तो उस सूरत में आपकी जो तहरीक है या जो आप आज़ादी की जंग लड़ें, तो वो किन इस्तवार पे उसका होना चाहिए, उसमें आपकी सोसाइटी के कौन से फ्रैक्शंस होने चाहिए, उसके अंदर मौजूद जो पॉलिटिकल साइंस है वो किस तरह से इंट्रूड करती है अवाम के जहनों में, अवाम की सोचों में, और फिर जो उसके इस पॉलिटिक्स के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स होती हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है इस सारी सूरत हाल में। तो मैं आपको पता चलूँ कि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं हमीद बाशानी साहब, आप उनके कॉलम भी पढ़ते हैं। सर वेलकम टू द शो, आप इन चीज़ों पे एनालिसिस भी देते हैं। शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, और इस अहम मौके पर कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, कल हिंदुस्तान का होगा, तो ये जो कश्मीरियों के अंदर एक इज़्तिराब है दोनों तरफ कि हमें महकूम रख के, हमें कब्ज़े में रख के तो आज़ादियाँ ये बना रहे हैं, और हमें भी फोर्स करते हैं कि हम भी इनकी हमें हाँ मिलाकर तो अपनी आज़ादियाँ बनाएं। पहले तो इस दिन के मौके पे आप क्या कहेंगे, फिर हम चलेंगे एक्चुअल टॉपिक की तरफ और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जी बाशानी साहब। देखें जी, पहले तो ये जो मौका है जो यौम आज़ादी का पाकिस्तान और इंडिया में बनाया जा रहा है, इसमें तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान भारत के जो है लोगों को जो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस मुबारक के साथ साथ ज़ाहिर है हम एक जो नोट भी रखते हैं साथ में काशन का, वो ये होता है कि जो आज़ादी का असल मफ़हूम है और जो 1947 से पहले जो आज़ादी का एक जदोजहद थी या एक तसव्वुर था, उस पे अभी तक जो है वो पाकिस्तान और भारत जो है वो पूरा नहीं उतरे हैं। आल्दो के ज़ाहिर है कि बर सगीर से अंग्रेज़ चले गए, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें अपने डिसीजन खुद करने का मौका मिल गया यहाँ के लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकली जो है
जो बुनियादी तौर पे आज़ादी का एक तस्वर होता है कि डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो बर सगीर के अवाम को अभी तक भी पूरे तरीके से जो है वो मुंतकिल नहीं। तो इस हवाले से हम साथ में ये एक काशन का नोट भी ये करते हैं कि जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर जो जदोजहद करने वाली कुव्वतें हैं जो अपनी हकीकी आज़ादियों के लिए जंग लड़ रही हैं, उनका सफ़र जो है वो अभी जो है वो बाकी है। इस पे जो है वो मेरे ख्याल में इसका नटशल में जो आप कर सकते हैं चंद लफ्ज़ों में, वो ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये फैज़ साहब का जो शेर है ये दोनों जगहों पे इक्वली पॉपुलर है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, और इसको बड़े गौर से लोग पढ़ते हैं और बड़े जज्बाती अंदाज से आप इसके साथ जो है वो रिलेट करते हैं अपने आप को। तो वहाँ भी हकीकी आज़ादी की जंगें अभी जारी हैं, बल्कि हकीकी आज़ादी एक तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आजकल की पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में, लेकिन जो रियल मतलब इससे हटके तो पाकिस्तान और इंडिया में लाखों ऐसे लोग हैं, ग्रुप हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये समझते हैं कि उनको हकीकी जो है वो पॉलिटिकल और माशी आज़ादी जो है उसका सफ़र अभी जारी है, जो ख़त्म नहीं हुआ। 1947 में तो इस सफ़र का महज आगाज़ था, और जब तक इक़्तिदार जो है वहाँ के अवाम को मुंतकिल नहीं हो जाता, अवाम अपने वसाइल के खुद मालिक नहीं हो जाते, और वहाँ पे एक मुनसफाना निज़ाम जो है वो कायम नहीं होता जिसके तहत वसाइल की और दौलत की मुनसफाना तकसीम हो, तो उस वक्त तक ज़ाहिर है ये जंग जारी रहती है। और ये दुनिया के बेशतर ममालिक में इस तरह है, तो उनको मुबारकबाद दे के हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है ना, इसको दो नुक्ता नज़र से देखने की ज़रूरत है। एक नुक्ता नज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा है जो इस मामले से फैसिनेट हो गया है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है, जिसको आप कहते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा एक इससे उम्मीदें बांध बैठा है कि 2-4 जुलूस निकल गए, हड़तालें हो गई तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरा नुक्ता नज़र है उसको आप पैसिमिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रियलिटी के करीब है, जो ये समझते हैं कि ये अभी इब्तिदा भी नहीं है। ये जो हम बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जंग, ये दोनों लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि हम गलत इस्तेमाल करते हैं। ना अभी वहाँ कोई लड़ाई शुरू हुई, ना वहाँ पे कोई जंग है। ये एक जदोजहद है जिसका अभी सिर्फ एक झलक भी नहीं, बल्कि आप यूँ समझ लें कि बहुत एक दूर अंधेरे में एक जो टिमटिमाता हुआ आपको एक दिया नज़र आता है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। तो इसलिए इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट होके तो इस तरह के बयानिए सामने नहीं लाने चाहिए जिसकी वजह से हुक्मरान तबकात जो हैं वो फ़ायदा उठा के तो उनके ऊपर जो जुल्म जबर जो पहले से हो रहा है या नाइंसाफ़ी हो रही है उसको मज़ीद जो है ना वो इंटेंसिफाई करें। तो ये चीज़ें भी क़यादत को समझने की ज़रूरत होती है। 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि वायलेंस को हर सूरत में मैं समझता हूँ कि कोई छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, 1 जुलूस है, 10 जुलूस हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट तरीन इशू जो है वो वायलेंस से कैसे अलहदा रहा जा सकता है इस तहरीक के दौरान, या ये हुकूक के लिए जो मुतालबात हो रहे हैं इनके दौरान आप कह सकते हैं, वो तहरीक भी नहीं कहना चाहिए अभी इस स्टेज पे मैं समझता हूँ। और दूसरा ये है कि इसको किस तरह एक रियलिस्टिक बुनियादों पे समझने की ज़रूरत है कि इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्साइट होके तो कोई ऐसा एडवेंचर ना कर लें या कोई ऐसी झूठी उम्मीदें ना बांध लें जिसकी वजह से नुकसान हो। और उसमें नुकसान क्या होता है कि जब आप इस तरह के कोई चीज़ करते हैं तो उसके बाद फिर जो रिप्रेशन होता है वो तहरीकें क्रैश हो जाती हैं, तो फिर कहीं दाइयों तक उसका कोई नाम नहीं लेता। ये आपको याद रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में, पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान और इंडिया में, जनूबी एशिया में ऐसी बेशुमार मसाले हैं जहाँ पे जो कुछ तहरीकें शुरू हुई जिनको अवाम की हमायत भी हासिल थी, लेकिन उनको पूरे तरीके से मुनज़्ज़म किए बगैर, उनको किसी पार्टी किसी ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन के अंदर लाए बगैर, उनकी प्रॉपर रहनुमाई किए बगैर उनको जिस तरीके से हुक्मरानों से टकरा दिया गया, उसके नतीजे में बहुत अरसे तक दाइयों तक जो है वो तहरीकें गायब हुई और हुक्मरान तबकात को अपना काम करने और गुल खिलाना जिसको कहते हैं उसका मौका मिलता रहा। इसलिए
इस गलती से बचना चाहिए। बाकी जो कुछ हो रहा है जी कश्मीर में, ये 1947 में होना चाहिए था। चूँकि बुनियादी तौर पे हम लोग जो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई क्या होती है, आज़ादी की जदोजहद क्या है, मैं इसको हमेशा सम अप करता हूँ बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में। एक होता है हक़ मलकियत और दूसरा हक़ हुक्मरानी। हक़ मलकियत का मतलब ये होता है कि जिस धरती में जो लोग आबाद होते हैं, वहाँ की जो ज़मीनें हैं, वसाइल हैं, मदनियात हैं, पानी है, दरिया है, आसमान है, हवाएं हैं, फ़ज़ाएँ हैं, जो चीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल है फितरत की तरफ से, उसके मालिक वो लोग हैं और उसको हक़ मलकियत कहते हैं। कोई बाहर से आके, हुआ वो आपका भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, दुश्मन है, दोस्त है, उसको हक नहीं पहुंचता कि वो आके आपकी उस हक़ मलकियत में इंटरफेरेंस करे। इसको कहते हैं हक़ मलकियत मेरे नज़दीक। और दूसरा है हक़ हुक्मरानी। तो हक़ हुक्मरानी का मतलब ये है कि आप जिस खित्ते में, जिस धरती पे आबाद हैं, उसके अंदर जितने वसाइल मौजूद हैं, उनकी तकसीम और उसको किस तरीके से की जाए, क्यों की जाए, किन चीज़ों पे की जाए, ये डिसीजन मेकिंग का पावर जो है, इसको हक़ हुक्मरानी कहते हैं। और ये 2 चीज़ें आज़ाद कश्मीर में नहीं हैं, जिसकी एक मिसाल अभी आपने बल्दियाती इंतखाबात देख लिए कि 30 साल से बल्दियाती इंतखाबात का कज़िया क्यों चल रहा है कि ये अवाम को हक़ हुक्मरानी की एक झलक के मुतरादिफ दिखाने के मुतरादिफ है कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करके तो यूनियन काउंसिलों और गाँवों की सतह पे लोगों को ये इख्तियार देते हैं कि भाई आपने अपना पानी बनाना है, सड़क बनाना है, तो इसके लिए इतने पैसे हैं और आप खुद बैठ के तय करें कि आपने कैसे खर्च करने और कैसे बनाना है। ऑल दो कि वो एक लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, लिमिटेड हक़ हुक्मरानी है, लेकिन है तो सही। एक मिसाल है उसकी, और इसी मिसाल को आप पूरे कौमी सतह पे फैला दें कि जब आपका हक़ मलकियत पूरी रियासती सतह पे, कौमी सतह पे तस्लीम किया जाता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी यहाँ की धरती के लोग जो हैं वो आज़ाद हैं। जो नाम हमने पहले रख लिया था 1947 में, आज़ाद कश्मीर, उसका असल में तर्जमा ये है कि यहाँ के वसाइल के मालिक हम हैं और यहाँ पे हुकूमत करने का हक हमें है। इस बात से कोई जी रूह शख्स जो है, कोई बाशऊर शख्स, हुआ वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो या अमरीकी हो, इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किस्म का ट्रूथ है, एक हकीकत एक इतनी बड़ी रियलिटी बन गई है कि जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब इसको 2 तरीके से अंडरमाइन किया जाता है। एक ताकत के इस्तेमाल से, जिसको आप कब्जा कहते हैं, जब कोई बैरूनी कुव्वत फौजें भेज के, बंदूक दिखा के, टैंक दिखा के, बख्तरबंद गाड़ियां दिखा के, तो आपके इस राइट को जो है वो डिनाई करती है। और दूसरा तरीका वो होता है जो हमारे साथ हुआ, जो वारदात हुई, उसको कहते हैं बहन भाई बन के जब लूटने का अमल शुरू किया जाता है कि नहीं जी हम तो एक ही लोग हैं जी, आपके क्या वसाइल और हमारे क्या जी, बस तो बात तो एक ही है जी। और ये कह के तो फिर आपके अंदर से ऐसे टाउट पैदा किए जाते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, और उन टाउट्स को जो है वो सामने रख के तो लोगों को एक झूठा जो है झलकी दिखाई जाती है कि जी दरअसल आप लोग खुद अपने मुकद्दर के मालिक हैं। जो हमारे साथ 1947 से हो रहा है कि ऐसे लोग हमारे अपने अंदर अपनी सफ़ों में होते हैं जो बाहर जाके तो बालादस्त कुव्वतों के साथ साजबाज करके उनके साथ जो है वो खुफिया किस्म के समझौतों के तहत इस तरह का तासर देते हैं कि जी हमारे कोई वसाइल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इख्तियारात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मैसेज जो है वो अवाम को भी दे के तो खामोशी का रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर किया जाता है। जो अभी रिसेंट आपने देखा कि जो वाक़यात हुए हैं, उसमें जब ये चीज़ एक्सपोज हुई कि आज़ाद कश्मीर असम्बली जो है उसके इख्तियारात क्या हैं और उनके पास क्या इख्तियारात होने चाहिए, 15वीं तरमीम क्या है, और ये किस तरीके से मकामी लोगों के राइट्स जो है उसको अंडरमाइन करती है, उनकी हक़ हुक्मरानी जो कि हक़ कानून साजी एक ही चीज़ के 2 नाम होते हैं, उसको अंडरमाइन करती है। तो ये चीज़ खुल के थोड़ी सी सामने आई तो लोगों के अंदर एक शऊर की एक लहर पैदा हुई कि भाई बात तो ये सही है कि इस धरती पे कोई कानून बनता है, कोई वसाइल तकसीम होते हैं, कोई दौलत का इशू है, तो उसका तो डिसीजन हमें करना चाहिए। तो इस पे ये तरमीम कैसे आ गए, जिसको आपने देखा कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उसने उसका साथ दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में रख के
تو اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جناب یہ جو سٹرگل ہے یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، اس کو آپ عرب سپرنگ کے ساتھ مت جوڑیں اور اس جیسا حشریز کا مت ہونے دیں جو عرب سپرنگ کا ہوا ہے۔ یہ ایک بریک بائی بریک، ایک سٹیپ بائی سٹیپ سٹرگل ہے، اور یہ جو قدم آپ نے اٹھایا یہ بیبی سٹیپ ہے، اس کو بیبی سٹیپ سے آگے مت سمجھیں آپ۔ ابھی آپ کے گرنے کے اور گھٹنوں کے بل چلنے کے اور رینگنے کے بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں، اس لیے آپ اس کو اس طریقے سے اگر دیکھیں گے تو جہاں مجھے یہ بہت بڑی انکریجمنٹ ہے، حوصلہ ہے اور بڑی ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ ہے کہ لوگوں میں ایک لہر آئی ہے، دوسری طرف میں اس چیز کو بھی دیکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر کے تو ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیں جس کا بیک لیش بہت زیادہ ہے اور اس کو ہم سنبھال نہ سکیں۔ جی شکریہ۔ اب دوبارہ ہم ایک اہم چیز کی طرف آتے ہیں کہ جو سماجی سائنس میں جب عوام احتجاج کرتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد بھی آپ نے بات کی، یہ ڈیفائن کر دیجئے پلیز دیکھنے والے آڈینس کے لیے کہ تحریکیں کیوں ہوتی ہیں اور کس کے خلاف ہوتی ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ لوگ کیا پولیس والے کے خلاف احتجاج کریں گے جو حکم کا پابند ہے، لوگ ایم ایل اے کے خلاف یا کسی منسٹر کے خلاف احتجاج کریں گے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ جو احتجاج جگہ جگہ پر ہو رہے ہیں بنیادی انسانی ضروریات کے لیے ہو رہے ہیں، کیا ان کو قومی آزادی کی تحریک کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے بھی آپ نے بتایا حق حکمرانی، حق ملکیت نہیں ہے، مالی، انتظامی، سیاسی اور پھر سفارتی اختیارات بھی نہیں ہیں، تو ان کو کیسے آپس میں جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں درمیان میں کہ کیا ان کے خلاف کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے یا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا یہ لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی بات بنتی ہے، کوئی جدوجہد بنتی ہے، تو اس کا جواب ظاہر ہے ہاں میں ہے۔ اگر یہ لوگ قابض قوتوں یا حکمران طبقات کی اعلیٰ کاری کا رول پلے کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آزاد کشمیر میں ہم لوگ جو لفظ سہولت کار استعمال کرتے ہیں حکمران طبقات کے لیے، یہ غلط لفظ ہے، یہ سہولت کار نہیں ہے۔ سہولت کار جو فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے اپنے مفادات کسی قضیے یا تنازع کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، بلکہ وہ اپنے مفادات سے بالا ہو کے تو دو قوتوں کے درمیان جو ہے ایک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کسی سچویشن کو۔ یہ اعلیٰ کار ہیں، یہ جو ہیں یہ ٹولز ہیں جو کہ ایک ناجائز قسم کی قانون سازی کو یا ناجائز قسم کے قبضے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے میں اعلیٰ کار کے طور پہ رول پلے کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے اگر کوئی ممبر آف اسمبلی کھڑا ہو کے یہ تقریر شروع کر دے کہ نہیں جی ہمیں حق حکمرانی نہیں چاہیے، یعنی یہ دنیا میں 21ویں صدی میں سب سے بڑا لطیفہ ہوگا، اور آج سے 100 سال بعد جب لوگ تاریخ لکھیں گے تو وہ اس کو کوٹ کریں گے کہ کسی ملک یا قومیت یا قوم یا علاقے یا ریاست کا ایک جو ہے وہ قانون ساز ادارے کا ممبر تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہمیں اختیارات نہیں چاہیے، یعنی تم لوگ آ کے تو ہمارے بارے میں ڈیسیجن جو کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو بالکل درست ہے، جس کے صرف دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ ذہنی اور جسمانی طور پہ ٹوٹل جو ہے وہ فزیکلی اور مینٹلی چیلنجڈ لوگ ہیں، میں معذور کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، اور آپ جو ہے آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ اور اپنے معاملات کے بارے میں کسی بھی طریقے کی کوئی سوجھ بوجھ یا سکل موجود ہی نہیں ہے، تو آپ کہیں سے لوگوں کو بلا کے تو آ کے کہیں کہ جی آپ آ کے ڈیسیجن کریں کہ ہم نے یہ پانی کا نلکا لگانا ہے یا یہ بجلی کا کھمبا لگانا ہے یا یہاں پہ کس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے یا کس طرح کا کلچر پروموٹ ہونا چاہیے، یا تو اس کی ایک وجہ ہو، تو یا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہ ہو اور آپ مکمل طور پہ بکے ہوئے ہوں بیرونی قوتوں کے، یا ان کے آپ بکے ہوئے نہ بھی ہوں، تو تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ذہنی طور پہ غلامی کی اس قدر گہرائیوں میں دھنس چکے ہوں کہ آپ کو غلامی اور آزادی کے درمیان فرق کرنا ہی نہ آتا ہو، کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا رول جو ہے وہ ایک اعلیٰ کار یا ٹاؤٹ کا رول ہے، آپ کا رول کسی پالیٹیشین یا فیسیلیٹیٹر کا رول نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس کے خلاف بات کریں، تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں ایسی صورت نہیں، تو ظاہر ہے ان کے خلاف ایک تحریک بنتی ہے،
लेकिन उस तहरीक में उसमें एक पुलिस वाला भी शामिल होता है जो हुक्म का पाबंद है। और ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जब बात पुलिस वाले की आए, यानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो हम जो भी तहरीक चलाएं उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो लीगल पैरामीटर्स हैं, जो भी उस मुल्क के अंदर कानून है, सही है या गलत है, उसके अंदर रह के अपनी बात करें। क्योंकि अगर हम उससे बाहर कदम इस बुनियाद पे निकालते हैं कि चूंकि जी ये कानून ही गलत है और हम नहीं मानते, तो उसमें रियासत को जो है वो रिप्रेशन का और जुल्म तशद्दुद का एक मौका मिलता है कि जी ये कानून का एहतराम नहीं करते। कानून में इस तरह के सुकम जो हैं वो हर नौ आबादियाती स्ट्रगल में और आज़ादी की तहरीकों में दुनिया भर में मौजूद रहे हैं, जिसको लोगों ने तोड़ा भी है, लेकिन वो इस तरीके से तोड़ा है पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान कि खुद वो कवानीन जो है ना वो बदले और बदलने पड़ गए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होगा, लेकिन इसमें वायलेंस का आंसर नहीं शामिल होना चाहिए। मसलन आप जो है वो किसी पुलिस वाले पे हमला कर दें, उसके साथ जो है वो फिजिकल किस्म का इंटरेक्शन या इस तरह की चीज़ें, इसकी मैं समझता हूँ कि बचना ही सबसे बड़ी जो है वो बात है। बाकी रहा सवाल ये तहरीक का, तो देखें तहरीक में तो इन लोगों को जब आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका रद्द अमल तो होगा, और उसमें जाहिर है कि हुक्मरान तबकात को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अपने लोगों के खिलाफ यूज़ ऑफ फोर्स और जुल्म व तशद्दुद का जो रास्ता है वो बहरहाल किसी भी तरीके से जो है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। और ये हम देख चुके हैं कि इस तरह का जुल्म व तशद्दुद जो है वो तहरीकों को अल्टीमेटली जो है वो बूस्ट अप करता है, उनको रोक नहीं सकता। साथ सर ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए कि एक तो अवाम है इस आज़ाद कश्मीर की, मुख्तसरन करके हम आगे भी चलेंगे। ये आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप है ये इतना बेतौकीर क्यों हुआ है कि जो हुक्मरान होता है वो तो कहता है मैं ठीक हूँ, वही हुक्मरान जब अपोजिशन में जाता है तो कहता है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और करप्शन जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो तो जुबान ज़द-ए-आम है। क्या इस सेटअप की वजह से ये जो अवाम और हुक्मरान के दरमियान, क्योंकि अवाम, हुक्मरान और रियासत इन तीनों का एक ट्रायंगल होता है किसी भी समाज में, और उस ट्रायंगल में जो रियासत का फ़र्द के साथ कनेक्शन होता है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो हुक्मरान ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे वो चीज़ें तय होती हैं, और फिर रियासत का एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम के साथ वो बनता है। अब यहाँ पर जो चीज़ें पिछले 2-4 दिनों से मैं उसको देख रहा हूँ, मज़ीद ये 14-15 अगस्त के दिनों में ही गालिबन, तो ये जो वहाँ पर एक अलग से बात निकल पड़ी है कि जो पाकिस्तान के वहाँ पर झंडे थे वो लोगों ने उतारना शुरू कर दिया। हालांकि वो एक तनवीर अहमद ने उतारा, उसके साथ क्या हुआ, अब लोगों ने खुद ही उतारना शुरू कर दी है। वहाँ पे जो पुलिस जो इंतज़ामिया है वो तो कुछ नहीं कर रही। अब वहाँ पे पाकिस्तान की जो फ़ौज की गाड़ियाँ हैं उनको रोक कर दो, उनके खिलाफ नाराबाजी हो रही है और फिर उनको वापस भेजा जा रहा है। जहाँ जहाँ फौजी किसी स्कूल में या किसी जगह पे जश्न आज़ादी बना रहे थे पाकिस्तान की, तो आम लोगों ने आके, जो यंगस्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आके उनको काउंटर करना शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में ये जो आज़ाद कश्मीर का हुक्मरान तबका है, क्या ये ऐसी कोई पॉलिसीज़ दे रहा है या देगा कि जिससे एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली एक जंग, एक नफ़रत शुरू होगी? उस ज़िम्रे में आप क्या समझते हैं कि क्या इस आज़ाद कश्मीर के बेतौकीर हुक्मरानों को ये बैठ के नहीं सोचना चाहिए कि ये रियासत जम्मू और कश्मीर का जो मामला है या जो कश्मीरी सेंटीमेंट है वो किस कदर हसास है, वो अपनी भी इज्जत करवाएं और अपनी कौम की भी इज्जत करवाएं? इस पे आप उन्हें क्या ब्रीफ करेंगे? देखें जी, पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए ना कि आज़ादी की कोई लड़ाई या जदोजहद जो है वो नफ़रत की बुनियाद पे नहीं होती, और वो ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ जिन कुव्वतों से आज़ादी मांग रहे हैं वो आपकी कोई अज़ली और अबदी दुश्मन है। चूँकि ये जो आज़ादी मांगने का तसव्वुर है ये आपका राइट है, और अपने राइट्स की बात करना जो है वो किसी भी तरीके से इस बुनियाद पे नहीं होता कि आप किसी काम से नफ़रत करते हैं तो इस बुनियाद पे हम राइट मांग रहे हैं, बल्कि हम राइट इसलिए मांग रहे हैं कि ये हमारे इनहेरिटेड राइट हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, और इनको जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान जो है वो सिविलाइज्ड हुआ है या इंसानी समाज में उसने अगला कदम उठाया है उसमें इन राइट्स को तस्लीम किया गया। तो इस हिसाब से ही हमें इसको भी देखना चाहिए
لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ تحریکیں چلتی ہیں عوام کے اندر غصہ ہوتا ہے، انگزائٹی ہے، ریسٹ لیس قسم کے جو ہے سچویشن ہوتی ہے، اس میں جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کے خلاف ظاہر لوگ رد عمل دیتے ہیں۔ یہ تو وہاں کی فورسز جو ہیں باہر کی، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں، اور جو ان کے لیے غیر متنازع مثلا پاکستان کی فوج ہے یا وہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے یوم آزادی کا، تو اس کو ان کو پورا حق پہنچتا ہے، لیکن ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی اس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے کہ کسی دوسری نیشن کو یا نیشنلٹی کو یا گروپ آف پیپل کو یا پاپولیشن کی کسی خاص سیگمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے تمہارے سامنے آزادی کا یہ جو عمل ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اریٹیٹ کیا جائے۔ تو اس سے جو ہے اجتناب کرنا ان کا کام ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کہیں نوجوان جو ہیں وہ غلط ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ان کے اندر تو ایک جو ہے غصہ اور ایک طرح کی جو ہے وہ جذباتی کیفیت موجود ہے جو ہونی بھی چاہیے کسی بھی نوجوان کے اندر جو کسی تحریک کا حصہ ہے۔ لیکن آگے جو لوگ ہیں دوسری طرف جو اس طرح کی کچھ سیلیبریشن کرتے ہیں ان کو لوکل سینسیٹیویٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہے اس کا رزلٹ وہی نکلتا ہے جو باقی دنیا میں نکلا ہے اور کشمیر کے باقی حصوں میں نکلا ہے، جہاں پہ کہ پھر ایک پرامن جدوجہد جو ہے وہ ایک پرتشدد اور پر نفرت جس کو آپ کہتے ہیں قسم کی کارروائیوں میں بدل سکتی ہے، جس کو پھر کنٹرول کرنا جو ہے وہ سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب تحریکیں منظم ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو عوام ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے جدوجہد کرتی ہے، بنیادی طور پہ شروعات تو اپنے حقوق سے ہوتی ہے، اور پہلا حق جو ہے وہ زندگی کا ہے، وہ جینے کا ہے، اس کے بعد باقی حقوق ہیں۔ اس صورتحال میں آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو احتجاج کے جو رسم و رواج ہیں، طریقے ہیں، وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ تھوڑی تعداد میں اگر عوام ہوتی ہے تو پولیس والے جو ہوتے ہیں انتظامیہ کہتی ہے جی ان کو کرش کرو، اور پھر اگر عوام زیادہ ہوتی ہے اور پھر پولیس والوں کو کھانی پڑتی ہے، وہی وائلنس کا تشدد اس میں عنصر آ جاتا ہے، اس میں وائلنس کا۔ اس صورتحال میں ایسے نان وائلنٹ پولیٹیکل مینز آف احتجاج جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ بائک آؤٹ کریں کسی چیز کا، بلیک آؤٹ کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہذب قسم کے احتجاج جو دنیا میں ریکارڈیبل بھی ہوں، کاؤنٹیبل بھی ہوں، اور اس سے اور اگین پھر قیادت جو ہے اس کا یہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو بھی بچائے، اپنے لوگوں کو بھی بچائے، اور کیا موجودہ صورتحال میں اس احتجاج کے دوران کیا آپ کو قیادتوں کا بحران نظر آیا؟ اور اگر قیادتوں کا بحران ہوتا ہے تو کیا کوئی لیڈر لیس وائلنس یا انقلاب کی طرف لوگ جا سکتے ہیں؟ اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا۔ نہیں، فی الحال تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک جس طریقے سے چلی ہے یہی رنگ ہوتا ہے تحریکوں کا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اپنے اپنے معروض کے مطابق، علاقے کے مطابق، وہاں کی جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے مطابق کچھ فرق ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہ جو بھی تحریک چلی پونچھ میں یا مظفر آباد میں یا کشمیر کے آزاد کشمیر کے دیگر حصوں میں، اس کے اندر یہ پیسفل تحریک تھی مجموعی طور پہ، جائے کہ اس میں چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ رولنگ ایلیٹ پہ عائد ہوتی ہے۔ کسی بھی اس طرح کی سچویشن میں آپ 100% جو ہے وہ صرف مظاہرین کو یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ غم و غصے کا شکار عوام کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس میں زیادہ ذمہ داری بنیادی طور پہ جو ہے وہ آتی ہے رولنگ ایلیٹ کی، کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں کوئی اس طرح کا عوام کا غم و غصہ کہیں وائلنس اور تشدد کی شکل نہ اختیار کر جائے یا ہاتھوں سے باہر نہ نکلے۔ تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہے۔ جہاں تک سوال لیڈرشپ کا ہے تو آپ یہ دیکھیں ابھی تک اس تحریک کے اندر ایک جو سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے جو ہر صورت میں ڈیسیجن میکنگ کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اس کے نتائج کے ذمہ داری قبول کرتی ہے، وہ تو ابھی تک موجود نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ڈی سینٹرلائز قسم کی ایک خود رو قسم کی آپ یوں سمجھ لیں کہ تحریک ہے، جس میں کہ لوکل سطح پہ مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے
انفلوئنس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تحریکیں چلی ہیں وہ ان کا ابتدائی سٹیج یہی ہوتا ہے, اور اسی تحریک کے نتیجے میں پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے. یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ لیڈرشپ نے جو ہے وہ بیٹھ کے تو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کسی تحریک کو سٹارٹ کر کے انجام تک پہنچایا ہو. یہ ہمیشہ تحریک کے اندر سے تحریک کی ضرورت اور تاریخ کے ضرورت کے مطابق جو ہے وہ لیڈرشپ ابھر کے سامنے آتی ہے, اور بالکل ایسے ہی یہاں پہ بھی ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اس وقت جدوجہد کے اندر ہیں, فور فرنٹ پہ ہیں, یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, وہ الگ ہو جائیں گے یا ان کا لیڈرشپ رول نہیں رہے گا. لیکن جو سینٹرل ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے ارد گرد بلاخر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو ان تحریکوں کے نتائج کی ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراتی ہے اور اس کو صحیح سمت میں موڑنے یا رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ خود بخود جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پروسیس میں آئے گی. وہی ایک شعر یاد آیا مجھے, چلے اندھیر سمجھ کر جنہیں بجھا دیا تم نے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بہرحال ہم روشنی کی دعا کرتے ہیں, اندھیرے کی دعا کبھی نہیں کرتے. دوسرا یہ جو راولہ کوٹ کے اندر ایک جو کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے, اور اس راولہ کوٹ کی یہ بات مشہور بھی ہے کہ ماسر حسینی بجھنے نہیں. تو بہرحال وہاں پر جو ایک جو آل پارٹیز جو ہوتا ہے ایک کانفرنس تھی, اس کے درمیان جو لوگ احتجاج کر رہے تھے, نعیم صاحب زاہد صاحب غالباً ان کا نام ہے, جو حکومت نے ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو 15th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے, حالانکہ مجھے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کہتے ہوئے بھی تھوڑی شرم اس لیے آتی ہے کہ غلام قوموں کے ایکٹ ہوتے ہیں اور ان پہ قابض قوتیں ہی ایکٹ نافذ کرتی ہیں. ہمارے ہاں ایکٹ 74 ہے, اور جب بر صغیر پاک و ہند کے جب یہ پورا متحدہ ہندوستان غلام تھا تو انڈین ایکٹ 1935 تھا. تو کب یہ اپنا آئین بنائیں گے؟ بہرحال اس پر بھی ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 15 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو ٹیبل نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کل اس کو ٹیبل بھی کر دیا اور اس کے لیے اب وہ ووٹنگ بھی کریں گے. تو یہ جب ایک اہم شک جس کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے, کیونکہ اس 15 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو لے کر اور پھر وہ ٹورزم ایکٹ کو لے کے لوگ یہی اس کو آپس میں کنسیڈر کر رہے تھے کہ یہ وہی اقدام ہے جو 5 اگست 2019 کا ہے, 35A اور 370 کا. اس صورتحال میں آپ یہ بتائیے گا, لوگوں نے پھر وہاں سے جو عوامی اتحاد کمیٹیاں ہیں, آل پارٹیز کونسل ہے, ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے تو مشاورت شروع کر دی ہے. اس صورتحال میں جب حکومت نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے, اور میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ وہ پورے ہوں گی بھی نہیں, کیونکہ ان کے یہ اختیار میں ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ سے حکومتیں یہی کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ حکومت کے پیش آتا ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, اور مذاکرات کا عمل مشکل ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم کمیٹی بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, 15 دنوں میں یہ ہوگا, 20 دنوں میں یہ ہوگا. اس پورے اگین پھر بات وہی ہے کہ جو لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے جو اس سب چیزوں کو لیڈ کر رہی ہے, اگر حکومت اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتی اور اپنی کسی ایک بھی شک سے اگر وہ ڈاؤن گریڈ کرتی ہے, تو کیا وہ معاہدہ عملی طور پہ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی جو آپ نے اٹھایا. میں نے دیکھا کہ یہ بڑے پیمانے پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں کہ 15 امینڈمنٹ کے حوالے سے کیا ہوا جی, یہ قرارداد دوبارہ پیش ہو گئی. پہلی بات یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا اس میں کہیں نہیں یہ لکھ کے دیا حکمرانوں نے, یا لکھ کے دینا چاہیے تھا کہ آزاد کشمیر کا جو عبوری آئین ہے اس میں 15ویں ترمیم ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ ترمیم جب بھی آپ آئین میں کرتے ہیں تو اس کا ایک آرٹیکل آتا ہے جیسے 14ویں 13ویں 12ویں اس نمبر سے, تو ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ 14 ترمیمیں ہو گئی ہیں تو 15ویں ترمیم تو ہوگی. وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 15ویں ترمیم کا جو مسودہ پیش ہوا تھا اور جن چیزوں پہ ترمیم ہو رہی تھی وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں پیش کی جائے گی اس شکل میں, بلکہ اس میں لفظ یہ ہیں کہ اس شکل میں, جس کا مطلب یہ تھا کہ وہی جو چیزیں ہیں ان کو مختلف شکلوں میں مختلف انداز میں جو ممکن ہے دوسرے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل یا ناٹ ایکسیپٹیبل ہوں ان کو لایا جائے گا. تو اب یہ جو 15ویں ترمیم ہی ہے, چونکہ 14 ترمیمیں ہو گئی, تو 15ویں ترمیم جو ہے اس کا فوکس یا نقطہ جو ہے وہ نہیں ہے جو 15ویں ترمیم کے مسودوں میں تھا, بلکہ یہ ایک نیا مسودہ ہے جو صرف بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہے.
जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के बजाय बल्दियात कमिश्नर बल्दियात की निगरानी में होने चाहिए, जिसका कि उस 15वीं तरमीम के जिस पे ये सारी बहस हुई, ये जुलूस जलसे निकले, उनमें से कोई भी शिक इसमें शामिल नहीं है। अब वही शिकें जो हैं वो 16वीं तरमीम में लाई जा सकती हैं कि जब 16वीं तरमीम टेबल हो तो उसका मतलब एग्जैक्टली वही हो सकता है जो उस वक्त 15वीं तरमीम का था। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से लोगों को ये समझना चाहिए कि 15वीं तरमीम इटसेल्फ जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि बुरी चीज़ ये थी कि 15वीं तरमीम के अंदर मांगा क्या जा रहा है, कानून क्या बनाया जा रहा है, तो उनमें से कोई सब्जेक्ट भी इस तरमीम के अंदर शामिल नहीं है। आल दो कि ये जो सब्जेक्ट है ये भी मुतनाज़ा है और इस पे भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े एजिटेशन के चांसेस हैं, चूँकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि देखें ये बल्दियाती इंतखाबात अवाम की हक़ हुक्मरानी अवाम को मुंतकिल करने का नाम है, एक इब्तदाई शक्ल में ही सही, लेकिन ये इसी चीज़ का नाम है जो कि एक बहुत बड़ा एक प्रोग्रेसिव किस्म का स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है किसी भी सोसाइटी के लिए। और दुनिया के किसी मुल्क ने आज तक तरक्की याफ्ता होने की शक्ल इख्तियार नहीं की जब तक वहाँ पे पावर जो है वो लोकल लोगों के हाथों में मुंतकिल नहीं हुई। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया तक देखते जाएं कि सिटीज़ के, छोटे छोटे टाउन्स के, टाउनशिप्स के, विलेजेस के जो कानून हैं, वहाँ पे जो वसाइल की तकसीम है, वहाँ के जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो ज़ाहिर है लोकल लोग बनाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कि यही चीज़ कश्मीर में भी है, आज़ाद कश्मीर इससे कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसमें भी आपको ये बल्दियाती इंतखाबात कराने पड़ेंगे और बिलाखिर जो इक़्तिदार है वो अवाम को मुंतकिल करना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने ये तरमीम कर दी जिसको लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक डिले टैक्टिक्स है जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों ने जो 47 से लेकर ये आज़ादी का शोर डाला हुआ है ना, और हिंदुस्तान के खिलाफ तोपें लेके बैठे हुए हैं, ये अगर पहले दिन हमें अदराक हो जाता ना, तो आज से 30 साल पहले जब इन्होंने इलेक्शन कराने बंद कर दिए थे तो ये क्या चीज़ थी। जब आप ये तय करें, अवाम को डिनाई कर दें उनके जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, तो अवाम उस पर खामोश रहें और उसके बावजूद वो जलसे भी करें, जुलूस भी निकालें, लेकिन उनकी तोपों का रुख जो है वो सरहद के उस पार हो और यहाँ की कोई बात ही ना करें, और आपका माटो ये बन जाए कि हमारी आज़ादी का रास्ता श्रीनगर से होता हुआ मुजफ्फराबाद आता है, बल्कि वहाँ भी नहीं रुकता, इस्लामाबाद जाता है। यानी आपकी असल आज़ादी जो है वो पूरे कश्मीर को लेके तो इलाके पाकिस्तान करना है। और ये आपको कभी ख्याल नहीं आया कि हम जो अपने वसाइल हैं, मेरे मोहल्ले में जो पानी है उस पानी को क्या पुख्ता करके उसके अंदर कितने नलके लगाने हैं और कितने लोगों को देना है, ये काम करने का मुझे इख्तियार नहीं। तो मैं जाके तो श्रीनगर में ये तय करने बैठ जाऊं कि जी दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं जो है ख्यालात की दुनिया में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा तसव्वुराती जो है और इस तरह की सोच रखता हूँ, या फिर ये है कि मैं कॉन्शियसली एक मिसगाइडेड किस्म की जो है वो थ्योरी पे अमल कर रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ है। तो इसलिए अब अगर अवाम जाग गए हैं तो ये जो एक्ट में उन्होंने किया ना, ये मैं आपको बता दूं कि इसके खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हो सकती है। और ये जो आज़ादी की लड़ाइयाँ होती हैं ये छोटे छोटे पॉइंट पे लड़ी जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें से एक मशहूर तरीन एक्ट उनका नमक बनाने का था। अब नमक बनाना आप देख लेंगे कोई बहुत बड़ा कारनामा तो नहीं है ना, कोई भी कहीं पानी में बैठ के वो जो प्रोसेस है उसमें नमक बना सकता है, कितना एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन उसका मैसेज कितना बड़ा था जिसके आगे ऑलमोस्ट जो है वो इंग्लिस्तान के हुक्मरानों को घुटने टेकने पड़े। चूंकि नमक बनाने का मतलब ये था कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं भाई, हमें इतनी सलाहियत है, इसलिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये जो बल्दियाती इंतखाबात का किस्सा है, इसमें इस वक्त अगर वहाँ के विलेजेस के लोग, डिस्ट्रिक्ट्स के लोग, म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग जो हैं वो निकल के आएँ और कहें कि नहीं भाई ये कानून आप नहीं बना सकते, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इलेक्शन कमीशन कराता है या बल्दियात कराता है, लेकिन इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप इसको मज़ीद डिले करके तो 30 साल का एक जो किस्सा है उसको 35 पे नहीं ले जा सकते।
आप इसको ख़त्म करें और हमारे राइट हमें दें, और यही होगा। ये बात आप याद रखें कि ये जो है इस तरह का, ये हालांकि इसमें आप ये भी देख लें कि सारे जो है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो इसमें एक साथ हैं, जो इस चीज़ की अलामत है जिसके लिए मैंने कहा था कि इन लोगों को फैसिलिटेटर कहना फैसिलिटेटर्स की तौहीन है। ये आला कार हैं, ये फैसिलिटेटर नहीं है। और वो कैसे जमा हो गए अवाम के हुकूक के ख़िलाफ़? उनमें से किसी एक मेंबर को आप अलग करके पूछें कि क्या जो है वो ये जो पावर की मुंतकिली, ट्रांसफ़र ऑफ पावर है टू द लोएस्ट लेयर्स ऑफ पीपल, क्या ये गलत है? तो क्या वो कह सकता है कि ये गलत है? ज़ाहिर है नहीं कह सकता ना। लेकिन वो जो है अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी असम्बली में बैठ के वो इस तरह का कानून बना सकता है। और यही जो है वो 75 ईयर से आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है कि वहाँ पे हम लोग जो हमारे लीडर हैं वो वहाँ बैठ के हमारे ख़िलाफ़ कानून बनाते हैं। वहाँ से वो हमारी खर्चे पे, हमारी गाड़ियों पे बैठ के जाके इस्लामाबाद में बैठ के हमारे ख़िलाफ़ कंस्पिरेसीज़ में हिस्सा लेते हैं। वहाँ से काले क़वानीन जो हैं वो ले आके हम पे मसलत करते हैं, उसकी वजाहतें करते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं। लेकिन जो रास्ते अवाम की आज़ादी, उनके हुकूक की तरफ जाते हैं, उस पर कोई नहीं चलता। तो ये चीज़ें अब अवाम को अपने हाथ में खुद लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा और उसमें आपकी राय भी ज़रूर लूँगा कि अगर ये बलदियाती इलेक्शन हो गया और जिस तरह से आपने कहा कि जो सेंट्रलाइज पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और आम आवाम के हाथों में ये सारे इख्तियारात आ जाएंगे, तो ये जो आज़ाद कश्मीर के 5-7 बड़े सियासी ख़ानदान हैं, मैं नाम लेता हूँ, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से सरदार इब्राहिम खान साहब की औलादें, उनको इक़्तिदार में फिर कौन देखेगा? साथ ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कयूम खान साहब की औलादें काबिल मोहतरम है, लेकिन हमारा सियासी लोग, हम सियासत पे बात तो करेंगे, उनको आगे से कौन फिर वोट देगा? फिर इसी तरह से आप चले जाएं सरदार सिकंदर याद साहब की फैमिली, और आज तैयार हो रहे हैं मेरे ही हल्के से इनकी फैमिली, सरदार तनवीर इलियास साहब की फैमिली, बैरिस्टर साहब की फैमिली, चौधरी यासीन साहब की फैमिली, मुमताज़ राठौर साहब की फैमिली, राजा फारूक हैदर साहब की फैमिली। ये लोग फिर इनको कौन वोट देगा? असल में ये तो चाहते हैं कि आवाम गुलाम रहे, टूटी नलका, पैप, खंबा, लकड़ी, नौकरी, इसकी सियासत में यह है कि हमारे लोगों को लगाए रखें। हालांकि दुनिया में जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, वहाँ पर जब ये काउंसिल्स के पास अख्तियारात आ जाते हैं, हालांकि जो बलदियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं ये भी उस तरह का एक वेल डेवलप्ड जो होता है वो सिस्टम नहीं है, लेकिन चलें उसको भी बंदा बेहतर कर सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि जो जॉब्स होती हैं वो काउंसिल क्रिएट करके देती है, या पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप के इदारे करके देते हैं। अगर कोई बेरोजगार है तो उसको अलाउंस काउंसिल देती है, स्कूल बनाने हैं तो काउंसिल बनाती है, पानी का मसला करना है तो काउंसिल करती है, घर बनाने हैं तो काउंसिल करती है। ये बुनियादी तौर पे होता है सिस्टम। लेकिन हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर का जो हुक्मरान तबका है, जो MLA हैं, उनको तो ये काम ही ऐसा किया गया है ना कि उनके हाथों में पैसे देकर लोगों को खरीदना, उनकी मजबूरियाँ खरीदना इलेक्शनों में, वो फिर उनसे नारे मरवाना, किसी को ये नौकरी देना, किसी को वो नौकरी देना, और इस सिस्टम पे कब्जा रखना। इसमें अगर आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहें या हमारी रहनुमाई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। वैसे इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, यहाँ कनाडा में मैं 2-3 लोगों को जो है देखता हूँ, और एक को तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ, जिन्होंने नेशनल असम्बली की सीटें छोड़ के और उसके बाद सूबाई असम्बली की सीटें छोड़ के तो सिटी काउंसिल के इलेक्शन लड़े और वहाँ पे इलेक्ट होके तो एक नई ज़िंदगी शुरू की। अब इसकी क्या वजह है? ज़ाहिर है मरात और वो जो आपकी शख्सियत और वो सारी चीज़ें, उस हिसाब से तो बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये डेमोक्रेसी का कमाल है कि इसमें शख्सियतों की इम्पोर्टेंस, ओहदों की इम्पोर्टेंस, आप कौन हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या आपकी मेंबरशिप है, इन चीज़ों से जो है वो नहीं देखी जाती, चूँकि यहाँ इक़्तिदार अवाम के हाथों में है। और यहाँ जो पॉलिटिशियन है वो ये देखता है कि मैं प्रैक्टिकली अवाम की खिदमत किस फोरम पे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। चूँकि ज़ाहिर है डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि अवाम का खादम, एक जो है सर्वेंट जिसको आप कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सियासत एक फ़राउनियत का सिंबल है, और उसी के नतीजे में हमारे यहाँ ये मोरूसियत का जो तस्वर है कि जी आपके बाप दादा से ये चीज़ चली आ रही है, तो उसमें अगर वो लोग अपने आप को मॉडिफाई करें
تو دیکھیں آپ کے یورپ کے اندر، بیلجیم میں، انگلینڈ میں تو ابھی نہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہوا کہ جو بڑی بڑی اس طرح کی ڈائناسٹیز تھی، ان کے آگے آنے والے لوگوں نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کر کے تو ایک نئے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا۔ تو اس میں اگر کوئی کسی سردار ابراہیم کے صاحبزادے ہوں یا سردار قیوم کے صاحبزادے ہوں، ان کو محض اس وجہ سے بھی ہم جو ہے کرٹیسائز نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ ان کے صاحبزادے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو میرٹ پہ پروو کرتے ہیں کہ ہم الیکشن میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم عوامی خدمت کی بنیاد پہ، اس بنیاد پہ نہیں کہ ہمارے باپ یا دادا نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو پھر ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے، چونکہ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ جب آپ کسی شخص کو اس لیے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو تھانے میں کرسی نہیں دیتے یا عدالت میں رسپیکٹ نہیں دیتے، تو یہ ڈسکریمنیشن ہے نا اگینسٹ اے اسمال گائے۔ بالکل اسی طرح یہ ڈسکریمنیشن ہے اگینسٹ اے بگ گائے کہ یہ چونکہ جی سردار ابراہیم کا بیٹا ہے اس لیے اس کو نہیں آنے دیتا میں، تو یہ اسی کی ریورس شکل ہے۔ تو اس لیے اگر کسی میں صلاحیت ہے وہ الیکشن میں آئے، عوام کی خدمت کرے، ان کی قبروں پہ جائے، ان کے وہ جو ہوتے ہیں پنچایتیں ان میں جائے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، جس طرح خالد ابراہیم صاحب نے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لیا تھا اس طرح کے پروسیس میں، تو کوئی بھی ان کی اس بات کو چیلنج نہیں کرتا تھا کہ ان کا رائٹ اس لیے بنتا ہے کہ یہ سردار ابراہیم کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اس لیے بنتا ہے کہ انہوں نے باقی سیاستدانوں کو بھی اس پرابلم میں ڈال دیا تھا کہ وہ گاؤں کے فلاں ایریے میں ایک آدمی مر گیا تو وہاں بھی جا کے آپ نے تعزیت کرنی ہے۔ تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں اور جو کسی بھی دھرتی کے پیسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو یہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کریں، تاکہ ڈیموکریسی خود اپنے پروسیس میں یہ سارے مسئلے جو ہے ان کو ریزالو کر دیتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ بلدیاتی انتخابات ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بلدیاتی انتخابات بڑے بڑے فرونز جو ہیں ان کو جگہ پہ لے آتے ہیں۔ اگر ہمارے بلدیاتی انتخابات جو شروع ہوئے تھے 80s کی دہائی میں، وہ اگر کنٹینیو رہتے تو آج آپ دیکھتے کہ آزاد کشمیر ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ جگہ ہوتی۔ تو یہ اب بھی وقت ہے کہ وہاں کے نوجوان لوگ جو ہیں اپنے فیوچر کی خاطر اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے وہاں کی جو سول لبرٹیز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جس میں یہ صحت ہے، تعلیم ہے، ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ زور دیں۔ اور ڈیموکریسی کا سب سے بڑا اور اہم ترین جو پڑاؤ ہے وہ بلدیاتی انتخاب ہے، اس کے بغیر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی۔ یہ تو اوپر سے 8-10 لوگ وہی مراد یافتہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ آپس میں 20-30-40 سیٹیں بانٹ کے تو جو مرضی کرتے پھریں، تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ نہ ڈیموکریسی ہے اور نہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد جو اس علاقے کی ری ہیب کے لیے جو باہر سے پیسہ آیا تھا، روف کلاسرا ہیں پاکستان کے بڑے ویل نون جرنلسٹ انویسٹیگیٹو صحافت کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ $5 بلین، آپ امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا پیسہ ہے کہ پاکستان 1.5 ارب سالانہ لینے کے لیے ڈالرز جو ہے وہ IMF سے معاہدے کرتا ہے اور سارا کچھ کرتا ہے۔ اتنا بڑا پیسہ جو تھا وہ آیا، اور اس یہ جو علاقے تھے موسٹلی آزاد کشمیر کے تھے، بالا کوٹ برا کو چھوڑ کے، ایبٹ آباد کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کے، یہ سارے پیسے وہ کھا گئے۔ ان پیسوں کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، اور یہ پیسہ کنہوں نے کھایا؟ میں سرے عام کہہ رہا ہوں، جنرلوں نے کھایا، سیاستدانوں نے کھایا، بیوروکریٹوں نے کھایا، ججوں نے کھایا، جن نے کوئی اس پہ وہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہی۔ اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہوتے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو وہ جو پیسے تھے وہ ڈائریکٹ لوکلی تحصیلوں میں جاتے، ضلعی سطح پہ جاتے، چھوٹے چھوٹے یونین کونسل وارڈ میں جاتے، BD کے پاس جاتے کہ کس کا گھر گرا ہے، کس کے پاس روزگار نہیں ہے، کس کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، کس کی مویشی جو ہے وہ نقصان میں ساری وہ ہو گئی، اس کو پیسے ملتے کہ چلیں اپنی زندگی کی، کس کی دکان گری ہے وہ اپنا لائیولیہوڈ دوبارہ شروع کرے۔ آج بھی میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دوں کہ بوسا گلا ہائی اسکول ظاہر ہے اس میں سابق وزیر اعظم نہیں، وہاں پہ سابق صدر رہے، وہاں اسٹوڈنٹ رہے، اسپیکرز رہے اور بڑے بڑے لوگ رہے۔ وہ عمارت گری تھی زلزلے میں، آج تک وہ تعمیر نہیں ہو سکی، اور وزیر اعظم اسی حلقے سے اور کہہ رہے تھے کہ میں تھوراڑ میں IT یونیورسٹی بناؤں گا۔
وہ جو یونیورسٹی بنا رہے ہیں، ان کو جو تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ وہاں سے مل رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا اسکول، اس اسکول کی آج تک دیواریں جو ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے، یہ وہ اتنا خوفناک قسم کا چور ہے کہ اسکولوں کے بچوں کی دیواروں کے پیسے بھی کھا گئے. چلو کوئی بندہ ڈھنگ سے کھائے، کوئی چھوٹی موٹی چیز کھائے تو سمجھ آتی ہے، بچوں کی دیواروں کے اسکولوں کے وہ سارے کھا گئے. بہرحال آخر میں کافی وقت ہو چکا، میں بھی اپنی جو خطبہ یا تقریر ہے اس کو کم کر کے آپ سے سوال پوچھوں کہ کیا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، آپ نے سارے انگریڈینٹس کو گنا، لوگوں کے سینٹیمنٹ کو دیکھا، سمجھا، ایک ارتقائی سفر پر بھی بات کی. اب آزاد کشمیر کتنا آزاد ہے، اور یہ حقیقی طور پہ وہ آزادی جو کہ عوام کے حق کے حکمرانی پہ یقین رکھتی ہو، اور عوام کو یہ اجازت ہو کہ وہ بولے بھی، وہ سوال بھی کرے، وہ جلسے جلوس بھی کرے، وہ احتجاج بھی کرے، اور ریاست اس پہ تشدد نہ کرے. ان سب چیزوں کو ملا کر آزاد کشمیر ایز اے ساورن اینٹیٹی کیا حقیقت میں آزاد ہو رہا ہے؟ کیا اس کو حکمران طبقہ آزاد کرے گا، یا عوام کی جرت اور مزاحمت اس کو آزاد کرے گی؟ اس پہ آپ بریف کیجیے گا. یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے جی آپ نے. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس پہ تو اتفاق رائے ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ظاہر ہے یہ آزاد کشمیر کا نام جس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے ایک ایسی دھرتی کے حوالے سے جس میں کہ نہ عوام کو حق ملکیت ہے اور نہ حق حکمرانی ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے آزادی کی سمپل ترین اور عوامی زبان میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ کسی علاقے کے لوگوں کی حق ملکیت اور حق حکمرانی کو ہی آزادی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر دوسری آزادیاں آتی ہیں جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سول لبرٹیز ہیں، ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. یہ چیزیں پھر اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، لیکن ابتدا جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ آزاد ہے، تو اس سے میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا پاکستان آزاد ہے؟ یعنی اگر پاکستان کے انڈر جو علاقہ ہے آپ اس کے بارے میں یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ آزاد ہے، تو پھر جو ابتدا میں نے بات کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا میں جو ہے وہ خود جو آزادیوں کا تصور ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کو پاکستان میں آزادی سے رہنے کا جو ہے وہ موقع نصیب نہیں ہوا، چونکہ ان کی آزادی جو ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سلب ہو گئی تھی. یعنی جون میں جو ہے وہ ظاہر اعلان آزادی ہند جس کو آپ کہتے ہیں برٹش پارلیمنٹ نے جو ڈیسیجن کر لیا تھا، تو اگست میں جو تقریر کی قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 میں، آپ مجھے ڈان اخبار کے علاوہ پاکستان کا کسی میگزین کسی نیوز پیپر میں اردو اخبار اس وقت بھی تھے، جنگ نمائے وقت اس وقت بھی تھی، لائبریری سے نکال کے دکھائیں کہ جس میں اس تقریر کو پورے متن کے ساتھ کوٹ کیا گیا ہو، جس کا مطلب یہ تھا کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ سینسر کیا گیا، اور ان کی پالیسی سپیچ کو سینسر کیا گیا جو قانون سازی کی حوالے سے ایک گائیڈ لائن کی حیثیت رکھتی تھی. اور اس کے بعد مسلسل جو ہے، اور اس کا میں نے کئی جگہوں پہ کوٹ بھی کیا ہے کہ یہ ڈان اخبار کا جو اس وقت ایڈیٹر تھا الطاف حسین اس کا نام تھا، اس کو باقاعدہ فون آیا جس کا اس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ مجھے فون آیا جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے کہ آپ یہ سپیچ جو ہے وہ نہیں چھاپ سکتے. تو میں نے کہا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچ ہے اور یہ اخبار اس کا ہے. انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سپیچ آپ چھاپیں گے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا. اس نے کہا جی کنفیوژن کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی کنفیوژن یہ ہوگا کہ یہ قائد اعظم تو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب برابر ہوں گے، تو پھر پاکستان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو ہندوستان سے بھاگے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم برابر نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں قائد اعظم نے یہ تقریر کر دی. اس سے کنفیوژن پھیلے گا، اس لیے آپ یہ سپیچ ڈراپ کر دیں. جب آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ سینسر کر سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سینسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں کس ایسے گروپ آف پیپل کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے جو ہر اس چیز کو موقع نہیں دیتے جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، خواہ وہ قائد اعظم ہی کیوں نہ ہو. تو اس اعتبار سے انہوں نے پاکستان کی جو ہے سیٹنگ شروع کی جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک جو ہے لینڈسکیپنگ کا آغاز جو ہے وہ اس سطح پہ کیا. اس کے بعد وہاں پہ جو 35 سال تک فوجی حکمران مسلط رہے،
उसके बाद जो हुक्मरानी में उन्होंने शेयर दिया तो वो सोसाइटी के खास चुने हुए चंद पॉलिटिशियंस को या चंद पार्टियों को दे के आज तक वो उसको घसीट रहे हैं। अवाम जो है वो 40% से ज़्यादा अवाम अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वहाँ गुर्बत आप देखें, बेरोज़गारी देखें, इस्तिसाल देखें, तालीम और सेहत के मसाइल देखें, तो उसको आप तो उसकी हालत अगर ये है, और दुनिया की किसी लिस्ट को उठा के देख लें, जिल्लत की लिस्ट, बेरोज़गारी की लिस्ट, जुल्म व तशद्दुद की लिस्ट, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की लिस्ट, बैड डेमोक्रेसी की लिस्ट, कोई लिस्ट उठा के देख लें उसमें पाकिस्तान टॉप पे आएगा। किसी अच्छी लिस्ट को उठा के देख लें उसमें पाकिस्तान का नंबर 150 और 160 और ऐसे नंबर पे आएगा जो कोई नंबर ही नहीं होता। तो आप उसके अंडर हैं, और इस हकीकत से जो इनकार करता है कि हम पाकिस्तान के अंडर नहीं हैं, वो फिर उसका रियलिटी के साथ प्रॉब्लम है, रियलिटी के साथ रिलेट करने में उसका प्रॉब्लम है। तो आप उसके अंडर होके तो अपने आप को आज़ाद कैसे क्लेम कर सकते हैं? ये छोड़ें इन बातों को, आके मलकियत और आके हुक्मरानी, तो वो तो फिर एक फर्दर डिवीजन हो गई ना। लेकिन उसमें आप अगर आज़ादी से मुराद जो मैं लेता हूँ उसमें इंसान के अफकार की आज़ादी, आज़ादी इज़हार राय, फ़िक्र की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, इनकार करने की आज़ादी, इकरार करने की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, समाजी आज़ादी, ये सिविल लिबर्टीज़ के जितने तसव्वुरात हैं, ये जब तक नहीं है तो आप कभी आज़ाद अपने आप को नहीं कह सकते जनाब। इसका मतलब है आप किसी न किसी जबर, किसी न किसी पाबंदी का शिकार हैं, जो कि न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग भी उसी सतह पे किसी न किसी शक्ल में उसका शिकार हैं। इसलिए ये कहना कि जी आज़ाद कश्मीर आज़ाद है, ये तो बहुत बड़ी मिथ है, और इससे बड़ा झूठ जो है वो ज़ाहिर तारीख में कोई नहीं। लेकिन मैं इसको आज़ाद कश्मीर कहता हूँ, और इस वजह से मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना है हर फोरम पे, कि जो ही मैं आज़ाद कश्मीर कहता हूँ कुछ लोगों को गुस्से के बल चढ़ जाते हैं कि जी ये जी कैसे। भाई मैंने नहीं बनाया था आज़ाद कश्मीर, ये जिन लोगों ने बनाया 1947 में उन्होंने इसका नाम आज़ाद कश्मीर रखा, और ये नाम मुझे पसंद है और मैं इसे यही कहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कुछ स्टेटस मेरे आज़ाद कश्मीर कहने से इम्प्रूव हो गया या नीचे चला गया, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रगल की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हम इसको हकीकी मानों में आज़ाद कश्मीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हम आधा सफ़र जो है वो तय कर चुके हैं, उसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी हैं, ख्वाह वो जमहूरी जदोजहद के हवाले से दी हूँ, ख्वाह वो 50s का PC का दौर हो, ख्वाह वो 55 का जुल्म व तशद्दुद हो, ख्वाह वो उसके बाद के जलसे जुलूस हों, ये सारी चीज़ें जो हैं, और लोग इस सतह पे पहुँचे कि वहाँ ओपनली एक डायलॉग तो शुरू हुआ कि आज़ादी होती क्या है और हमारे हुकूक क्या है। इससे पहले तो हमें कहते थे कि आप छोटे भाई हैं जी, आपके क्या हुकूक होते हैं छोटे भाइयों के, जिसका मतलब ये है कि हमें मर्जी है तो आपकी जेब में कुछ डाल देंगे, नहीं मर्जी तो आप इसी पे गुजारा कर लें। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी के सफ़र की इब्तिदा हो रही है। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि ये को हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हुआ है या हमने कोई बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है। बदतरीन गुलामी है इस वक्त। आप अपने MLAs का माइंडसेट देखें कि किस किस तरीके से जो है वो आलाकारी का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, तो उनको सामने रखें। तो जहां आपका MLA जो आपको रिप्रेजेंट करता है, अवाम के वोट से मुंतखब होके जाता है, उसकी अगर माइंडसेट ये है, मेंटालिटी ये है, तो आम आदमी की क्या होगी। तो उस हिसाब से हमने एक लंबा सफ़र करना है, लेकिन ये बात हमें अपने हल्काए अहबाब में और सर्कल में बार बार रिपीट करनी चाहिए कि बुनियादी आज़ादियाँ जो पूरी दुनिया में तस्लीम शुदा आज़ादियाँ हैं, उनके बगैर कोई मुल्क, किसी काम, किसी एंटिटी, किसी रियासत, किसी कामियत को आप आज़ाद नहीं कह सकते, और आज़ाद कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक लास्टली सर, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त। हमने पहले भी कहा कि हम लोगों की आज़ादियों को मुकद्दम रखते हैं, हम बिलीव करते हैं टू लिव इन को एग्जिस्टेंस, और उससे ये है कि हम आपके वजूद को तस्लीम करें, आप हमारे वजूद को तस्लीम करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक एक्स्ट्रा, मैं 1 मिनट में बात करूंगा, फिर मैं आपसे आपका मौका भी लूँगा। सर, आई हैव क्रिएटेड एक थिंग, एक मेरे जहन में एक सोच आई कि हम 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब, मैंने कल इस पे एक अपना पैगाम भी जारी किया था जम्मू कश्मीर TV पे,
آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، لداخ کے اندر، وادی و جموں کے اندر ہم ایک پریکٹس شروع کریں کہ ہم نیشنل بلیک آؤٹ کال کریں گے کہ رات 10 بجے سے لے کے تو 1 بجے تک ہم اپنے گھروں کی تمام روشنیاں جو ہیں وہ ان کو بند کر دیں گے. اور یہ ایک شروعات ہے. یہ ہم ہر سال 14-15 اگست کی درمیانی شب، 5 اگست پہ اور 22 اکتوبر 27 اکتوبر کو کریں گے، تاکہ دنیا کو یہ میسیج جائے کہ ہم اس تقسیم کے خلاف ہیں، ہم اس جبر کے خلاف ہیں، اور ریاست جموں و کشمیر کی ریاست کی ری یونیفیکیشن چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ اگین جمہوری طریقے سے فیصلہ کریں، کیونکہ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. آپ اس نئے احتجاج کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مزید اگر اس میں آپ نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو جی ضرور ایڈ کیجیے. دیکھیں جی، یہ احتجاج کا جو ہے وہ ایک پرامن اور بڑا مؤثر طریقہ ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ احتجاج کے مہذب طریقے ہیں. کہیں آپ روشنی بجھاتے ہیں، کہیں آپ روشنی جلاتے ہیں، وہ جیسے موم بتیاں جلاتے ہیں لوگ یا اس طرح کی چیزیں. تو یہ احتجاج کے مختلف طریقے ہیں، بہت اچھا طریقہ ہے. ویسے بھی روشنی کا وہاں آپ دیکھ لیں جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ انہوں نے تو بلیک آؤٹ ویسے بھی 18 گھنٹے کیا ہوتا ہے، تو اس میں 1-8 گھنٹہ احتجاج کا بھی شامل ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال یہ اچھی موو ہے، ہونا چاہیے اس طرح کا جو ہے کوئی بھی عمل ہے جہاں پہ لوگ یہ میسج کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے سٹرگل کی ضرورت ہے، اور سٹرگل کے کئی راستے اور طریقے. بہت شکریہ حمید باشانی صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ کسی نشست میں، کسی گفتگو میں ہم مزید ایشوز پہ بات کریں گے. بہرحال پروگرام آپ نے دیکھا. ایک آخری سوال پھر آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ آزادیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ریاست جموں و کشمیر آزاد ہے؟ کیا آزاد کشمیر آزاد ہے؟ گلگت بلتستان، جموں، لداخ ویلی جو اس کی 5 اکائیاں ہیں، جو ریجنل اکائیاں ہیں، جو پولیٹیکل اکائیاں ہیں، کیا یہ آزاد ہیں؟ اگر آزاد نہیں ہے تو انہیں قید کس نے کر کے رکھا ہے؟ ہاں تو پھر جواب آتا ہے ہندوستان نے اور پاکستان نے. تو پھر کیا ہمیں ان کی آزادی میں شامل ہونا چاہیے، یا ان کو ایسے آزادی کی مبارکباد دیں کہ جیسے دنیا کے دوست ممالک ایک دوسرے کو آزادیوں کی مبارکباد دیتے ہیں اور اچھائی کے ساتھ مل کر رہنے کی، چلنے کی بات کرتے ہیں؟ لیکن اگر وہ ہماری آزادیوں کو سلب کریں گے، ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو کر، مل کر ایک نعرے کے ساتھ چلیں گے، آواز دو ہم ایک ہیں، ہم اس فوجی جبری قبضے کے خلاف ایک ہیں. جموں میں، وادی میں، لداخ میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ایک ہیں، کیونکہ ہماری ریاست ایک ہے. یہی ہماری آئیڈینٹی ہے، یہی ہمارا تشخص ہے، یہی ہماری دنیا میں پہچان ہے. جب ہم ایک ہیں تو ہم پھر الگ کیوں ہیں؟ جب ہم ایک ہیں تو ہم غلام کیوں ہیں؟ لہٰذا اپنی آزادی کے لیے ہمیں نئے راستے تلاشنے کی اور تراشنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم آواز دیتے رہیں گے. جموں کشمیر ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کی کال پر میرپور میں چوتھے روز بھی جملہ نمائندہ تنظیموں ایپکا، ٹیچرز آرگنائزیشن، PWD ورکرز یونین، ریونیو امپلائیز ایسوسی ایشن، ریڈنگ سٹاف ایسوسی ایشن برقیات، تعلیمی بورڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن، تنظیم غیر جریدہ ملازمین، تنظیم فنی ملازمین برقیات،
پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن، تنظیم غیر جریدہ میونسپل کارپوریشن، لوکل کانسل فیڈریشن، منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی کے عہدیداران کی قیادت میں سرکاری ملازمین کا جمع غفیر سڑکوں پر امڈ آیا۔ احاطہ شکایات برقیات سے احتجاجی ریلی جو پریس کلب علامہ اقبال روڈ سے چوک شہیدہ پہنچی، جہاں دھرنا دے کر حکومت آزاد کشمیر اور وزیر خزانہ آزاد کشمیر کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بعد ازاں احتجاجی ریلی ہڑتالی کیمپ میں اختتام پذیر ہوئی، جہاں احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا جسے مرکزی صدر ایپکا آزاد کشمیر راجہ محمد رشید، ضلعی صدر راجہ مسعود راٹھور، سابق صدر فیڈریشن سید قیصر شراز کاظمی، چیئرمین PWD ورکرز یونین راجہ نجیب ٹھاکر، صدر تنظیم غیر جریدہ ابرار حسین بٹ، جنرل سیکرٹری ایپکا طارق محمود ملک، مرکزی صدر ریڈنگ سٹاف ایسوسیشن برقیات میر خلیل احمد، مرکزی صدر تنظیم فنی ملازمین برقیات ملک طارق اوان، جنرل سیکرٹری سردار معروف خان، مرکزی سیکرٹری جنرل لوکل کونسل فیڈریشن راحیل احمد بٹ، صدر غیر جریدہ میونسپل کارپوریشن راشد بزمی، صدر ٹیچرز آرگنائزیشن چودھری محمد اسماعیل، صدر تعلیمی بورڈ ایسوسیشن چودھری محمد یاسر، سپریم ہیڈ بورڈ فیڈریشن خلیل مرزا، جنرل سیکرٹری راجہ شوکت خان، صدر پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسیشن راجہ شہزاد احمد، سیکرٹری جنرل MDHA کامران وزیر، سیکرٹری جنرل MDHA کامران وزیر چودھری محمد لطیف، وقار اسلم، سینئر نائب صدر تنظیم غیر جریدہ چودھری محمد رفیق، سید منظور حسین شاہ، چودھری محمد شکیل، سابق جنرل سیکرٹری ایپکا میرپور ندیم اختر، صدیق عارف بٹ اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ آزاد کشمیر کو خبردار کیا کہ وہ آزاد کشمیر کے ملازمین کا صبر کا امتحان نہ لیں، بلا تاخیر بجٹ میں اعلان کردہ تنخواہ، الاؤنسز، ڈسپیرٹی الاؤنس اور پینشن میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کریں۔ مقررین نے کہا کہ مقام افسوس ہے کہ ریاست بھر کے ملازمین گزشتہ 4 روز سے شدید گرمی میں اپنے حق کے لیے سڑکوں پر، لیکن حکومت آزاد کشمیر کو احساس نہیں۔ آزاد کشمیر کابینہ اور اسمبلی اجلاس میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو بھی ریاستی ملازمین کے جائز حقوق پر بات کرنے کی توفیق نہیں۔ مقررین نے کہا کہ ریاستی مشینری میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھنے والے ملازمین سراپا احتجاج ہیں، مگر حکمران طبقہ اپنی مراعات و آسائشوں کے لیے سرگرم ہے۔ مقررین نے کہا کہ ظلم و جبر کی حکومت چل سکتی ہے مگر ناانصافی کی نہیں۔ افسوس ہے کہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بے حس حکمران مسلط کر دیے ہیں اور وزیر خزانہ آزاد کشمیر کی ذمہ داری ایسی شخصیت کو سونپ دی ہے جو ریاست کے مالیاتی امور سے بالکل نابلد ہیں۔ مقررین نے کہا کہ بجٹ کی پہلی سہ کے آغاز پر ہی وزیر خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر کے آزاد کشمیر کے 1 لاکھ سے زائد جریدہ اور غیر جریدہ ملازمین کے حقوق پر ضرب لگائی، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ مقررین نے کہا کہ کسی ریاست و ملک کا کبھی ایسا بجٹ پیش نہیں ہوا جس کی منظوری کے بعد ریاست کے ملازمین کی مراعات روک لی جائیں۔ مقررین نے کہا کہ پہلے بجٹ پر یہ قابلیت ہے تو مزید 4 بجٹ کا کیا بنے گا۔ مقررین نے فوری نوٹیفکیشن اور ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ نوٹیفکیشن کی اجرائیگی تک احتجاج جاری رہے۔ تنظیمی قیادت نے اعلان کیا کہ نوٹیفکیشن کی عدم اجرائیگی کی صورت میں 15 اگست کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ کے ساتھ وزیر خزانہ آزاد کشمیر کے خلاف بھی سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ PWD ورکر یونین کے افتخار شاہین صاحب، ان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنچ کے اندر انہوں نے اس تحریک کو، میں سمجھتا ہوں بڑی محنت اور لگن سے منظم کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی PWD ورکر یونین آرگنائزیشن مرکزی صدر تاثر شاہین صاحب، ان کے مد مقابل جو ٹیمیں تھیں وہ بھی الحمدللہ، اور یہاں مجھے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو جدوجہد ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رنگ لائے۔ جہاں تک یہ میں بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا اور مناسب بھی نہیں سمجھ رہا تھا جس کے حوالے سے ساتھیوں نے بات کر ہی کیا ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو یہ معلومات دے دوں کہ جب یہ تو میں 3-4 دن مظفر آباد میں رہا، میں نے سیکٹریٹ امپلائی ایسوسیشن اور آج جو وہ نام رجسٹر کے خواجہ بھائی صاحب، ان سب سے میں نے گزارش کی کہ ہم مشترکہ نوٹس دیتے ہیں احتجاج کا۔ اس وقت خواجہ بھائی صاحب کی یہ الفاظ تھے کہ جناب بالکل ہم تو کسی احتجاج کے نوٹس میں سائن نہیں کرتے، اور سیکٹری مالیات نے خصوصاً یقین مانے کہ اس نے کہا کہ یہ ملازمین کا معاملہ آپ ہمیں لکھ کے دیں، ہم اس کو حل کر دیتے ہیں، اگر کہیں کو بجٹ کی کمی بیشی ہوگی تو وہ اگلی سمائی میں پوری ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس اتنا بجٹ موجود ہے کہ ہم ان ملازمین کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے وزیر خزانہ صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے اولاد کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہے اس دور میں جینا لازم ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے شاید کسی ایسی جگہ پہ ہاتھ ڈال دیا ہے کہ اب آپ کو واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔
और बात जिस तरह मलक तारिक साहब ने कही है, मैं अपने जो आज़ाद कश्मीर लीग में उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये महाजरीन की 12 सीटें यकीन माने आज़ाद कश्मीर के खजाने पे बोझ है। ये सिर्फ बोझ है आज़ाद कश्मीर के खजाने पर। एक डीसी वालियात मौजूद है, एक डीसी वालियात और लगा के उनके ऊपर आज़ाद कश्मीर के खजाने में बोझ है, बल्कि अक्सर अकात या हमारे वो लोग, वो हमारे सियासी ज़ुमा जो लाखों की तादाद में वोट लेके असेंबली में जाते हैं, उन्हें नाकु चने चबवा देते हैं। ये 2.5 वोट वाले जो है इनको खत्म करना चाहिए और वो जो पैसा बचेगा वो आज़ाद कश्मीर के हॉस्पिटल पे गरीब जो मरीज आते हैं उन पे खर्च करना चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह आप अपनी सबों में एक बात रखें, जो मुलाजम जो कायदीन किसी वगैरह ने बड़े अच्छे अल्फाज में कहा था कि वो पक्की पकाई खाना चाहते हैं, तो मैं स्वाय उनमें एक तंजीम है सेक्रेटरी एम्प्लॉइज की, बाकियों के लिए ये मैं कहता हूँ कि वो एक पहाड़ी की मिसाल है ना, टट्ठे की जरा कम वो गल है। बाकी और ऐसा मामला नहीं है कि वो कहें कि हम 17 अगस्त को कोई तीर मार लेंगे जो इससे पहले नहीं लगे, बस वो बात उनके जहनों में है कि जरा टही गया तो फिर कर ही दो। अब वो समझ रहे हैं कि हुकूमत इंशाल्लाह गिरने वाली है, तो फिर वो अपनी कैंची उतरी हुए तेज कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाजमीन जो 10 अगस्त जो सड़कों पर मौजूद है वो अपना इंशाल्लाह यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आप अपनी सबों में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपको फ्रूटफुल इंशाल्लाह जो है ना वो नतीजा मिलेगा। मंडे को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आए, जिस तरह आज आए कोशिश करेंगे इससे बढ़कर इंशाल्लाह जो है ना, जिस तरह तमाम कायदीन ने ये कहा कि इंशाल्लाह इससे बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आएंगे, तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको नहीं चाहिए था कि जो आज इन्होंने बना दिया है। तो मैं जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह बात भी करूंगा और मैं आपके मसाइल भी हल करूंगा। सच्ची बात है कि जितना अर्सा बैरिस्टर सुल्तान साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, मुलाजमीन के लिए उनका दौर हुकूमत जो है वो सुनहरी रूह में लिखा गया है। वो मुलाजमीन के मसाइल को और उनके दुख दर्द को समझते हैं। उन्होंने भी हमें कभी तारीख कराई है कि इंशाल्लाह मैं जाके इस मामले को हल करूंगा। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें।
आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें फूलेंगी फलेंगी जंजीरें जंजीरें तो कट जाएंगी हाँ उनके निशान रह जाएंगे मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें ये तौर भी है सयादी के ये ढंग भी है जल्लादी के सिमटे सिकुड़ेंगी जंजीरें फैलेंगी फलेंगी जंजीरें आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें ले दे के हफीज उनसे ही थी उम्मीद वफा दीवानों को क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर टीवी की इस स्पेस में आप सबका खैर मकदम है और उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त बरतानिया में 4:06 और वतन अजीज में मुजफ्फराबाद में 8:06 और श्रीनगर में 8:30 या 8:36 का टाइम है और मैं वाहिद काशिर हूँ जम्मू कश्मीर टीवी से। आप सबका खैर मकदम है, नवाजिश आपकी। आज का मौजू जो है वो इस वक्त ज़बान हाल पर है और जो सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उस पर गुफ्तगू होने जा रही है और इस गुफ्तगू में हमारे साथ आज़ाद कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम या मरकज़ी इदारे की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके नुमाइंदगान होंगे, जो उनके सरबराहान हैं उनको भी दावत दी है और कोशिश करेंगे कि उनसे चीदा सवालात जो हैं वो उसकी रोशनी में मालूमात हासिल कर सकें और सूरत हाल को जान सकें उनके अपने प्रोस्पेक्टिव की रोशनी में। मुकालमा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इससे सीखने के मौके मिलते हैं, मालूमात मिलती है और इस मालूमात की रोशनी में हम अपने अपने सियासी मदार का जो हल्का है उसको वसी कर सकते हैं। मैं आज के इस मुकालमे की जो है बुनियाद रखने और उसे आप तक पहुंचाने और हमें इनकरेज करने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के नामवर सहाफ़ी और मदीर रोज़नामा कशीर या कशीर ऑनलाइन अतर मसूद वानी साहब का दिल की अथाह गहराइयों से एक्नॉलेज करता हूँ और मुतर्रफ हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इसके ऊपर इनकरेज किया और इस बात की तरफ इशारा किया कि ये वक्त की बड़ी ज़रूरत है कि आप रियासत जम्मू कश्मीर का एक कौमी चैनल होने के नाते रियासत जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको दावत दें और उन पर एक सैर हासिल गुफ्तगू करें। तो ये इस सिलसिले का पहला जो है आगाज़ है। इसके साथ साथ अगला मरहला जो होगा वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल आज़ादी की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम उनको भी दावत दे रहे हैं, वो भी इसके ऊपर अपना एक बाकायदा बाज़ाब्ता नुक्ता नज़र रखेंगे और एक जामे किस्म की शक्ल में आपके सामने जो तस्वीर आएगी उसके मुताबिक आप अपने तासुरात को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। आज की इस महफिल में शिरकत के लिए मैंने ज़ाती तौर पर जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब उनसे बात की तो उन्होंने ज़रूर कहा कि वो तशरीफ़ लाएंगे। इसके अलावा चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से बात हुई, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इरशाद महमूद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब हैं और हसन इब्राहिम साहब शायद वो मुझे नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो आज इस्लामाबाद में और इसके अलावा जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। तो यकीनी तौर पर आज की गुफ्तगू जो है वो एक सैर हासिल होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलेंगी।
گفتگو کا کے ابتدائیہ میں جو ہے میں یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو بھی گفتگو کے مواقع دستیاب ہوں گے. اختتام کے قریب جب آپ سب حضرات کی گفتگو سن لیں گے اس کے بعد جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ چند سوالات جو ہیں وہ بھی لے لیں تاکہ آپ بھی اس میں براہ راست شرکت کر سکیں اور اس گفتگو کو اپنے جو قائدین ہیں اپنی سیاسی جماعتیں ہیں ان تک بھی پہنچا سکیں. آج اسلام آباد میں جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس کا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. اطہر مسعود وانی صاحب میں آپ کو ابتدا میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں جو خیالات تھے جو آئیڈیا تھا اور آج ہم جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا محسوس کر رہے ہیں اور ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں. اطہر صاحب بسم اللہ. شکریہ جی. آج اچھی رہی آل پارٹیز کشمیر کانفرنس. تو اس میں جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا اس کو یہ مسترد کیا 15ویں ترمیم کو, اور پہلی دفعہ جو ہے کشمیر پراپرٹی کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس کا بھی جو ہے وہ واپس لیا جائے, اور ان سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ کشمیر کونسل کے جو اثاثے ان کے پاس ہیں وہ بھی کشمیر گورنمنٹ کو منتقل کیے جائیں. تو ساتھ ہی میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ارشاد محمود صاحب ذرا بات کریں, کیونکہ آج ہی پرائم منسٹر کشمیر کا ان کے ترجمان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے ان کو بڑا وہ سخت زبان استعمال کی گئی ہے اس میں وزیر امور کشمیر کے خلاف. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے کہ انضامی اختیارات ریاستی تشخص پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور جو ہے قمر زمان قاہرہ وہ معافی مانگیں, اور یہ جو ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان سے جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کو ان سے استعفیٰ لیں قمر زمان قاہرہ سے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر کشمیر کے 4-5 ان کے میڈیا سے متعلق لوگ ہیں, تو پہلے تو ان کے وہ ڈاکٹر صاحب تھے وہ ان کے ترجمان کے طور پہ بیانات وغیرہ دیتے تھے. اب یہ ایک اور صاحب ہیں یہ ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے ان کے ترجمان کی حیثیت سے. تو یہ ذرا ارشاد محمود صاحب ذرا اس چیز پہ روشنی ڈالیں, کیونکہ ان کی جو یہ روایتی طور پہ جو کشمیر گورنمنٹ کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اس طرح کی ہارڈ زبان وہ نہیں ان کی ہوتی. تو ذرا اس بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ان کی یہ پرائم منسٹر کا جو سٹاف ہے ان کی ذرا کوئی یہ غفلت ہے یا واقعی پرائم منسٹر کی طرف سے اس طرح کا کوئی انہوں نے کوئی اس طرح کی پوزیشن لی ہے. جی ارشاد محمود صاحب کو میں نے مائک بھیجا ہے. باقی دوست جو ہے ابھی مائک کی ریکویسٹ نہ کریں, کیونکہ میں نے جو سلیکٹڈ گیسٹ بلوائے ہوئے میں انہیں جو ہے سننا چاہوں گا, اور اس کے بعد جو ہے ہم معاملات پر گفتگو کریں گے. تو ارشاد بھائی میں نے آپ کو مائک بھیجا ہے, آپ تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں صرف اور صرف جو ہے میں یہ چاہتا ہوں بھائی صاحب ایک چیز بھائی صاحب جی ایک چیز میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کا جو پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل جو ہے طارق فاروق چودھری, ان کا ایک ذرا بڑا انٹرسٹنگ بیان آیا سا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان ہمیں دیوار سے نہ لگائے, وہ کہ ہم اس کے اگر یہ 15ویں ترمیم کے حوالے سے کہ ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے, اور یہ ہم اس کے خلاف اگر اس طرح کیا گیا تو ہم سلامتی کونسل میں بھی جا سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کا وہ میکنزم جو ہے وہ موجود ہے سلامتی کونسل میں جانے کا. یہ ایک ان کا ایک وہ دلچسپ بیان تھا, میں نے کہا وہ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ جی اطہر صاحب, بہت شکریہ. ارشاد بھائی اوور ٹو یو, آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ واحد کاشف صاحب اور باقی دوستوں ساتھیوں. آج بڑی اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, اور آل پارٹیز کانفرنس میں کچھ چیزوں پہ ایک ہمارا آزاد کشمیر لیول پہ جو کنفیوژن تھا وہ دور ہو گیا ہے, اور ساری پارٹیز حکومت ہو اپوزیشن پارٹی ہو, جیسے پیپلز پارٹی اپوزیشن وہاں کرتی ہے وہ ہو, مسلم لیگ جو تیسری بڑی لیڈنگ پارٹی ہے, حسن ابراہیم صاحب کی جماعت اسلامی کی, تو یہ مین اسٹریم پارٹی تھی. لیکن ان سب کے درمیان جس چیز پہ اتفاق رائے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 13ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ آزاد کشمیر کے جو مالی اور انتظامی اختیارات ہیں ان پہ کوئی سودا بازی نہیں ہوگی یا کوئی کمزوری نہیں دکھائی جائے گی.
तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पे ये मुतालबा किया कि भाई कश्मीर काउंसिल देखिए, बल्कि मैं कह रहा था आज एक दोस्त से कि जिन लोगों ने 15वीं तरमीम पेश की थी उन्होंने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उनका तो उन्हें जो है ना सही सजा दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि जिसके नतीजे में लेने के देने पड़ गए। मसलन जैसे अभी कोई बंदा या कोई पार्टी या हुकूमत इस पे बात नहीं कर रही थी कि कश्मीर काउंसिल ने जो आज़ाद कश्मीर के जो 4वीं तरमीम हमारी 13वीं तरमीम के बाद उसके पास जो असासे थे उसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले करने थे, उसके ऊपर जो है लोग ज़रा ज़्यादा खामोशी थे। तो इसमें आज जो हमारी ABC थी उसमें ये भी मुतालबा किया गया है कि जो भी कश्मीर काउंसिल के असासे हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले किए जाएं। और फिर एक कदम और आगे बढ़ के जैसे अतर मसूद साहब बात कर रहे थे कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ये भी कहा है कि मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा है कि कश्मीर प्रॉपर्टी का तसर्रुफ भी जो है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हवाले कर दिया जाए। तो ये आप समझें कि 2 कदम जो है और आगे चले हैं और आज़ाद कश्मीर की जो एम्पावरमेंट है उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि आज की ABC ने एक बहुत बड़ा संग मील तय किया है। दूसरा, इससे ये बहस अब डिबेट मेरा ख्याल है ख़त्म हो जानी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या हुकूमत हो वो ऐसी किसी तरमीम को जो है कबूल करेगी या उसे कंधा देगी। सेकेंडली ये बात है कि अवामी जो जज्बात थे और रायामा ने जिस तरीके से इसको रेजिस्ट किया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इसी के नतीजे में मेरा ख्याल है कि सारी पार्टीज और जो बहुत सारे लोग जिनका नुक्ता नज़र बड़ा कमज़ोर भी होता है उन्होंने भी बड़ी जुर्रत के साथ और आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल और इकनॉमिक और इंतज़ामी अख्तियारात हैं और राइट्स हैं उनकी अच्छी वकालत की है। दूसरा इशू हमारे यहाँ ये चल रहा था कि टूरिज्म अथॉरिटी जो है उसकी कंपोजिशन क्या होगी, वो आज़ाद कश्मीर के जो हमारा एक स्टेट सब्जेक्ट का भी एक इशू है कि उसके मुताबिक जो है कौन सी लैंड और किसको अलाट की जा सकती है किसको नहीं की जा सकती है और बाहर के लोग आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो इस हवाले से भी आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक कंसेंसस सामने आया और हुकूमत ने भी एक तरह से एक लचक दिखाई है कि वो जो है इसके हवाले से इसको भी कंसीडर करेगी। और जाहिर है कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एक इजमाही कंसेंसस एक चीज़ पे हो जाए तो जाहिर है कि हुकूमत जो है वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, ये तो कोई मार्शल तो नहीं लगा हुआ, तो जाहिर है कि वो भी अवामी जज्बात एहसासात के मज़ाहिर नहीं जा सकेंगे। आखिरी बात जो अच्छी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनका जल्द रिहाई का अमल होगा। एक कमेटी भी बना दी गई थी जिसमें शायद मैं आज चेक नहीं कर सकता कि मुज़ाकरात का क्या नतीजे निकले, लेकिन उसने रावला कोर्ट में जो एहतजाज पे जो लोग बैठे हुए धरने पे उनके से उनके लीडरशिप के साथ बातचीत करनी है और इंशाल्लाह इस तरीके से ये मसला जो है एक तरफ हो रहा है। बाकी जो जहाँ तक कायरा साहब के बयान का ताल्लुक है, मैंने कायरा साहब की सारी तकरीर को और प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनी थी तो उसमें कुछ मुझे लगता है कि कुछ जो हमारे उनके बयान के पर इशारा कर रहे थे उनको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा मैं देखा है कि कायरा ने ये नहीं कहा है कि मैं सूबाई स्टेटस आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई हम आपको इस तरीके से ट्रीट करें, फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से ट्रीट करे। तो वो एक आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई मकसद है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अरशाद साहब। इरशाद साहब, चंद सवालात हैं आप तक। पहले ये बताइए कि आप ज़ाती तौर पर और प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर क्या महसूस करते हैं कि सबसे पहले जो इस बहरान का आगाज़ होता है मुजफ्फराबाद में प्राइम मिनिस्टर की उस मुतनाज़ा स्पीच के हवाले से, और उस मुतनाज़ा स्पीच में उन्होंने आज़ादी पसंद जो तबका है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कश्मीर की बात करने वाला, उन्हें हिंदुस्तान का या रा का एजेंट कहा। आप ज़ाती तौर पर अगर उस पोजीशन में होते तो क्या ये बेहतर नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आज की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपने आवाम से, क्योंकि हम भी उनकी आवाम में आते हैं,
ان سے معذرت کر لینی چاہیے تھی, دل بڑا کرنا چاہیے تھا, کشادہ کرنا چاہیے تھا. آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو نقطہ نظر ہے خود مختار کشمیر کا یا قوم پرستی کا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. میں بہت سارے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ جسٹس یوسف سراف صاحب کی کتاب ہے, اس کے آخر میں ایک چودھری حمید اللہ صاحب کی سری نگر میں ایک تقریر ہے, جو مسلم کانفرنس کے صدر تھے اور چودھری غلام عباس صاحب جیل میں تھے. تو وہ تقریر پڑھ کے آپ حیران ہوں گے, آپ کہیں گے کہ ارشاد بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, شاید کچھ مسئلہ ہے ٹیکنیکلی. ہمیں تنویر احمد خان صاحب جوائن کریں گے جماعت اسلامی کی طرف سے, اور وہ جماعت اسلامی کی نمائندگی کریں گے. تنویر صاحب اگر آپ تشریف فرمائیں, چونکہ ہم آپ کو فالو نہیں کر رہے تو ریکویسٹ بھیجیے گا, میں آپ کو کروں گا, اپروو کروں گا. میں جناب چودھری محمد یاسین صاحب کو ویلکم کرتا ہوں, وہ تشریف لائے اور انہیں میں نے مائک بھیجا ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ, اینڈ تھینک یو ونس اگین آن ویری شارٹ نوٹس, کہ مجھے احساس ہے کہ آپ طویل سفر کے بعد وطن پہنچے اور آج آپ نے اپنی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت فرمائی. بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کے کیا تاثرات ہیں 13ویں ترمیم کو ریووک کرنے اور 15ویں ترمیم کو امپوز کرنے, اور آج کی جو کانفرنس ہوئی آل پارٹیز اس کے اوپر, اور پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اس حوالے سے. چوہدری صاحب اوور ٹو یو. چودھری محمد یاسین صاحب آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور بات کر لیجئے. جی السلام علیکم. جی چودھری صاحب وعلیکم السلام, شکریہ. چودھری صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. چودھری صاحب میں سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں. آج آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں آپ نے بھی شرکت فرمائی, اور جنرلی بتائیے کہ اس 15ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے, آپ اس کے اوپر کیا سوچ رہے ہیں, ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکسکیوز می. واحد کاشف صاحب, یہ 15ویں ترمیم کے حوالے سے آج سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے بلائی تھی آل پارٹیز کانفرنس, جس میں پارلیمنٹری اور نان پارلیمنٹری پارٹی ساریوں کے سربراہ موجود تھے, اور پرائم منسٹر راحیل کشمیر خود بھی آئے تھے. تو اس پر خاصی اس پر بات ہوئی ہے. تو ایز فار ایز پاکستان پیپلز پارٹیز کا نقصان ہمارا, تو ہماری پارٹی کی تو آپ کو پتا ہے کریشن ہی مسئلہ کشمیر پہ ہوئی تھی, اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سٹانس تھا, وہی شہید محترم بینظیر بھٹو صاحب وغیرہ ہے, وہی سٹانس صدر آصف زرداری صاحب کا, وہی سٹانس چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے کوئی بڑا واضح اور کلیئر ہے. اور ایز فار ایز دی 15th امینڈمنٹ از کنسرن, اس حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف ہے. پیپلز پارٹی نے, آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا ایکٹ 74 کے تحت. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی لی تو آزاد کشمیر میں بھی انہوں نے اس کو پا دی تھی 74 میں. تو جب پہلا الیکشن 75 میں ہوا, تو اس سے پہلے جو ہمارے گورنمنٹ کی جو پوزیشن تھی وہ سب کو پتا ہے, میں اس پہ تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا. تو پیپلز پارٹی has always given the rights to people of آزاد کشمیر اینڈ جی پی. تو اس پہ بڑا واضح ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کوئی امینڈمنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کر سکتی. تو میں خود بھی تھا, اور چودھری لطیف اکبر جو ہمارے اس وقت قائد حزب اختلاف اسمبلی میں وہ بھی موجود تھے. تو ہم دونوں کا ایک ہی موقف تھا کہ پیپلز پارٹی will not support such amendment. ہم تو پاور دینے والے ہیں, ہم لینے والے نہیں ہیں.
जय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है। बताइएगा कि आखिर कौन से मामलात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इस 15वीं तरमीम को मुबैना तौर पर लाया जा रहा है या इम्पोज किया जा रहा है, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप देखते हैं? क्योंकि देखिए, मरकज़ में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोalition बैठी हुई है, आज़ाद कश्मीर के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं कि कौन है जो इसके पीछे एक्चुअली ये ड्राफ्ट ला रहा है, ये इम्पोज कर रहा है, टूरिज़म अथॉरिटी, और ये सारे मामलात हैं। इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। सारे एक दूसरे के ऊपर, अब हमने देखा कि जिस तरह अतर मसूद वानी साहब ने तज़किरा फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के तर्जमान साहब का वन ऑफ दी मैनी जो उनके तर्जमान हैं उनमें से एक का जो है आज तशरीफ़ लाए, वो सोशल मीडिया पर शायद या उनका बयान जो आया है वो काफ़ी अजीबोगरीब है। फिर आप इसके ऊपर क्या देखते हैं कि हकायक क्या है? देखिए जी, इस पर ना तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमारे साथ बात की है, ना ही नून लीग की क़यादत है। नून लीग की जो यहाँ की लीडरशिप है, पिछले दिनों ये मिले थे शाह गुलाम कादर साहब जो अभी नए सदर बने नून लीग के, तारिक फारूक साहब जो जनरल सेक्रेटरी बने, और मुश्ताक मनार साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उनके साथ ही उन्होंने बात नहीं की, ना हमारे साथ हमारी क्या लीडरशिप ने बात की। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज मुश्तरका तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इंक्लूडिंग पीटीआई ने जो है वो ये तय किया है कि बिल्कुल इस तरह की किसी भी अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो वो अमेंडमेंट तो तभी होगी ना जब 36 मेंबर असेंबली जो है वो उसको करेंगे सपोर्ट। नन ऑफ दी पार्लियामेंट्री पार्टी, बल्कि हसन इब्राहिम साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है। तो एक्सक्यूज मी, when none of the parliamentary parties going to support, how can this happen? बाकी मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। अलबत्ता ये एक उधर से मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर से जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उस चीफ सेक्रेटरी कश्मीर को, उसके हवाले से ये बात चली है कि वहां से आई है, लेकिन हमारे साथ तो किसी ने नहीं बात की। बहुत शुक्रिया। चूंकि आज की स्पेस का उन्वान जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और हम ये चाहते हैं कि इसके जो आलमी तनाज़र में जो मामलात हैं उसके ऊपर भी कुछ समझने की कोशिश करें। मैंने खुसूसी तौर पर जनाब डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब को दावत दी थी कि वो तशरीफ़ लाएं और हमें बताएं कि जिस तरह आप आज की इसके सरे उन्वान से देख सकते हैं कि 15th अमेंडमेंट इन आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी असरात कश्मीर के क्वेश्चन के ऊपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसको जानना। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, मैंने आपको इनवाइट किया है माइक के ऊपर, आप तशरीफ़ लाइए और हमें आगाह कीजिए कि इसके मुमकिना तौर पर जो है आपने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी इसके ऊपर जो मरासलात हैं वो लिखे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर गिलानी साहब बताइए कि इसके मुमकिना तौर पर क्या असरात पड़ सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक जाऊँगा कि आपने एक ट्वीट में ये फरमाया था कि अगर ये 15वीं तरमीम हो जाती है तो इट विल बी 5 अगस्त 5th of August 2019 ऑफ पाकिस्तान। ये एक बहुत सीरियस और संजीदा किस्म की ट्वीट है। बताइएगा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हमें इल्म दीजिएगा। जी वाहिद साहब शुक्रिया। मेरा सब मेहमानों को सलाम, चौधरी साहब को भी, और हमारे बासर साहब भी हैं। अर्ज ये है कि जो मैंने तो मेरे ख्याल में इस दौरान काफी कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखा, लेकिन ये मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन है कि अगर 15वीं तरमीम जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी उसको इन टोटलिटी देखें तो बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट एक्शन हो जाता हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 का। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि चौधरी यासीन साहब हैं, इनका आज़ाद कश्मीर हुकूमत में गहरा अमल है और
हमारे साथ भी इन्होंने मेहरबानी की, जेनीवा आए थे रिपोर्ट की तैयारी के सिलसिले में जो हाई कमिश्नर जारी की थी 2018 की, तो इनकी काफी वहाँ पजीराई हुई, इनकी बात भी सुनी गई। जो आजाद कश्मीरी हुकूमत है जी, इसकी बुनियाद जो है वो है प्रोविजनल डिक्लेरेशन हमारा, जो हमने 24 अक्टूबर को जो हुकूमत आजाद कश्मीर जिस पर खड़ी है, तो उस प्रोविजनल डिक्लेरेशन को आप समझ लें कि वो आपका आईन है, आपके ले डाउन प्रिंसिपल्स हैं। उससे हटकर जो है उसके बाद जो हमारे पास टेम्पलेट है वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक स्ट्रक्चर है कि आजाद कश्मीर की कैसी हुकूमत होगी। लेकिन आप मुझे बताएं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है या हमारी सोच का ताल्लुक है, हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी लिखा, कायरा साहब को भी लिखा, कमेटी के मेंबरान जो हैं, जो सदर आजाद कश्मीर ने जिनको नॉमिनेट किया था उनको भी इंडिविजुअली खत लिखे हैं और सोशल मीडिया पर भी गुजारिशात लोगों तक पहुंचाई। वो ये कि अगर आप आजाद कश्मीर के आईन में 6(2) शिक रखते हैं कि जी आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के साथ इल्हाक जो है उसके खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी, तो हम इसको कोई ज्यादा हॉस्टाइल स्टेट पे नहीं समझते, लेकिन शायद ये फेल हो जाए उस टेस्ट में। आप ये कैद अभी नहीं लगा सकते। तो अगर आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग जूरिस्प्रूडेंस की देखें कि हमारा हक खुद इरादियत है, अगर हक खुद इरादियत पर पाकिस्तान से आकर कोई शख्सियत इजहार राय करे और उसको कम अहमियत दे, तो इल्हाक तो कभी होगा जब आपका हक खुद इरादियत है, तो आप तो बुनियादें ही हिला देते हैं। यानी कायरा साहब ने, मैंने भी उनकी वो सुनी, जिस अभी इरशाद साहब ने फरमाया कि उन्होंने भी सुनी उनकी बातचीत, लेकिन वाकई उनकी बातचीत जो थी वो तकल्लम इस्तेदलाल जो था वो स्टेट्समैन का नहीं था, पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक के नुमाइंदे का नहीं था। वो जिन लोगों से मुखातिब थे वो लोकल अथॉरिटी के जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम हक खुद इरादियत के हसूल तक अपने अवाम को एक फ्री और सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, और उस फ्री और सेल्फ गवर्नमेंट को एंडोर्स किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये तो हमारे लोगों का, पता नहीं, आप ही कहा कि वजीर आज़म को कुशादा दिल रखना चाहिए। भाई हमें किसी के तंग और कुशादा दिल की जरूरत ही नहीं है। हम इनको कहते हैं जी आईनी एतबार से जितनी कुशादगी की जरूरत है उसमें बुखल ना करें। तो उनका उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि आप आजाद कश्मीर में आकर कहते हैं जी कि आपको हम बाकी सूबों की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये बहुत ही गैर संजीदा तकल्लुम था कि आप फिर अप्रैल 1949 जो कराची का एग्रीमेंट था या 24 अक्टूबर 1947 से आज तक क्या करते आए हैं। अगर आप हमें सूबा की बनाएंगे जबकि हम लोकल अथॉरिटी डिग्रेड करके आप दुनिया को क्या बताएंगे। हम अगर कहीं बायनोकमी फोरम पर जिनीवा जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएं, तो क्या हम आजाद कश्मीर को इस जुबान से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। फिर चूंकि चौधरी साहब यहाँ हैं, चौधरी साहब पर हैवी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आपका प्रोविजनल डिक्लेरेशन है 24 अक्टूबर का, उसमें आप लोगों ने कहा है कि ये हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, इट विल नॉट बी ए कम्युनल गवर्नमेंट, इट विल इंक्लूड मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स। और आपने उसमें कहा कि डोगरा के खिलाफ हमें जो जंग लड़ी, सिक्योर करेंगे हम एक फ्री और सेल्फ गवर्नमेंट। किस किस के लिए? फॉर मुस्लिम्स, फॉर हिंदूज एंड सिख्स। फिर भी इन्होंने वहां, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया है, हमारे प्रोविजनल डिक्लेरेशन में सिर्फ मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं और सिख्स हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दीज आर मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। तो क्रिश्चियन भी हमारी उसमें आते हैं, यानी हम जो हमारा कम्युनल सेटअप होगा, तो ये बहुत जरूरी है। फिर उस प्रोविजनल डिक्लेरेशन में ही आपने जिम्मेदारी ली है कि इसके बाद हम
प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो इनवाइट करेगी ऑब्जर्वर्स को ताकि यहाँ राय शुमारी हो। यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जाने से पहले ही आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने कि किस हैयत की हुकूमत होगी, नॉन कम्युनल होगी। फिर आपने उसमें कहा कि हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटिमेंट्स ऑफ गुडविल टू द टू नेबरिंग डोमिनियंस, यानी इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। तो जब आप तो उसके बाद तो आप बिल्कुल बाइख्तियार हो गए जब आपको अक़वाम मुत्तहिदा ने लोकल अथॉरिटी करार दिया। तो इन हालात में हम बिल्कुल ज्यादा परेशानी है कि आपने 6-2 उसमें ऐड किया, लेकिन हाँ ये हमारे लिए बिल्कुल परेशानी है कि अचानक आप एक रात जागे और हक खुदरादियत को मिना करें और कहें जी आपको हम प्रोविंस या प्रोविंशियल स्टेटस देना चाहते हैं। तो जो सरहद पार कश्मीर है, जिसने रायशुमारी करानी है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा का मुंतजिम बराए रायशुमारी अपॉइंट करना है, यानी ये इख्तियार भी कश्मीरियों का है। ये पाकिस्तान का और इंडिया का इख्तियार नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा नॉमिनेट करेगा, लेकिन अपॉइंट करेगी जम्मू कश्मीर की हुकूमत श्रीनगर वाली। लेकिन वो स्टैंड अलोन भी नहीं है, उसने आज़ाद कश्मीर को कंसल्ट करना है। आज़ाद कश्मीर वाले भी स्टैंड अलोन एक्शन नहीं ले सकते, इनको भी हर हाल में, मतलब हर हाल का मतलब यह है कि जब 370 के खिलाफ पार वाले लोगों ने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वहां रुजू किया है, कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उनको जानी चाहिए, कोई ना कोई उनको मॉरल सपोर्ट जाना चाहिए। तो उसके बारे का साम हम ये है कि जी प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, और ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि श्रीनगर वाली हुकूमत ने हिंदुस्तान से बहुत सारी कश्मीर प्रॉपर्टीज वापस ली है, बॉम्बे वाली ली है, हैदराबाद वाली ली है, दिल्ली वाली का केस चल रहा है कोर्ट में। तो पाकिस्तान के पास कश्मीर की प्रॉपर्टीज हैं। तो एक खुश दिली से एंगेजमेंट से ये मामला हल होने चाहिए, न कि आप अचानक आए और कहें हम तशरीफ लाए हेलीकॉप्टर में, इसलिए लाए क्योंकि आपको निजाम हुकूमत चलाना नहीं आता। जिन लोगों ने ये मुल्क आजाद किया, जाहिर है हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया, उनको तो पता निजाम हुकूमत क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, दो ये कॉन्स्टिट्यूशन की उस तशरीह पर क्वालिफाई नहीं करता है, लेकिन एक इंतजाम है, उस इंतजाम को बेहतर करें और जो कमी है खराबी है उनको दूर करें। तो मैं वाहिद साहब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिसने भी, जैसे इरशाद साहब ने भी कहा, जिसने भी पाकिस्तान के जिम्मेदारान के कान में ये बात डाली वो उनका भी दुश्मन है और कश्मीरियों का तो सिरे से ही दुश्मन है। तो जो आदमी अगर पाकिस्तान के साथ इल्हाक के अगेंस्ट बात करना मना है आइन के तहत, तो कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के खिलाफ साजिश तो गद्दारी है, यानी वो मना है, वो गद्दारी नहीं है। लेकिन हक खुद इरादियत के खिलाफ साजिश करना, आजाद कश्मीर की लोकल अथॉरिटी के खिलाफ साजिश करना, तो फिर तो इससे बड़ा गुनाह या सिनिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ द स्टेट और कोई नहीं हो सकता। तो मेरी यही गुजारिश है कि अभी आगे फिर बात करेंगे कि आप मिड स्ट्रीम घोड़े ना बदलें, जो इंतजाम है कश्मीर पर उसी को थामे रहे। हमें कसूरी साहब का कोई प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुशर्रफ साहब का कोई फार्मूला नहीं चाहिए, किसी और। आजाद कश्मीर की एक सदर साहब ने भी 8 नुकाती प्रोग्राम दिया 2 जगहों पर जाकर, तो उधर से हिंदुस्तान ने फिर 5 अगस्त को अपना प्रोग्राम दिया। तो व्हाट वी नीड टू डू कि आज की जो बहस थी इसमें एक चीज की कमी मुझे नजर आई, इन्होंने ये नहीं कहा, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश नहीं की कि 5 अगस्त 2019 के एक्शन को वैकेट कैसे करें, इसको इस पर क्या करें। अगर प्रॉपर्टीज का ही झगड़ा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टीज के झगड़े के साथ साथ ये भी तो बताएं कि कश्मीरियों का बनेगा क्या। इस पर बात नहीं हुई है और मेरे ख्याल में उसकी ये भी एक वजह है कि आजाद कश्मीर में कश्मीरियात जो है ये पढ़ाई नहीं गई। आजाद कश्मीर के जो मेंबरान पार्लियामेंट भी हैं उनमें भी बहुत कम लोगों ने दिलचस्पी ली है कि हमारा केस क्या है। अब सारे तो नहीं, चौधरी यासीन साहब हैं जो जेनीवा भी जाते हैं, ब्रसल्स भी जाते हैं, लेकिन इनसे इनकी सोबत में बैठकर पता करें, जो जाता है उनसे पूछें कि मसला कश्मीर प्रॉपर्टीज को वागुजार करना नहीं है, वो तो
एक लोकल इंतजाम है। हमारा इस वक्त झगड़ा जो है वो है वेकेट कराना इंडिया का एक्शन, इस पर अमल दरामद करना यूएन की टेम्पलेट पर, तो उसमें हम सब का एक फर्ज है, एक हमारा एक रोल बनता है। तो इस रोल को हम, अब आज बहुत अच्छा दिन था क्योंकि कंसेंसस हुआ है कई बातों पर। जी अभी इरशाद साहब ने कहा कि प्रॉपर्टीज पर बड़ी अच्छी बात हुई, लेने के देने पड़े, ये तो वैसे ही उनको प्रॉपर्टी वापस करनी है, बल्कि हम पूछेंगे भी कि वो पैसे आपने कहाँ इन्वेस्ट किए 62 से, ये 62 से इन्होंने एक एक्ट के तहत अपने कब्जे में ले ली प्रॉपर्टीज, और लेकिन अकाउंट कश्मीरियों के नाम है, वहां लिखा है कि ये कश्मीरियों की बहबूद पर खर्च होगा। अब मैं भी कश्मीर पर काम करता हूँ, मैंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा जब उनसे मेरी मीटिंग हुई, उनको पता भी नहीं था कि कश्मीर प्रॉपर्टी क्या चीज है। बहुत से वहां जो सेक्रेटरीज बैठे थे पंजाब असेंबली के, उन्होंने कहा जी हम आपसे अलग बैठना चाहते हैं, ये आप क्या लेकर आए। मैंने कहा जी ये जो जहाँ मुझे ठहराया गया रात, वहाँ मैंने किराया अदा किया, मुझे कहा कि तुम कश्मीर से हो, आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा क्योंकि आप सेंटर से नहीं हो। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरे बाप दादा की है, तो मुझे तो कम देना चाहिए किराया। तो बात ये है कि हमारा इश्यू प्रॉपर्टीज लेना वापस नहीं है, हमारा ये इश्यू भी नहीं है कि हमारा इश्यू ये है कि आजाद कश्मीर को एज ए लोकल अथॉरिटी एक्सेप्ट करें, यूएन टेम्पलेट के तहत ही तशरीफ लाएं। कायरा साहब का भी वहां कल उनकी आमद भी इसी वजह से है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर्ड, अदरवाइज ही इज एन एलियन, जैसा हिंदुस्तान वाले एलियन थे कश्मीर में। मार्च 59 तक इंडियंस कश्मीर आते थे वीजे पर। तो आई विल एंड एट दैट, क्योंकि शायद बाकी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना होगा, लेकिन मैं एज ए लॉयर, वो एक जिम्मेदार लॉयर के ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी हैसियत को भी जाने। और चौधरी यासीन साहब की, अगर चौधरी यासीन साहब आज फैसला करते हैं कि नहीं फला आदमी के आने पर पाबंदी लग जाती है, इट विल बी लॉफुल रिस्ट्रिक्शन, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसी पाकिस्तानी को जो आपके यहाँ के कुदरादियत का दुश्मन हो। आप कह सकते हैं कि ये प्रेजुडिस करता है कश्मीरियों के ओवरऑल इंटरेस्ट को और गुड रिलेशंस बिटवीन आजाद कश्मीर एंड पाकिस्तान। अगर आपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो अच्छे अफसरान रखें, अच्छे वज़रा रखें, बेहतर रखें। मैंने कायरा साहब को कहा कि आपकी कश्मीरियत या कश्मीरियात उतनी आला नहीं है जितनी जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, दूसरे भुट्टो की थी या बेनजीर भुट्टो की थी। बिकॉज आई नो इट कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी, कश्मीर पर उनका इनपुट क्या था, उन्होंने इसको कैसे इग्नाइट किया, चौधरी साहब ने उसकी तरफ इशारा किया। लेकिन इट डजंट मीन कि वो कहेंगे कि मैं उतना ही जानता हूँ जितना भुट्टो साहब जानते हैं या नजीर गिलानी जानता है। मैं तो कश्मीरी हूँ, मुझे तो कश्मीरियात, मैं तो आई शुड नो कि हुआ है। तो अपनी पहचान हमने करनी है और हमें दबना नहीं है, हमने सबड्यू नहीं होना है दलील में, इस्तेदलाल में। जो भी पाकिस्तान का हमदर्द होगा वो इस एक्शन को रद्द करेगा और उस स्कूल ऑफ ओपिनियन को कहेगा कि आपने बड़ा जुल्म किया। पहली दफा कश्मीरी आ गए आपके आमने सामने खड़े हुए, और ये एक बिगिनिंग ऑफ ए वेरी डिफिकल्ट मार्च है जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे खुसूसी तौर पर वेलकम करता हूँ जनाब एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब को। ही इज़ अवर एम्बेसडर टू, और मैं उन्हें भी माइक मैंने भेजा है, वो भी तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। इसके साथ साथ मैं वेलकम करता हूँ अपने भाई सैयद अब्दुल्ला अली गिलानी साहब को। ही इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ जम्मू कश्मीर टीवी की स्पेस में। दिल की अथाह गहराइयों से जो है आपका खैर मकदम है। जितने भी साथी तशरीफ़ लाए, मैं सभी का दिल की अथाह गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। डिस्पाइट योर थॉट्स एंड पॉलिटिकल ओपिनियन, यू आर ऑल रिस्पेक्टेड, और हमारे सर आंखों पे हैं आप सभी। इरशाद भाई, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, इसके बाद में जनाब मोहम्मद तनवीर अनवर खान साहब को वेलकम करूंगा। जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान के वो सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन इससे पहले जनाब इरशाद महमूद साहब जी। मैं क्विकली एक दो बातें कहना चाहता हूँ कि देखिए 5 जैसे इंडिया ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि जी हम नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे।
तो उसके बाद ना मैंने जो चीज़ महसूस की पाकिस्तान के अंदर एक तबका जो है हुक्मरानों का एक तबका जो है उसके अंदर ये एहसास पैदा हो गया कि कहीं हमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी हाथ न धोने पड़े। तो उन्होंने ना एक मेन स्ट्रीमिंग का एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया यहाँ, और उसी से फिर कभी मसौदा इधर से आता है, कभी मसौदा उधर से आता है। तो इस आप कहते हैं हमें भी नहीं पता, हुकूमत कहती है हमें भी नहीं पता, दूसरी पार्टियां कहती है हमें भी नहीं पता, लेकिन मसौदे आते हैं और मसौदे जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों में इस तरह गिलगित बल्तिस्तान पे भी काफी बातचीत होती है कि भाई इसको कैसे प्रोविंस बना दिया जाए। उस पर भी कश्मीरी लीडरशिप ने काफी रजिस्ट भी किया और उनको समझाया भी कि इस तरह से हम अपना केस जो है वो हम जितनी जो हमारी 70-75 साल स्ट्रगल हुई है वो सारा जमीन क्रॉस हो जाएगा। तो अभी भी जो ये चीजें चल रही हैं इसमें अच्छी बात जो ये है कि पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा हो गया। तो इस पॉलिटिकल कंसेंसस को हमने इंटैक्ट रखना है। मुझे गिलानी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, अपने इस्तेदलाल के साथ बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट है जिस हमारे नुक्ता नजर को, हमारी सोच को समझते हैं और हमारी बात को समझते हैं। तो उनके साथ बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं एक डिबेट विच तो मैं जैसे फारूक हुआ मैं कॉल कर आज जैसे गिलानी साहब ने कहा बड़ा मुबारकबाद के दिन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इस सारे मसले को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और अब जैसे मैंने पीटीआई की तरफ से हमने एक बयान भी जारी किया था कि पीटीआई कश्मीर के तशद्दुद पे, रियासत की क़यादत पे, रियासती वसाइल पे, मसला कश्मीर के हल पे और कश्मीरियों का जो हक खुद इरादियत है उस पर किसी किस्म की कोई लचक या कोई कमजोरी नहीं दिखाएगी। तो यही मैं समझता हूँ कि हम सबका ऑलमोस्ट सारी पार्टीज का और अदर कश्मीरियों का इन चीजों पे इत्तेफाक है। तो हमें ये जो मुश्किल हाईलाइट भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, थैंक यू सो मच। जनाब तनवीर अहमद खान साहब जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं दिल की अता करेंगे उसे आपको वेलकम करता हूँ। तनवीर अहमद खान साहब बताइएगा कि इस 15वीं तरमीम के मुद्दे के ऊपर जमात इस्लामी किस नज़र से सोचती है, देखती है और आपका मौक़िफ़ क्या है। गो कि मुझे इल्म है कि जमात ने आज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में शिरकत की, इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि लुबे लुबाब बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं तमाम मेहमानों को भी सलाम कहता हूँ और भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे असल में कि 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों अतराफ में, चाहे वो मकबूजा इलाका हो या आज़ाद कश्मीर हो, एक बहरहाल एक तशवीशनाक सूरत हाल हमारे सामने आई। और उस वक्त 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो इक़दाम उठाए, 370 को अपने आइन से ख़त्म किया और रियासत जम्मू कश्मीर को जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे उसने तस्लीम कर रखा था, उस हैसियत को ख़त्म किया। और फिर 35A जिसे 1927 में 1927 में महाराजा ने ये एक्ट जो है वो रखा था कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोई गैर रियासती बाशिंदा नहीं खरीद सकता, और एक लिहाज से प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए एक एक्ट था। और महाराजा हरि सिंह ने, जैसे उससे हमारे बड़े इख्तिलाफात भी हैं कई इशूज के हवाले से, मगर उसने जब रियासत का इल्हाक अगरचे हमारे लिहाज से गलत किया, मगर ये पॉइंट उसने भारत के साथ उस वक्त भी रखा था जो 35A की सूरत में भारत के आइन में मौजूद रहा। और जाहिर है कि उसके बाद एक सूरत हाल तब्दील हुई और पिछले 3 साल का अरसा गुजरा और हम भी ये समझ रहे थे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं, रियासत के लोग हैं, वो ये समझते थे कि रियासत के इस पार हमें जो है वो हमारा जो वकील है, भाई है पाकिस्तान, उसकी तरफ से और ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जो भी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें आती रही हैं, हम ये तवक्को करते थे कि उनकी तरफ से कोई काउंटर रोड मैप आएगा जो बदकिस्मती से नहीं आ सका। और फिर हमने ये देखा कि इसी दौरान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे के तौर पे लेने की बात की गई और बिलाकर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक नौबत पहुंची कि आज 15वीं तरमीम के जरिए से रियासत जम्मू कश्मीर की जो एक हैसियत है, और यहाँ डॉक्टर साहब पहले बात कर रहे थे, ये दुरुस्त बात है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के तहत भी आज़ाद जम्मू कश्मीर को एक लोकल अथॉरिटी के तौर पे तस्लीम किया गया था, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरियों को एक शनाख्त दी और आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है इसे आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के तौर पे
तस्लीम किया, मुतारफ करवाया। तो आज अगर हम उस देख रहे हैं कि अगर इस 15वीं तरमीम के जरिए से हमारी इस शनाख्त को खुदा न खास्ता रिवर्स किया जाता है तो इसके जो असरात हैं वो मसला कश्मीर के हवाले से हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कि अभी 5 अगस्त 2022 को भी और मुसलसल अभी तक जो है वो एक सूरत हाल आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आपको नजर आई है कि लाखों की तादाद में कश्मीरी जो है वो आज़ाद खिते के अंदर भी सड़कों पे निकले हैं, हजारों की तादाद में जो प्रोटेस्ट हुआ है। और उन्होंने यही इज़हार किया है कि हमारे स्टेटस को जो है वो तब्दील ना किया जाए। और यही मौक़िफ़ हमने जमात इस्लामी ने, हमारे अमीर जनाब साहब ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भी इसको वाज़ेह किया कि रियासत जम्मू और कश्मीर को एक इकाई के तौर पे देखा जाए। और इस मौके पे कि जब जो सीज़फायर लाइन की दूसरी तरफ जो भारतीय सरकार है उसकी तरफ से जिस अंदाज से इक़दाम किए जा रहे हैं और एक एजेंडा खास तौर पे वो आगे बढ़ रहा है और हम समझते हैं कि वो एजेंडा भी दरअसल जो है वो बिहाइंड द सीन एक RSS का एजेंडा है और जिसमें उनका मौक़िफ़ तो दो टोक है कि जिसने हिंदुस्तान में रहना है या यहाँ जिंदा रहना है तो वो हिंदू बनकर रहे। तो वो इसी एजेंडे को लेके हिंदू तबाह का जो एजेंडा है उसको लेके भारत आगे बढ़ रहा है। तो इसके जवाब में तो हम तवक्को करते थे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई एक ऐसा काउंटर रोड मैप दे, मगर बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि इसके बजाय एक 15वीं तरमीम जो है वो उसको मूव करने की बात की गई है और जमात इस्लामी ने भी इसको मुस्तरद किया है। और जो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी सारी जमातों के लोग मौजूद थे। जमात इस्लामी की तरफ से भी जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब जो हमारे जमात के अमीर हैं उन्होंने नुमाइंदगी की और जो एलामिया भी आपके सामने आया है तो उसमें भी 15वीं तरमीम के हवाले से जो वो इसको मुस्तरद किया गया है जिस मसले के तहत 15वीं तरमीम की बात की जा रही है। तो इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ जमात का यही है और जाहिर है कि कश्मीरी कौम ये समझती है कि हम तो ये कहेंगे कि रियासत जम्मू और कश्मीर का जो मौजूदा स्टेटस है तो इसको आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के तौर पे देखा जाए और इसको रियासत की आवाम का एक नुमाइंदा, इसको नुमाइंदा हुकूमत समझते हुए हम ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इसको तस्लीम करे और दोस्त ममालिक से इसको तस्लीम करवाए ताकि कश्मीरी जो है वो अपने बिहाफ पे सफारती सतह पे भी आर्मी सतह पे भी अपने राइट्स के लिए जो है वो आवाज़ उठा सकें और हम इसको ज्यादा मौसर अंदाज में इस आवाज को उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 15वीं जो आईनी तरमीम लाने की बात सरदार साहब वाहिद ताशिर बात कर रहा हूँ। आप शायद मसरूफ होंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी फोन कॉल पर आपको ले उन सब ने इसको मुस्तरद किया है और ये खुशाइन बात है। हम तो वहाँ करते हैं कि रियासत के अंदर कोई मेंबर पार्लियामेंट ऐसा यकीनन नहीं होगा जो तरमीम को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोशिश कर सके। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब इस वक्त हॉल पे मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि मैं चूँकि वो सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर नेट की सहूलत नहीं तो मैंने बराह रास्त कॉल किया उन्हें। सरदार साहब, जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका, आपने वक्त दिया। सरदार साहब बताइएगा कि 15वीं तरमीम के हवाले से ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नुक्ता नज़र क्या है। यहाँ पर बेशुमार हज़ारों लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे भी आपके ख्यालात को, इसके ऊपर आप किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि मुख्तसर सा इस तरमीम के हवाले से मुख्तसर सा जो पस मंजर है वो आपके सामने के होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी हकूक़ है लोगों को 1970 में मिले हैं पहली बार। 1970 में सियासी जमातों को हक मिला है इंतखाबात में हिस्सा लेने का और उस जिस एक्ट के तहत मिला था उस एक्ट का नाम था एक्ट 1970 का एक्ट था और उसके तहत आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए और सियासी निज़ाम के तहत इंतखाबात हुए और वो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जनरल जहाँ के ज़माने में हुआ। लेकिन बाद में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत बन गई और शिमला मायदा हो गया तो उसके फौरन बाद फिर ये एक्ट 74 वजूद में आया जिसके नतीजे में कश्मीर काउंसिल बन गई। अब वो बेहतरीन बात तो एक्ट 77 था लेकिन कम अज कम करने की बात ये थी कि 1977 में कश्मीर काउंसिल में इस आज़ादी की आइन में हुकूमत पाकिस्तान की जो भी मामला थे वो एक ब्रिज का काम काउंसिल कर रही थी। 1977 के बाद दरमियान में जब बजाय जबल सुल्तान जेल में कैद हो गए
और मुस्लिम गार्मेंट्स के कायदीन को जुलाई जेल में भेज दिया गया। तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकतरफा तौर पर आज़ाद कश्मीर की आईन में तरामीम की जो 1975 में की गई। उसके बाद 1979 में 23 मार्च 1979 को जब अयाज खान साहब ने एक इंतजामी हुक्म के तहत आज़ाद कश्मीर के जो एक्साइज टैक्सेशन के और इनकम टैक्स के मामला थे वो उनसे दस्तबरदार हो गए और वो हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए। अब इस तरह इस एक्ट 1974 का जो होलिया था वो बिगड़ गया सारे का सारा। आज के वक्त में हम सारे लोग, खास तौर पर सारे लोग नहीं बल्कि मुस्लिम गार्मेंट्स, क्योंकि सारे लोग शामिल नहीं थे, मुस्लिम गार्मेंट्स खास तौर पर सरदार अब्दुल खान साहब के जमाने में, सरदार सदरियाज खान साहब के जमाने में, मेरे जमाने में जब मैं 2 बार वज़ीर आज़म रहा, तो हमारी सारी खतों मुताबिक इस बात पर थी कि एक्ट 1974 में जो तरामीम की गई है 75 में और 79 में, इन्हें वापस करके इस कश्मीर काउंसिल को 1974 की असल हालत में बहाल किया जाए। यहाँ से वो नहीं हो सकी। बाद में फिर नवाज अजीज के जमाने में राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान में शाह खान नवाजी साहब वज़ीर आज़म थे, तो इन्होंने उस वक्त इसमें तरमीम की जो 13वीं तरमीम कहलाती है। उसमें फिर कुछ हुक्म रह गया था जो फिर राजा फारूक हैदर खान साहब के जमाने में 4वीं तरमीम के वजूद में आ गई। अब तो उसके बाद फिर इस पर एक तनाज़ा चलता रहा क्या अच्छा और क्या बुरा है। मैं मुख्तसर से इस तरमीम के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीर काउंसिल के मामले में 3 पहलू हैं। एक है उसकी आईनी हैसियत का, एक है उसका मालियाती इख्तियारात का, एक है उसका इंतजामी इख्तियारात का। तो जहाँ तक माली इख्तियारात का ताल्लुक है वो 100% आज़ाद किसी हुकूमत का हक है। जहाँ तक इंतजामी इख्तियारात का ताल्लुक है वो 100% आज़ाद किसी हुकूमत का हक है कि एक मुतवाज़ी हुकूमत कश्मीर काउंसिल ने कायम कर दी थी। आईनी तौर पर इसका वजूद इसलिए जरूरी है कि अगर ये काउंसिल बीच में न रहे तो फिर हमें वज़ारत अमूर कश्मीर के पास जाना पड़ता है, जिससे हमारी क़यादत ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़के मेहनत से जान छुड़ाई थी और हुकूमत पाकिस्तान एक दूसरा नजरिया उनके पास जो उनकी अपनी वजारत है उसके मुकाबले में कश्मीर काउंसिल जो है वो बेहतर और मौसर रोल अदा करते थी। अब ये जो मौजूदा हालिया मुसवदा है जिसके बारे में आपने सवाल किया है, इस मुसवदे की पहली बुनियादी तो बात यह है कि इस वक्त तक असल हालत में वो मुसवदा हमें नहीं दिया गया और अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी मिला है तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो मुसवदा हमारे साथ शेयर नहीं किया। हत्ता के जो कमेटी बनाई गई जिसके बारे में सोशल मीडिया से मालूम हुआ उन दोस्तों का भी कहना ये है कि कोई ऐसा मुसवदा मौजूद नहीं है, लेकिन इस पर बहुत लेदे हो रही है, बहुत बहस हो रही है। इस दरमियानी हफ्ते में जिन दिनों ये मुसवदा आने जाने की बात हो रही थी उन दिनों मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल खान साहब की 7वीं सालाना दौरिया तकरीर थी। उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब ने बहुत बाशगात अल्फाज में इस बात का इजहार किया कि वो अपनी कब्र पर गद्दारी का कोई कस्बा नहीं लगवाना चाहते और वो सारे के सारे इस पोजीशन पर कायम है। अब हमारी पोजीशन ये है कि मुस्लिम गार्मेंट्स मसला कश्मीर का मामला हो, मुस्लिम गार्मेंट्स रियासत जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस का मामला हो, मुस्लिम गार्मेंट्स रियासत की हिफाजत का मामला हो, आज़ाद कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी का मामला हो, इन मामला में हमारी पोजीशन रोज अव्वल से वाज़ेह रही है। उसमें कभी हम लचक पैदा नहीं की। मसला कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान को रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा समझना हो और आज़ाद कश्मीर की दाखिली खुद मुख्तारी है। ये जो बीच में कमर ज़मान कायरा साहब मुसव्वफ़ात तशरीफ़ ले गए वो ज़ाती तौर पर वो काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने बिटवीन द लाइन बात की इशारे किराए में और उन्होंने कहा कि हम तो इख्तियारात लेने वाले नहीं, देने वाले लोग हैं और हम तो सूबाई दर्जा देकर और खुसूसी हैसियत की दे सकते हैं। अब सूबाई दर्जा जो है वो आज़ाद कश्मीर को देना रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के मुतरादिफ है और मसला कश्मीर से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। इसलिए कायरा साहब के तमाम तरह एहतराम के बावजूद उनकी इस बात से को 100% जो है वो 1% भी उस बात को कबूल नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो कमेटी जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया में बना दी, बनाया हमारे इल्म नहीं है, उसमें जो तजावीज़ दी गई है ऐसी फैंटास्टिक है, यानी ऐसी पता लगता है कि किसी शेर के बच्चे ने बैठकर उनको डिजाइन किया है कि महाराजा हरी सिंह से भी ज्यादा पता लगता है कि कश्मीर काउंसिल को इख्तियार देना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर असेंबली को बेइख्तियार करना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल बेवकार करना चाहते हैं, कोई टूरिज्म अथॉरिटी बनाना चाहते हैं जिसके तहत आज़ाद कश्मीर के पादरी और सरकारी और जंगलात के और टूरिज्म का जो कीमती चीजें हैं
उनके बारे में आजाद सरदार साहब माजर चाहता हूँ, यहाँ पर रोकता हूँ। आपका एक विजन हुआ करता था सिविल एंड मिलिट्री कोऑपरेशन और सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। ये जो टूरिज्म अथॉरिटी है इसमें पाकिस्तानी फौज के 2 अफसरान बैठे होंगे, क्या ये आपके विजन की तकमील नहीं कर रहा? क्यों आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं? मेरा जो मिलिट्री डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में बार बार मार्शल न लगाया जाए और पाकिस्तान में पार्लिमानी, सियासी और इंतखाबी जितने इदारे हैं हमारे वो सारे मिलकर काम करें और एक दूसरे की मुआवनत करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी भी मामले में जहाँ एक काम अच्छा बड़ा चल रहा हो, साल से कम 1970 से तो बहुत उम्दा तरीके से और आला तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान में 4,600 हुकूमतें तब्दील होती रही और आजाद कश्मीर की हुकूमत 5 साल पूरा करती रही। आजाद कश्मीर में अल्लाह के फजल से जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मैच्योर हो चुकी है और आजाद कश्मीर के लोग फौज को दिलो जान से एहतराम के साथ देखते हैं। और हम जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले लोग हैं, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज का दिफा का और कश्मीर का ताल्लुक लाजम मंजूम है। लेकिन इंतजामी मामला के तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई असल में समझा किसी चीज का मिला ही नहीं तो बात मालूम हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये सुनते हैं, सुनाते हैं। अब ये जो एक कमेटी का जिक्र है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ उस कमेटी में दीवान अली खान चुगताई है। दीवान अली चुगताई साहब असेंबली में 2 बहुत जोरदार और भरपूर तकारीर सबसे पहले कर चुके हैं फर्जी तरमीम के हवाले से, जैसी किसी तरमीम को साथ नहीं दे सकते। तो इस तरह का जो तजाद है, कंफ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए राजा फारूक हैदर साहब ने कोई आज कॉन्फ्रेंस की रखी हुई थी। मैं स्टेशन पर मौजूद ही था कि खबर में हूँ, यहाँ से मैं ऑडियो मैसेज के जरिए शरीक हुआ हूँ कॉन्फ्रेंस में। मिर्जा शफीक चिराग साहब ने मुझसे कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी की है। तो इस तरमीम के हवाले से आपने बात की थी, तो इसमें मैं अपना मुख्तसर सा अपना मेरा जो नुक्ता नजर है, और ये नुक्ता नजर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, रोज़े अव्वल से है, रईस कायद से लेकर सरदार मोहम्मद कयूम खान तक और हम तक इसका तसलसल कायम है। सरदार साहब आखिरी सवाल ये है कि इस जो पुंछ में पब्लिक राइट्स मूवमेंट चल रही है, असीरान के हवाले से भी आज की जो है पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको रहा करने का हुक्म जारी किया। वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, क्या समझते हैं कि लोगों के अंदर इस कदर ज़्यादा शऊर आ गया है कि वो इस रियासत और फिर आज़ाद कश्मीर के हकूक़ के ऊपर सौदेबाजी के मामलात और किसी भी पार्टी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो अख्तियारात और हक हाकमियत को जो है वो फरोख्त कर दे? आप समझते हैं कि अब लोगों के अंदर इस कदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है? क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, इस सारे प्रोग्राम में जो सोसाइटी भी शामिल है, सियासी जमातें भी शामिल है और कई किस्म के तबकात और अनासर शामिल है ये लोगों की जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बिजली का मसला है जो बिल्कुल यकीनन है, आज़ाद कश्मीर में पीने के पानी का मसला है जो बांग्लादेश से 600 क्यूसेक पानी इरीगेशन के लिए पीने के लिए मिलना चाहिए, जो बांग्लादेश के बेसिक एग्रीमेंट में वापदा के दस्तखत की हुकूमत पाकिस्तान में वो शामिल है। और आज़ाद कश्मीर की के अंदर जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनके जरिए मजीद बिजली पैदा करके आज़ाद कश्मीर के लोगों को सफियत बिजली मुहैया की जा सकती है। सरप्लस बिजली हम पाकिस्तान की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। तो ये सारे काम करने में हुकूमत पाकिस्तान कोई भी हो उसको क्या सवाल ये पैदा होता है कि छोटे छोटे मसाइल को पहले उलझाते हैं, खराब करते हैं, फिर इंतजामी तबके जो है वो मसले का हल नहीं रही है। आज़ाद कश्मीर के लोगों जो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के लोग हों, आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन है, आज़ाद कश्मीर के लोग खुदा के फजल करम से सियासी तौर पर भी बाला नजर लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मामला की हैंडलिंग जो है ये सियासी हैंडलिंग होनी चाहिए थी। बस पुंछ में साल हुई थी, मुजाहरा हुआ था, पूरी तौर पर 2-3 गुजरा को चले जाना चाहिए था, सियासी लोगों को वहाँ जाके बात करनी चाहिए थी। लेकिन अगर इंसानिया के कुछ दूसरे तीसरे दर्जे के अफसरान को आप भेजें और इतनी बड़ी जो हड़ताल है, एहतजाज है, उसको आप टैकल करें, ये सूरत बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। और पुंछ जैसा इलाका जिसके चप्पे चप्पे पर लोगों ने अपने खाने की दवाइयाँ जान दी है, आज अगर वहाँ बख्तर बंद गाड़ियाँ किसी वजह से खुदा खासा भेजनी पड़े तो ये किसकी आज़ाद कश्मीर की या पाकिस्तान की हुकूमत की? पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत है, उन्हें चाहिए, उसका नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, उन्हें चाहिए कि उन बातों का ख्याल रखे कि आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर के पुरअमन और बहुत बेखनाम इलाके को इस तरह इंतजामी बदनज़मी का शिकार न करें, दानिस्ता तौर पर
सरदार साहब, आखिरी सवाल बताइएगा कि ये सारे मामलात, इसका सर आगाज़ जब हम देखते हैं, जो रीसेंट क्राइसिस हैं पॉलिटिकली, उसका आगाज़ जो है मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौजूदा हैं आज़ाद कश्मीर के, सरदार तनवीर इलियास साहब, उनकी एक स्पीच हुई है मुजफ्फराबाद में, उस मकाम से होता है जिसमें उन्होंने जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करने वाले हैं उन्हें रा का एजेंट कहा, और ये एक ओपनली हुआ। उस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, और मैंने अपने प्रोग्राम में भी उनसे भी ये पूछा, अगर आप 2 मिनट के लिए उस वक्त वज़ीर आज़म होते और आपसे नादानिस्ता तौर पर ही सही ये बात निकल जाती मुंह से, तो इस वक्त क्या आप रियासत के एक बड़े बाप की हैसियत से ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कह दें, आप मेरे अजीज़ हैं, मैं आपके नज़रिए से इख्तिलाफ करता हूँ, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। क्या आप प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मशवरा देंगे इस हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि आपको अंदाजा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दो ही नजरिए, दो ही अकीदे सियासी और दो ही धारे हैं। एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का है और दूसरा कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का है। उसके सबसे बड़े जो प्रचारक थे वो अमानुल्लाह खान साहब ज्यादातर उनके दर्जे बुलंद करे। तो आपको याद होगा कि 85 की हुकूमत में जब कश्मीर लिबरेशन अलायंस बना तो उसमें बजाय जब सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान उसके सरबराह थे और अमानुल्लाह खान साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे। अब तमाम तर नजरियाती इख्तिलाफात के बावजूद जो हमारे सर का मकासद है उसमें हम इकट्ठे काम करते रहे। जब अमानुल्लाह खान साहब दुनिया से रुखसत हो गए तो आपको याद है कि मैं रावलपिंडी से उनकी डेड बॉडी लेके मैयत ले गए, रोजे की आदत में 24-25 घंटे सफर कर गए, हम गिलगित गए और तस्वीर के 2 दिन बाद भी वहाँ उनके अहले खाना के पास जाके ताजीब करके वापस आए। ये जो बात प्राइम मिनिस्टर से मंसूब है, मेरा अपना ख्याल ये है कि स्लीपर टैग हो सकती है। दानिस्ता तौर पर इस तरह की बात करने का आजाद कश्मीर का हर, देखिए आजाद कश्मीर की 2 ही हैसियत है। एक हैसियत ये है कि लोगों ने 43 में कुर्बानियां दी और हर दूसरा तीसरा चौथा घर कुर्बानी में शामिल है, और जो कोई किसी तहरीक के साथ भी वाबस्ता हो, लेकिन बुनियादी तौर पर आजाद कश्मीर के 99.9% लोगों के आबो अजदाद का खानदानों का ताल्लुक मुस्लिम कारखान के साथ है या पहली तरफ नेशनल कारखान के साथ है, बाकी किसी तीसरे तबके के साथ कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। बाद में अगर मौजूदा हालात में आप देखें तो मुल्क में हर दूसरे तीसरे चौथे घर में पाकिस्तानी फौज से पेंशन लेने वाला आदमी बैठा हुआ है और पाकिस्तानी अच्छे घर में पाकिस्तानी फौज में खिदमत सरंजाम देने वाला आदमी जो सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत नहीं बल्कि सारी दुनिया के पूरे में पीस कीपिंग फोर्स में जाके शामिल हो गए, दुनिया में अपना हक अदा कर रहा है। अब एक बात में हमारे जितने भी अजीज और दोस्त और अहबाब और ये सियासी कारकुनान शामिल है, उनको इस बात का फर्क करना चाहिए कि हम किसी भी गुस्से या नाराजगी में इस बात से मुतमल नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक पलड़े में डालें। हम इस बात के मुतमल नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फौज को एक पलड़े में डालें। हम किसी तरह इस बात के मुतमल नहीं हो सकते कि हम पाकिस्तान को, देखिए मौजूदा जम्मू कश्मीर से लोग महाजिर हुए, उनमें से कोई आदमी चीन नहीं गया एक दोस्त मुल्क में, हिंदुस्तान में नहीं गया कुर्बत की वजह से, अरब ममालिक में नहीं गया इस्लाम दोस्ती की वजह से, और यूरोप और अमेरिका में जो लोग हैं वो बांग्लादेश की वजह से गए, मतलब उस महाजिर की बुनियाद पर नहीं गए, वो महाजिर तस्लीम ही नहीं हुए, लेकिन वो सारे के सारे पाकिस्तान में बैठे हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसके चप्पे चप्पे पर लोगों ने कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी है और साथ दिया है, वो इस कुछ तरह से रहते हैं। और बहुत दूर की तादाद थोड़ी होगी, बहुत से लोग नाराज होंगे, लेकिन सारी तहरीक को इस तरह की बातें करने से तहरीक से मुतासर होती है। उस तरह से पता लगता है कि कोई और ऐसे अजायम है जो मालूम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कुछ स्लीपर टंग हो सकती है, मतलब वो अच्छे बल्लेबाज आदमी है, तो आदमी बहुत पुराने सियासत से वाबस्ता नहीं है, उनका सियासी निजाम सियासी मामला बहुत अभी बिल्कुल कल की बात है, लेकिन सारी बात के बावजूद उनकी तबीयत में ऐसी सख्ती और ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देता कि वो इस तरह तो सरदार साहब, आप बड़े काबिल एहतराम हैं और मैं एक्नॉलेज करता हूं, आप खुद तशरीफ लेके गए और ये आज़ादी पसंद हल्के जो हैं ये आपको इस इकदाम को बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं। सरदार साहब, आपकी जो बातें हैं वो बड़ी गौर तलब भी हैं। अगर आज़ादी पसंद या कौम परस्त या खुद मुख्तार कश्मीर की बात करने वाले इंतहाई कम या कलील तादाद में, तो क्यों नहीं आप मशवरा देते कि उन्हें जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, एक्सेशन टू पाकिस्तान की जो शिक है उसको पीछे कर दें, एंड लेट्स ब्रिंग द हॉर्सेस इन द फील्ड एंड ब्रिंग इट ऑन।
اور کیوں نہ ایک پولیٹیکل جو ہے ہم اس کو جو غصہ ہے اس کو کنورٹ کریں ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کی شکل میں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم the government of آزاد کشمیر should release my own basic rights. میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں بھی ڈڈیا LA1 میں مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, اور کیوں نہیں, یہ میرا حق نہیں ہے سردار صاحب؟ ٹھیک بات ہے. دیکھیے اس میں دو باتیں بڑی واضح ہیں اور بڑی سمپل ہے. ایک تو سمپل بات یہ ہے کہ خود مختار کشمیر کی بات کرنے والے لوگوں کا بنیادی پلیٹ فارم جو ہے وہ JKLF ہے, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے. مسلم کانفرنس جو علاقے پاکستان کی بات کرتی ہے وہ 1932 سے بنی ہے. JKLF 77 میں برطانیہ میں بنا ہے, اور وہ ایک ملیٹنٹ تنظیم کی اصلی تنظیم کی گوریلا جنگ کی جدوجہد کرنے والے پلیٹ فارم کے ایجنٹ تھے. انہوں نے سیاست میں حصہ لینے کی باضابطہ طور پر شاید آج تک بھی فیصلہ نہیں کیا اس بات کا کہ وہ حصہ لینا چاہتے یا نہیں لینا چاہتے. دوسری بات یہ ہے جو بڑی اور اسی طرح غور طلب آپ نے ٹھیک بات کی کہ دنیا کا ہر ملک, دنیا کا تمام نظام, ساری دنیا میں جہاں آزاد ممالک ہیں وہاں پارلیمنٹ مل کر اس کے بارے میں آئین سازی اور قانون سازی کرتی ہے. اب پارلیمنٹ کے اندر جس وقت یہ قانون پاس ہوا ہے تقسیم کرنے کا پاکستان کو, نظریہ علاقے پاکستان کو, جس وقت آزاد کشمیر کے آئین میں پروٹیکشن مہیا کی گئی ہے, اس وقت مسلم کانفرنس میجورٹی میں نہیں تھی. یہ بات ریکارڈ پر رہنی چاہیے کہ اس وقت کیس حکیم صاحب کے لوگ, غازی سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی آزاد مسلم کانفرنس کے لوگ, کیس حکیم صاحب کو لبریشن کے لوگ, اور دوسرے لوگ اقلیت میں تھے اور مسلم کانفرنس اقلیت میں تھی. اس اقلیت اور کیس حکیم صاحب جیسی پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے. تو میجورٹی اسمبلی کی میجورٹی نے آئین سازی کی اور آئینی اس بات کو شامل کیا. اب آئینی اس بات کی تبدیلی کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اس کا کوئی بنیادی سبب ہونا چاہیے, کس بنیاد پر کریں. یہ جو JKLF اگر کل کو فیصلہ کرے تو انہیں باضابطہ طور پر الیکشن میں لڑنا ہے تو پھر ان کو اس وقت کی حکومت کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, انہیں معلوم کرنا پڑے گا, اور اس بات کا متبادل تلاش کرنا پڑے گا. لیکن اس بات کو کہ پارلیمنٹ کا تقدس حاصل ہے, پارلیمنٹ کا کور حاصل ہے, اور یہ تو کسی پارٹی کا یا کسی انتظامی حکم کے تحت تو وجود میں نہیں آیا. یہ تو خالص تک جو ہے یہ ایکسیشن کا ڈاکومنٹ جو ہے یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا, جس میں کہ مسلم کانفرنس مائنارٹی میں تھی, اقلیت میں تھی, اس اسمبلی کا بنایا ہوا آئین ہے. سردار صاحب ٹھیک ہے. سردار صاحب, اگر کوئی اسمبلی میں کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ آتی ہے آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں, مثال کے طور پر کوئی بھی ممبر, قابل احترام ممبر اگر اس کی کوئی تحریک پیش کرتا ہے تو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اس بات کی حمایت کرنے کا عندیہ دے سکتی ہے کہ انہیں بھی جو ہے قومی دائرے میں لایا جائے, انتخابات لڑنے کے لیے انہیں بھی کوئی اگر امینڈمنٹ کرنا پڑتی ہے, کوئی تخفیف دینا پڑتی ہے تو آئیں, کیوں نہ آئیں, کیونکہ یہ تو میرا حق بنتا ہے. دیکھیے ایسے ہے کہ ہم نے ماضی میں مقبوضہ جموں کشمیر کے انتخابات کی حمایت کی تھی. عالمی برادری کے نمائندوں نے یہ جاننا چاہا کہ مقبوضہ کشمیر کے انتخابات میں حریت کانفرنس حصہ لے. حریت کانفرنس تو غالباً تقسیم سے مخالف تھی, لیکن مجاہد لیول نے اس کو اسٹرانگ اسٹینڈ لیا. جب انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ کے اور عالمی برادری کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو ان کے ساتھ یہ بات طے کی گئی کہ کشمیریوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا جائے ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانے سے, کیونکہ ہمارے بے شمار لوگ جو ہیں بعد میں تحریک میں بھی شامل ہوئے آزادی میں, لیکن وہ شروع میں ہندوستان کے ساتھ 2-3 دفعہ وفاداری کا حلف اٹھا کے اسمبلی میں بیٹھے رہے تھے. ان حالات میں ضروری تھا کہ متبادل راستہ نکالا جائے. میں خود ذاتی طور پر اور مسلم کانفرنس تو کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ, ایکسپریشن کے ساتھ, ساری ریاست کی عبادت کے ساتھ, ریاست کو ناقابل تقسیم عبادت سمجھنے کے ساتھ, بلکہ بلتستان کو ریاست کا حصہ سمجھنے کے ساتھ, ہم تو ہماری تو یہ پوزیشن کمیٹیڈ ہے. ہم ذاتی طور پر تو اس سے کوئی ڈپارچر نہیں کر سکتے, لیکن جب یہ مسئلہ کسی رنگ ڈھنگ سے زیر بحث آئے گا اس وقت کے حالات کے تحت بیٹھ کر بات کی جائے گی کہ اس کے پروس اینڈ کونس دیکھے جائیں, کیا نفع کیا نقصان ہے. لیکن میں بالکل کسی آدمی کو بھی ڈیموکریٹک پروسیس سے باہر رہنے کے حق میں نہیں ہوں. ہم ڈیموکریٹ ہیں, سیاسی کارکن ہیں, جمہوریت پسند ہے, نظام کے سیاسی کارکنان ہیں, تو ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ اگر وزارت قیوم خان صاحب اور امان اللہ خان صاحب ایک پلیٹ فارم پر صدر اور جنرل سیکرٹری کے حیثیت سے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو اور کیا بات نہیں ہو سکتی. کئی باتوں کے راستے نکالے جا سکتے ہیں, لیکن ہماری
साहब जो फजूल खान ने जिसका तय किया है, हम उससे डिपार्चर के मुताबिक नहीं हो सकते। जनाब सदारती के अमन खान साहब, बहुत नवाजिश आपके वक़्त की। अल्लाह तबारक व तआला आपकी लंबी उम्र अता फरमाए और आपका सफ़र बखैर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो दोस्तों, जनाब सदारती के अमन खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और काफ़ी डिटेल में आपने सुना। जो उनकी गुफ्तगू के नताइज आपके सामने हैं। मैं यहाँ पे तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है हमें काफ़ी तवील देर से बर्दाश्त किया। अतर मसूद वानी साहब, थोड़ी देर माइक लीजिए और स्पेस को थोड़ा सा चलाइए, मैं हाजिर होता हूँ आपके सामने। जी शुक्रिया वाहिद साहब। मैं चाहूँगा यहाँ पे बासित साहब हैं, पता नहीं स्पेस छोड़ दी इन्होंने। बासित साहब अगर होते उनकी भी हम राय देते। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह मेरा 1-2 दिन पहले तक मेरा ख्याल ये था कि कश्मीर की आवाम जो है वो लीड कर रहे हैं और सियासतदान पीछे रह गए हैं। लेकिन आज जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिस तरह इन्होंने एक मजबूत मौक़िफ़ सामने लाया है और तमाम कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज ने वो यकजान होकर अपना एक मुश्तरका एलामिया में उसको कश्मीर की हैसियत में किसी भी किस्म की वो कमी करने में उसकी जो मजम्मत की है और उसमें जो उसको तस्लीम नहीं किया और ये मज़ामत दिखाने का जो ऐलान किया है, तो ये बड़ा खुशाइंद है। और हम सबका यही होनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी रहनुमा होते हैं उनका काम होता है आवाम को वो लीड करना। तो आज जो है उन्होंने इस किरदार का मुजाहरा किया है बिलाशुबा कि वो जो आवाम का एक, लेकिन इसमें हम आवाम को हमें क्रेडिट देना चाहिए, सिविल सोसाइटी को क्रेडिट देना चाहिए कि जिन्होंने ऐसा प्रेशर बिल्डअप किया कि हमारे सियासतदान भी वो उनकी जो राय थी उसको इग्नोर ना करने पे मजबूर हुए और उन्होंने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया इस तमाम सूरत हाल के ऊपर। और जिस तरह मैंने पहले कुछ दिनों पहले भी लिखा था मैंने कि ये कश्मीर में कुछ अर्से पहले तक, चंद हफ्ते पहले तक कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से कुछ करने या वो किए जाने का एक बात होती थी। तो अब तमाम जो कश्मीर में ये मौजू है वो यही हो गया कि कश्मीर की हैसियत जो है वो भी खतरे में है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये इस बात का एहसास करना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर को तो हम हमेशा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है वो दिफाई मोर्चा है, वो किला है पाकिस्तान का। तो यहाँ के अगर लोगों में भी अगर इस तरह की सूरत हाल, उनमें बेचैनी पैदा होगी, अपने इख्तियारात के हवाले से उनमें तशवीश पैदा होगी, तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है ये। तो इसमें दूसरा ये है कि इसमें हमारे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि वो यहाँ बड़ी इस बात का ये तशवीश पाई जाती है कश्मीरियों में कि पाकिस्तान में, दुनिया में हमें क्या, हम आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ये मुतालबा करती है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाए कि वो कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया में बात करें, क्योंकि कश्मीरी बात करेंगे, अपना केस खुद लेके जाएंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये इस तरह सूरत हाल है कि दुनिया में हमें क्या परमिशन दी जाएगी, क्या इख्तियार दिया जाएगा बात करने का। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमें बात करने का, कश्मीरियों की बात नहीं उनकी सुनी जाती, उनसे मुशावरत नहीं की जाती। मुशावरत करना तो बहुत दूर की बात है, वो अपना वो राय का इजहार भी, उनको उनकी बात सुनना, उनकी राय को महसूस करना, उनके जज्बात को महसूस करना, इसका भी कोई माहौल नहीं है, ना मीडिया पे, ना हुकूमती सतह पे, ना सरकारी सतह पे, ना ओपन फोरम्स में, ना बंद कमरों में। ठीक है, अतर साहब वापस आता हूँ आपकी तरफ। मैं मशकूर हूँ आपका, आपने जो इनपुट दिया है। अतर साहब की जो वेबसाइट है कशीर न्यूज़, आप उसका मुताला कर सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ताज़ा तरीन सिचुएशंस क्या है मुजफ्फराबाद में, और बेशुमार दीगर दोस्त भी जुड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद जो हैं दोस्त जिनका अनाउंस किया था आज के पैनल में, तनवीर अहमद खान साहब है, तनवीर अनवर खान साहब, मैं उन्हें दोबारा लूँगा क्योंकि वो गुफ्तगू कर रहे थे और जनाब अतीक अहमद खान साहब जो है वो उनके साथ रब्ता हो गया। तनवीर अहमद खान साहब, बताइएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जमात ने शिरकत की, आपने इसके ऊपर सैर हासिल बात की, बताइएगा कि अब इस तहरीक को आप जिस पैमाने पर देख रहे हैं, जो इस खित्ते के अंदर तहरीक है अमेंडमेंट के हवाले से, उसको रिजेक्ट करने के हवाले से, और बिलखुसूस पूंछ के अंदर जो
یہ تحریک کا مرکز بنا ہے، اس کے اثرات جو ہیں آپ پورے آزاد کشمیر کے اوپر پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کل میرا ڈڈیال جو ہے وہ مکمل شٹر ڈاؤن ہو رہا ہے. مظفر آباد میں، میرپور میں، نیلم میں ہم نے دیکھا. جماعت جو ہے من حیث الجماعت جو ہے وہ کیا اس اقدام کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہوئے عوام کے جو 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 معاملات ہیں اس کے اوپر ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جی تنویر احمد صاحب. بہت شکریہ جی. پہلے بھی میں بات کر رہا تھا، بیچ میں سردار عزیز صاحب تشریف آئے، انہوں نے بات رکھی. میں وہاں سے تھوڑی سی بات کلیئر کر کے آگے چلوں گا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ جو وہ اقدامات پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے نہ کیے جائیں جس کے نتیجے میں بھارت کی حکومت کو کوئی جواب ملے، وہ اس کو مثال بنائے اور وہ دنیا کے سامنے یہ بات رکھے کہ اگر میں نے ادھر جو ہے وہ 3370 کو ختم کیا، 35A ختم کیا اور 50 لاکھ سے زائد غیر ریاستی باشندوں کو اب تک بھارت میں جو ہے وہ ڈومیسائل جاری کیے ہیں، اور اگر ادھر جیسے عتیق صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی ان سے ٹورزم اتھارٹی ایکٹ کے حوالے سے بات کی ہے. اب ادھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سرسبز اور شاداب ان پہاڑوں پہ اگر پاکستان سے ہمارے وہ بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں ہے ہوتا ہے. اور پاکستان کے آئین میں بھی 257 جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہمیں خاص حیثیت حاصل ہے. اس کو جو ہے وہ نہ چھیڑا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے. جو آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہے اس میں ظاہر ہے 3 بنیادی جو وہ چیزیں ہیں. ایک تو آئین سازی کے حوالے سے معاملہ ہے، مالیاتی حوالے سے اور انتظامی حوالے سے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی جو بات ضروری ہے ریاست جموں و کشمیر کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اگر اس میں بھی کسی ترمیم کی ضرورت ہے تو یہ حق بھی ریاست جموں کشمیر کی جو ہماری یہ آزاد حکومت ہے یہ حق اس کا ہے اور وہ کرے، نہ کہ کوئی ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ پاکستان سے کسی ڈپارٹمنٹ کا اٹھے اور وہ چیف سیکرٹری کو خط لکھے اور انیشیٹ کرے اور اس کو لے کے آگے بڑھے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے کونس کے حوالے سے، اور پہلے جو ہے وہ اطہر صاحب بات رکھ رہے تھے، میں یہ عرض کروں کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ شامل ہیں اور ساری جماعتوں کی اس میں نمائندگی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہی اس ایشو کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی اور میں نے بھی پہلے بات رکھی، چاہے وہ ڈڈیال کی بات ہو، میرپور کے اندر آپ نے دیکھا 5 اگست کو ایک زبردست جو ہے وہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا ہے، پیپر کے اندر ہوا، اور کوٹلی میں، پلندری میں، یعنی پورے پونچھ میں، پھر باغ میں، ظفر آباد کے اندر، حتیٰ کہ دور دراز اپر نیلم کے ایریاز میں بھی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور اپنے ان رائٹس کے حوالے سے بات کی ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ آج کی جو کانفرنس ہے اس کو بھی ایک اچیومنٹ سمجھتی ہے، لیکن ہمارا اطمینان اس وقت ہوگا کہ جب موجودہ جو ہماری ریاستی اسمبلی ہے وہ ایک قرارداد کے ذریعے سے اس طرح کے کسی بھی اقدام کو مسترد کرے متفقہ طور پہ، تو یقیناً یہ بات جو ہے پھر زیادہ اطمینان بخش ہوگی. اور جب تک کہ ہم اس ٹارگیٹ کو حاصل کرتے ہیں ہم مسلسل بات کرتے رہیں گے. اور اپنے جو بھی ہمارے بھائی ہیں جس طرح آج انہوں نے ایک اچھا موقف ساری جماعتوں نے رکھا ہے، چاہے وہ حکومت میں ہوں اپوزیشن میں ہوں، سب نے یہ موقف دیا ہے کہ وہ مدنی آئین کو جو میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی.
नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीसफैलन के इंतहाई करीब वाक़या यूनियन कौंसल सिर कुकुटा के इलाका तेतरी रोड रकबा डूंगा के मुकाम पर, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जमील वल गुलाम मोहम्मद मरहूम। अरसा 6 माह से ये मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर मौजूद हैं और 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है इनको ये माजूर हैं। पहले इनकी ये जो टांग है वो टूटी, उसके बाद अब इनको कुछ और बीमारियां लग गई। डॉक्टरों का ये कहना है कि इनके जो गुर्दे हैं वो ख़त्म हैं, फेफड़े ख़त्म हैं और अब ये चल फिर नहीं सकते। अपने जो गिराना है इनकी एक वालदा हैं, एक मिसेस है और 2 बच्चे और एक छोटा बच्चा है, जो इस वक्त उनमें से एक मौजूद नहीं है, छोटा बच्चा सोया हुआ है, बाकी यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस बीमारी की हालत में यहाँ पर लेटे हुए हैं। इनको यहाँ पर बैठना भी इनके लिए मुश्किल है, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से ये चलते फिरते हैं। अगर कहीं पर जाना हो तो खास करके टॉयलेट वगैरह में, लेकिन बहुत मुश्किल से ये चलते हैं, नहीं इनको चलना नहीं आता। इनका कच्चा मकान है और इंतहाई कसम पुरसी की ये जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस मौजूदा महंगाई के आलम में इनका गुज़र-औक़ात बहुत ही मुश्किल है। मैं आज इनसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सारी आपकी जो बीमारी है ये कब से शुरू हुई और आपका जो ये निज़ाम ज़िंदगी है वो किस तरह चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, ये दसो कि तुसें कितना अरसा होया इस हालत विच? मैं 1 साल 2 माह हुई है, यानी कि इस बीमारी भी मुब्तला होया नहीं। मेरी बीमारी है, सांस प्रॉब्लम बनी है, बुखार हुआ और उसके बाद जो है ये बिगड़ते बिगड़ते हालत ये हो गई कि आप 6 माह हो गए मुकम्मल खाट पर हूँ, चरपाई पे। तो ये जो आपका ज़िंदगी का ये निज़ाम है ये किस तरह चलता है? आप चूँकि फ़र्द वाहिद हैं, आप अपने इससे के वाहिद कफ़ील हैं। इससे कबल भी हमारे ख़ानदान में से ना कोई नौकरी मुलाजमत किसी ने सरकारी की और ना किसी की पेंशन है, ना मौजूदा दौर में मेरा कोई सरकारी घर में औरत माल कोई है जो कफालत करने वाला मुलाजिम नहीं है, ना किसी की पेंशन है। मैं खुद मजदूर आदमी था, मजदूरी में मशक्क़त करके कमाता था और बाल बच्चे को, माँ बेवा है, इनको खिलाता था। मैं इकलौता घर का फर्द था। मेरा बाप मरहूम फौत हो चुके हैं, भाई साथ का कोई नहीं है, चाचा ताया और बहन भाई और कोई मेरा कोई नहीं है। मैं बेसहारा और लाचार और मजबूर इंसान। इससे पहले आप वैसे काम क्या करते थे? बस मजदूरी की है, कभी मिल में काम किया है कोई 2-4 साल, कभी होटलों पे 1-2 साल किया है और बाकी मिस्त्रियों के साथ कभी मजदूरी की। कभी दाड़ लगती थी, कभी बीमार हो जाता था। उससे कबल ये कहा जा रहा है कि आप वो जो इधर फोन सर्विस आई है उसके जो कार्ड थे वो आप इस तरह ये कार्ड के पे भी कोई प्रॉफिट नहीं है, ये भी एक पंचायत वालों के साथ चलता था, तो वो 8 आने कार्ड के साथ मिलते थे, तो वो भी इतना काम नहीं है, इधर सर्विस नहीं है। बॉर्डर लाइन एरिया है हमारा इलाका और इसमें जो है इतनी मेहनत और मशक्क़त करने के बावजूद और पैसा और सरमाया जो था वो भी किसी आदमी का दिया हुआ था, वो बनिया था, वो फौत हो गया है। वो पीछे जब मैं बीमार हुआ मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या पता नहीं मामला बनेगा, वो पैसा मैं वापस कर दिया है। जिससे आपने लिया था, आपके विरोधी थे, उनको आपने वो कार्ड वापस कर दिया है। वो भी फौत हो गए हैं, अभी ये 5-7 दिन हो गए हैं। तो मेरी भी हालत नाजुक है और मैं चारपाई पे लगा हूँ 6 माह से। ये मुकम्मल तौर पर आप चल फिर नहीं सकते? बिल्कुल, मुझे सांस प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है और मेरा जिस्म बिल्कुल लागर और मजबूर हो गया है। चमड़ी हड्डी छोड़ दिया, गोश्त हड्डी ने, और बिल्कुल कमज़ोर और सूख गया। आप हॉस्पिटल में गए, कहीं इलाज करवाया या नहीं? हॉस्पिटल में गया, उधर ये बीमारी डिक्लेयर हुई है, मेरी सांस प्रॉब्लम हो गई थी, मैं चल नहीं सकता था। मुझे उठा के इधर से लेके गए प्राय आदमी और उधर 10 दिन रहा हूँ अस्पताल में। उन्होंने टेस्ट वगैरह करने के बाद, CT स्कैन करने के बाद उन्होंने ये बीमारी डिक्लेयर की और उन्होंने कहा जो इलाज था वो हमने कर दिया, अब आगे इसका इलाज हमारे पास नहीं है और कोई जगह भी नहीं है जहाँ हम आपको भेजें। या समझ आती है आपकी बीमारी फेफड़ों की है, फेफड़े तुम्हारे ख़त्म है, वो हो गए और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करें। उधर भी ऑक्सीजन लगा रहा। तो मैंने कहा गरीब आदमी हूँ, मैं दवाई खरीद कर, या मैं इधर मेरे साथ कोई आने वाला नहीं, वो बखरे आदमी 1-2 साथ गए, वो भी मजबूर हो गए थे। आखिर में फिर
मैं डिस्चार्ज हो के आ गया हूँ, मेरे साथ वहाँ साथ देने वाला कोई नहीं था। अच्छा, अब जो आपका ये निज़ाम ज़िंदगी है, इतनी महंगाई है, किस तरह चलता है? ये जो गुजारा करता था पहले भी, कभी न किसी, जब से बच्चे मेरे पैदा हुए हैं मैंने इनको अपने हाथों से जूते और कपड़े अभी तक नहीं लेके दिए। माई है, मैं सारी जिंदगी लगा रहा हूँ, इनको कपड़े नहीं लेके दिए। बीवी है, इनको किसको कपड़े अभी नहीं दे दिए। ये दाएं बाएं से प्योके से कि कोई दे देता, कोई इधर हमारे बहन भाइयों ने एक दो थे, उन्होंने इसको जोड़े दिए। ये 10 साल शादी हो गई है, मैं कुछ नहीं दे सका, ना बना सका। जो कोई कमाता था वो पेट का भी पूरा करना मुझसे मुश्किल था। अच्छा, हुकूमत ने या किसी NGOs ने, मुखैर हजरात ने आपकी अभी तक कोई मदद वगैरह नहीं की है? कोई किसी ने कुछ नहीं किया। ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो चलता है, एहसास है या बेनज़ीर है, ये भी सर्वे हुआ है, इसमें भी गलती की हुई है और इसमें ये गलती करके लिखे गए माजूर। मैं उस तरह का माजूर नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो माजूरी की वजह से मेरा पैसा वो भी ज़रूरत में नहीं लगा के मुझे दिया गया, वो भी पैसा नहीं मिलता आप है। सर्टिफिकेट बुगाने, चूँकि आप चल तो नहीं सकते ना, आपकी टांग भी काम नहीं करती, आपके फेफड़े भी नहीं है, ज़ाहिर माजूर ही आप चारपाई में मौजूद हैं, तो कभी आपने वो माजूरी का जो सर्टिफिकेट है उसकी कोशिश की या बनाने उसकी कोशिश की थी। जब टांग टूटी तो उस वक्त ये डॉक्टरों ने और सोशल वेलफेयर वालों ने वो फार्म नहीं जारी किया। क्यों? वो इसलिए कि आपकी टांग अभी जुड़ गई है, ये दर्द जो है ये तो हमारा टांग टूटने की वजह से है। ये सर्दी ठंड भी जब होगी या ठंडी चीज़ें खाओगे तो ज़्यादा चलोगे या कोई गल तो ये वजन डालोगे। अभी आप नहीं गए इस हालत में, जब 4-6 महीने आपको यहाँ पर हो गया? नहीं, मैं चल ही नहीं सकता हूँ, ना मुझे कोई जा लेके जा भी नहीं सकता हूँ, ले जा के जाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे इधर बात में लेके जाने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ कोई दूसरा फर्द घर में मर्द है ही नहीं है। बच्चे छोटे हैं, माँ बूढ़ी है, बीवी जो है ये जवान औरत है, इसको मैं किधर लेके जाऊँ। इसको ये भी शादी और शरीफ है, इसकी पता ही कोई नहीं है कि बाजार से इधर दुकान से चीज़ें लाने का पता नहीं है। अच्छा, आप मुखैर हजरात और हमारे चैनल की मसादत से आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो देख रहे हैं, और उनको आप क्या मुतालबा करते हैं, उनसे आप क्या अपील क्या करते हैं? वक्त को मुझसे क्या मुतालबा है? ये मुतालबा है कि जो इस तरह के ये प्रोग्राम चलाते हैं या कोई ऐसी तंजीम हो जो मेरी सपोर्ट मंथली तौर पे कर सके, और मेरे बच्चों की कफालत, मेरी माँ बेवा है और इनका भी इकलौता बेटा हूँ मैं, ये भी मेरे साथ हैं, इनका भी कोई सहारा नहीं है, और ये कहाँ जाएं, ये कहाँ से लेके आएँ, कहाँ से कमा के आप मुझे खिलाएं। नौकरी मुलाजमत भी नहीं है, पेंशन नहीं है, इस घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ताया चाचा और दाद पोतरे वगैरह भी हमारे नहीं हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। तो अड़ोस पड़ोस हैं, वो बीमार हुआ तो चलो एक दो बार आए, किसी ने कोई थोड़ी सी चीज़ ले आए, दे गए, वो कब तक रहेगी या कहाँ पूरी होगी। मेहमान आते जाते हैं पता करने के लिए, उनको भी आके पानी पूछना पड़ता है, कोई तत्ता ठट्ठा करना पड़ता है। मैं इससे भी मफलूज हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे बात करने से सांस में तकलीफ होती है, मेरा सांस रुक जाता है, और मैं चलने से मुझे इस तरह होता है जैसे मैं कहीं रूह मेरा आसमान पर टंगा हुआ है। मैं बिल्कुल ओला हो जाता हूँ और टांगें कांपती हैं और बस थरथराट जाता हूँ और बैठ जाता हूँ, 2-4 कदम नहीं चला जाता मुझसे। तो इस हालत में हम अपील क्या करें? हुकूमत अगर ऐसी कोई हमारी सपोर्ट कर सकती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता था, उसमें ये नुक्स लगा दिया जिसने सर्वे किया कि उसने माजूरी लिखी है। अब सोशल वाले और डॉक्टर इनकार कर गए हैं कि आप चलते फिरते हैं थोड़ा बहुत, तो चल फिर नहीं सके थे, वो तो 6 माह पहले की बात है। जो पिछले 7-6 महीने की पहले बात है। अभी तो आप चल फिर नहीं सकते? अभी मैं बिल्कुल चल नहीं सकता हूँ। अब ये बीमारी जो लग गई है, इस बीमारी ने मुझे बिल्कुल कमज़ोर कर दिया और मेरी सांस प्रॉब्लम बना दी है। मेरा सांस कभी तेज़ हो जाता है और कभी रुक जाता है, मुझे कोई सहूलत नहीं है, और मैं बंद कमरे में भी नहीं रह सकता हूँ। ओपन अब जब तक बाहर कुदरती ना मिले मुझे, मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
मेरे पास कोई ऑक्सीजन की सहूलत नहीं है, कोई रीफ अस्पताल नहीं है, गाड़ी कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, हो भी तो कोई आदमी ही नहीं है कि किसी गाड़ी पे भी बिठा के कोई मेरा साथ दे, किसी डॉक्टर के पास ले चले, कोटली ले चले या रावलाकोट। ये मजबूरी से मैं एक मरतबा जो गया हूँ तो वो भी आदमी तंग पड़ गए थे, फिर वापस आ गया हूँ। अब मैं प्राइवेट अस्पताल से दवाई पिंडी से लाई, वो 2 माह खाई है, उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी भी फीसें पेमेंट मैंने मांग तांग करके की है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बिल्कुल नादार और बेकास और बेसहारा हुआ हूँ। अब न मैं बच्चों को कोई चीज़ बाजार से ला के दे सकता हूँ, ना मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ और ना मैं कमा सकता हूँ। तो 50 साल से ऊपर उम्र हो गई है, ना मेरी कोई नौकरी मुलाजमत, ना मेरी कोई पेंशन है, ना मेरे घर में कोई ऐसा फर्द है। बाप था वो भी मैंने मुशक्क़त से काम करता था, तो बस वो भी बीमार, माँ की बावजूद टूटा हुआ है, इनके भी दर्द रहता है, ये भी अब वो काम इतने नहीं कर सकते हैं, ज़मीन बाड़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, माल मवेशी भी कुछ नहीं रख सकते हैं, गुंजाइश ही नहीं है, ना कोई देखने वाला और ना कोई चराने की जगह है हमारे पास, हम फंसे हुए हैं बीच में और कफालत करना और चलना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है। घर का निज़ाम सारा धर्म भरम हो गया, कर्ज लेता हूँ कर्ज कोई नहीं देता है, आधार मांगता हूँ आधार कोई नहीं देता है, दुआ के लिए किसी को कहता हूँ ला के दो, वो नहीं कोई ला के देता है, पैसे भी नहीं होते हैं, जब किसी के दिए हुए हूँ भी तो दुआ भी नहीं मंगा के देते, ना किसी और डॉक्टर से मैं चेक करवा के जाके करवा सकता हूँ, चल सकता हूँ, अकेले मुझे सफ़र नहीं होता, दूसरे आदमी का सहारा चाहिए, सहारा देने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद जमील जो अपनी रुदात सुना रहे थे। ये आप जवान हैं लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है या हमतान है, या हम जैसे जो लोग हैं, हमारे जैसे जो तंदुरुस्त लोग हैं, उन पर हमतान है कि ये बिस्तर मर्ग पर हैं और यहाँ ये ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जाकर अपना इलाज करवाएं। फिर साथ ही इनका एक कुंबा है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी वालदा है, इनकी बीवी है और इनकी कफालत भी इनके ज़िम्मा है। मुखय्यर हजरात एक तो या जो डोनेशन करने वाली जो NGOs होते हैं या हुकूमत होती है, जब किसी मकाम पर कोई आफत आती है उसके बाद वहाँ पर पहुँचती है, तो इस माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उनकी मदद के तलबगार होते हैं। तो हुकूमत को सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों की तरजीह बुनियादों पर जो है वो मदद की जाए, उनकी देखभाल की जाए, उनके बच्चों के लिए राशन, उनकी अद्वियात जो है उनका बंदोबस्त करना चाहिए, और ख़ास करके दूसरे जो NGOs हैं उनको भी इस इलाके में आकर पहुंचना चाहिए, इनकी देखभाल करेंगे। यही असल में जो है लोग हैं, ये असल जो है वो उस मुसर्रफ उसमें आते हैं कि जिनकी मदद की जाए। तो मेरी अपील है जो मुखय्यर हजरात हैं, जिनके बैंक बैलेंस हैं, उनके पैसे तो ज़कात के वो तो बैंकों से काट दिए जाते हैं, ना जाने कहाँ लगते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से अगर ज़कात का ही पैसा इस फैमिली को दें तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़े सवाब और अजर का काम होगा। और साथ ही जो NGOs हैं या जो दीगर मुखय्यर हजरात हैं उनको भी चाहिए कि इनकी ये सपोर्ट करें, क्योंकि ये हकदार हैं, इस वक्त ये इंतहाई मुश्किल की जो है वह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये जो इलाका है ये भी पसमानदा, ये बिल्कुल तहसील हजीरा से अब अगर आएँ तो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर आगे आता है डूंगा का बाजार है, उसके साथ बिल्कुल इनके पीछे इनका मकान है डूंगा बाजार के साथ। तो आकर खुद वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले इनका ये है फ़ोन नंबर है, अगर यहाँ पर कोई कांटेक्ट करे तो एस काम का फ़ोन नंबर है, लेकिन उसके लिए मैं पहले आपको बताता चलूँ कि वो बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। पहली ट्राई में शायद आपको वो फ़ोन ना मिले, क्योंकि नेटवर्क इस तरह होता है, कहीं पर वो आपको आवाज़ आएगी जी कि ये मैसेज जो है वो नहीं जा सकता, या ये बिजी है या बंद है, हालांकि ऐसा नहीं होता है चूँकि सर्विस का इशू है। तो एस काम का इनका नंबर है, मैं रिपीट करता हूँ, मैं बोलता हूँ 0355713841। ये इनका फ़ोन नंबर है, आप इनसे बरास्त कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फ़ोन नंबर 0355713841। और इनका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो ये है 823026425914। ये इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है।
और इनका एक अकाउंट है, ये कहते हैं कि किसी वक्त ज़कात के लिए इन्होंने वो अकाउंट खुलवाया हुआ था, UBL का जीरा ब्रांच का इनका अकाउंट है। वो मैं आपको उसका जो फिगर है वो बताता चलूँ, वो है 0109004208444039, यह जीरा ब्रांच है। और अगर ये बाहर से कोई अगर इनको डायरेक्टली अगर इनके अकाउंट को रकम भेजना चाहे तो उसके लिए यह है कि PK21 UNIL 0109002408444039। मैं कोशिश करूंगा ये हेडिंग होगी उसमें इनका ये चीज़ें सब डेटा लिख भी दूं। तो आप से अपील है, गुजारिश है कि आप इनकी माली मावनत करें, इनको राशन वगैरह का जो बंदोबस्त वो करके दें, इनके अद्वियात का जो है वो बंदोबस्त करके दें। अगर आप इनका इस हालत में मदद करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी जो है वो मदद करेंगे। अल्लाह ताला आपकी भी दुनिया और आखिरत की जो है वो कामयाबी इसी में शामिल होगी। एक मरतबा फिर मैं नाजरीन से ये गुजारिश करता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुखय्यर हज़रात तक जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो इंसानियत का ख्याल रखने वाले लोग हैं और हुकूमत वक्त जो है उन तक पहुँचे ताकि वो इस फैमिली का जो है वो मदद कर सकें। मुझे मेरे कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ दीजिए इजाज़त। नाजरीन, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़कार, JKTV, डूंगा 33 रोड, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने अपनी ही अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डाल दिया, अपनी ही अवाम की पीठ पर छुरा घोंप दिया। बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी करवाने की करारदाद बारी अक्सरियत से मंजूर कर डाली। असम्बली में 15वीं आइनी तरमीम भी पेश की गई। आदाब, मैं हूँ माजिद अनवर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर। तकरीबन 30 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन का इनकाद होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन के इनकाद के हवाले से अहकामात जारी किए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल जारी हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात 28 सितंबर को होना करार पाए थे और इसके लिए कागजात 15 से 22 अगस्त तक जमा होने थे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के सियासतदान अपने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल होना देखना नहीं चाहते। तमाम सियासी जमातों के बड़ों ने सर जोड़कर बैठक की और उसके बाद असम्बली के अंदर एक करारदाद लाई और इस तरह अवाम के हुकूक पे डाका डाला गया और अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। सारे सियासतदान एक ही जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नॉन लीग हो, PTI हो, सबका एक ही मोटिव है, एक ही काज, एक ही सोच है। अपोजिशन और हुकूमत एक ही पेज पे आ गई। वही सियासतदान जो एक दूसरे के साथ दस्ते गिरबान थे एक ही पेज पे आ गए। यहाँ के सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात को तरजीह दी, अपनी ही अवाम को हुकूक नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के इनकाद में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ के सियासतदान नहीं चाहते इख्तियारात अवाम तक जाएं, इख्तियारात अवाम के निचले नुमाइंदों तक जाएं। हालात ये हैं कि यहाँ के सियासतदान हमेशा से टूटी खंबे, सड़क और ट्रांसफार्मर की सियासत करते आए हैं। इन्होंने यहाँ पर अपने कारकुनों और अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। कभी कश्मीर काज पे ये सियासत करते हैं और कभी ये कौम परस्तों के नाम पे सियासत करते हैं। आज सूरत हाल ये है कि सारा कश्मीर सरापा एहतजाज है। 15वीं आइनी तरमीम के हवाले से कश्मीरियों को शदीद ताफ़सात हैं। कश्मीरी ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसी आइनी तरमीम ना लाई जाए जिसकी वजह से कश्मीर काज को नुकसान पहुँचे। कश्मीरियों का ये कहना है कि 15वीं आइनी तरमीम एक ऐसी
आईनी तरमीम है जिसके ज़रिए से कश्मीर के स्टेटस को छेड़ा जाएगा, कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा और कश्मीर को तकसीम करने की ये एक साजिश रचाई जा रही है। हिंदुस्तान जो 5 अगस्त 2019 को कर चुका है वही पाकिस्तान अब करने जा रहा है। यहाँ के स्टेटस को छेड़ा जाएगा, यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट को छेड़ा जाएगा और इस तरह यहाँ के अवाम के बुनियादी हकूक़ को गस्ब कर लिया जाएगा। पूरा कश्मीर सरापा एहतजाज है। पुंछ डिवीज़न से शुरू होने वाली एक मामूली सी तहरीक इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में फैल चुकी है। 12 अगस्त को पूरा मुजफ्फराबाद डिवीज़न जाम था, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल हुई जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। इस वक्त हालात ये हैं कि बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी थी। बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवार इस वक्त सामने आ रहे थे। अवाम को लगा कि उनके हुकूक मिलेंगे और इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे, इस तरह अवाम के बुनियादी मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल होंगे। लेकिन कहाँ गवारा था ये सब कुछ यहाँ के सियासी नेताओं को। उन्होंने अवाम के हुकूक पे डाका डालने के लिए असम्बली के अंदर ही एक करारदाद ले आए। सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट और असम्बली आमने सामने हैं। इदारों के दरमियान एक तसादम वाली फ़ज़ा पैदा हो चुकी है। अब बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी करके इन सियासतदानों ने अवाम के हुकूक के साथ एक और खिलवाड़ शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि अवाम इस पे किस तरह रिएक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह के इक़दाम करती है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अल्लाह निगहबान। दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें। जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है। माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें। जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। जंजीरें तो कट जाएंगी, हम के निशान रह जाएंगे। मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीरें। ये दौर भी है सयादी के, ये ढंग भी है जल्लादी के। सिमटे से उड़ेंगी जंजीरें, फैलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें। जब तक दीवाने जिंदा हैं, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। ले देते हफीजुल से ही उम्मीद वफा दीवानों को। क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें। ले देके हफीजुल से ही उम्मीद वफा दीवानों को। क्या होगा जब दीवानों से नाता तोड़ेंगी जंजीरें।
आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें जब तक दीवाने जिंदा फूलेंगे फलेंगे जंजीरें फूलेंगे फलेंगे जंजीरें फूलेंगे फलेंगे जंजीरें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब को खुश आमदीद और मुझे वाहिद काशिर कहते हैं। जम्मू कश्मीर टीवी पे आपका खैर मकदम है और जम्मू कश्मीर टीवी की ट्विटर स्पेस पर भी आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब। राजा ज़फ़रुल हक साहब साबिक़ कायद ऐवान हैं, पाकिस्तान के मायानाज सेनेटर रहे और मोतमिर आलम इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी रहे। और इसके अलावा राय साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो एक लंबा तवील और हौसला अफजा भी है। नए सियासत के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए भी। राय साहब आपको वेलकम है। आज हम जो है योम स्याह मना रहे हैं हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के हवाले से और फिर उसने जो रियासत जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस और रियासत जम्मू कश्मीर की जो कुदरती वादत थी उसको ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम उठाए वो अपने तईं सारी दुनिया के सामने हैं। राया साहब आपको वेलकम है, खुश आमदीद है। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका जो है आज के दिन के मौके पे क्या कहना है, आप क्या कहते हैं 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने जो इक़दाम उठाए और उसके बाद से अब तक की सूरत हाल और आप किस नज़र से देखते हैं जर्नली आगाह कीजिएगा हमें राया साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपका सवाल सुना और यकीनन ये एक बड़ा आजमाइश का मरला है। ये जो 3 साल गुजरे हैं और जो ही 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने ये गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी कदम उठाया तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हुआ। उसमें मैंने भी गुजारिशात की और मैंने ये कहा कि ये मामला ऐसा है जिस पर सारी पाकिस्तानी कौम मुत्तफिक है और हमें इस पर कोई मुत्तफिका लाएअमल तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। खुद हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि जो ही ये कदम उठाया गया तो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जितनी जमातें थी उनकी लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पर उनका इजलास हुआ और जो लोग तो पहले हिरासत में लिए गए थे उनके अलावा बाकी सारी पार्टियां और उनके नुमाइंदे उसमें मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, इसका मुकाबला करेंगे और हम उस हद तक जाएंगे जहाँ एक मुल्क और कौम को आज़ादी हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। तो लेकिन हमने इस महसूस हमने ये किया कि पता नहीं क्या वजूहत थी कि उस वक्त की हुकूमत जो चंद हफ्ते पहले ख़त्म हुई है उन्होंने कोई अमली कदम नहीं उठाया। हालांकि चाहिए ये था कि सिक्योरिटी काउंसिल को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की बुनियाद के ऊपर ये सारा सिलसिला था। और 1954 में जो एक तो तीनों ममालिक के दरमियान एक अरेंजमेंट थी उसको ख़त्म किया गया है और उसके बारे में आपने पता होगा कि खुद भारत की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी इन हालात को सामने रखते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये कतन इसको 370 को ख़त्म नहीं किया जा सकता और उसके नतीजे में जो और आगे 35A है वो भी गलत होगा। तो ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे दुनिया की कोई मुल्क
कोई सोसाइटी इसको कबूल नहीं करेगी। तो लेकिन वहाँ पर तो एक कर्फ्यू लगा हुआ है, वो इतना अरसा हो गए, 3 साल हो गए हैं, और वहाँ पर तशद्दुद और रियासती दहशतगर्दी वो इस कदर शदीद है। मैं समझता हूँ कि जो कुर्बानियाँ अहले कश्मीर ने दी हैं वो बेमिसाल हैं और तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद अकेले उन पर ये छोड़ देना कि वो जो कुछ कर सकते हैं करें, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान पर आयद होती है जी, और बाकी जो इस्लामी दुनिया है उन पर आयद होती है, तो बड़ी ताकतों पर भी, क्योंकि जितनी करारदादें पास हुई हैं कि कश्मीरियों से ही पूछा जाए कि वो अपना मुस्तकबिल इंडिया के साथ देखते हैं, पाकिस्तान के साथ देखते हैं, और उस सिलसिले में जो भी वो फैसला करें वो दोनों फरीकों को, बाकी दुनिया को भी मंजूर होना चाहिए। लेकिन ये मौका ही नहीं आने दिया गया, और इसमें कोई शक नहीं कि जितनी उनसे कुर्बानियों की तवक्को थी उससे ज़्यादा उन्होंने दी है। नौजवानों ने दी है, बुजुर्गों ने दी है, ख़वातीन ने दी। तो इस लिहाज से ये मरहला अब ऐसा आ गया है कि जब तक कि बाकी दुनिया को इसमें शामिल न किया जाएगा उस वक्त तक ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और उससे भी ज़्यादा कश्मीरियों के ऊपर ही छोड़ देना मुनासिब नहीं है। राय साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम हुआ, और जाहिर बात है कि बहुत सारी नज़रें जो थीं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ भी देख रही थी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत का उस वक़्त का जो रद्द अमल था वो सफिशिएंट था, मुनासिब था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के एन मुताबिक था? जो उसने इकदामात उठाए, मिसाल के तौर पर पहला कदम जो उठाया गया उस सिलसिले में, बल्कि पहला तो नहीं कह सकते, इस पहले जो है जिस तरह के सुनने में आया वो ये था कि मुमकिना तौर पर एक इंदिया ये जाहिर किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें दोनों एक सफ़े पर थी, एक पेज पर थी। ये एक आम जो है बात होती है और बात हो रही है। तो उस सिलसिले में ये भी कहा गया कि आप जो हैं एक टांग पे खड़े होते रहें कुछ अरसे के लिए, हमने देखा, और फिर अगली बार जो हमने देखा वो यही था कि पाकिस्तान ने उसके रद्द अमल में या उसके अलेजिडली पैसिफिक जो प्रोजेक्ट था उसके तहत एक नया नक्शा जारी किया। अब नया नक्शा जब जारी होता है उसमें रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का नक्शा करार दिया गया, और ये सारा कुछ इन नटशेल। राय साहब सवाल ये है कि बताइए कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस तरह के इकदामात मसला कश्मीर के लिए हेल्पफुल, मददगार साबित होते हैं, या पाकिस्तान के तारीखी तौर पर गुज़श्ता 75 सालों से जो मौक़िफ़ है उसकी नफ़ी नहीं होती आपकी नज़दीक? मैंने उस वक्त पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास में भी यही कहा था कि ये जो कुछ यहाँ जिन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है उस वक्त की हुकूमत ने जो किया था वो काफ़ी नहीं है। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा क्या हम उन पर हमला कर दें। मैंने कहा हमला जब अगर ताकत का इस्तेमाल करना किसी सूरत में भी जायज़ है तो यही वो सूरत है जहाँ ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर हम ताकत के इस्तेमाल के ऊपर अपना इरादा जाहिर करेंगे तो फिर बाकी दुनिया को भी इस बात का एहसास होगा कि 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और इनके दरमियान कोई ना कोई मामला तय कराना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये इस मरहले के ऊपर उस वक्त खुद भारत के अंदर जो अपोजिशन की जमातें थी वो उन्होंने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया था, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोज किया था, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपोज किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी उसको मार्क्सिस्ट
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस ने भी और जनता दल ने भी, और ये कुछ नौ जमातें थी जिन्होंने खुद इंडिया के अंदर इस मूव को अपोज किया था। लेकिन अगर उस सारे माहौल को इस्तेमाल ना किया जाए और दुनिया के सामने ना रखा जाए तो फिर लोग समझते हैं कि इंडिया इसमें यकसू है और सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। ऐसा नहीं था। लेकिन हमने महसूस किया कि यूरोप के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से कश्मीर के लोगों ने, जो कश्मीर का डायस्पोरा है, उन्होंने वो हर जगह बड़े मौसर डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज की और उसका बड़ा अच्छा असर हुआ। लेकिन रफ्ता रफ्ता हम अपने मामलात के अंदर इतने मसरूफ हो गए कि वो मामला जो है वो कमज़ोर पड़ता गया। फिर ये कोरोना का एक वबा आई और उसने भी इस चीज़ को बड़ा मुतासर किया। इस वजह से ये मैं समझता हूँ कि अब मौका है कि इसको असर नौ, इसको सारी चीज़ों को सामने रखकर एक मौसर प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाई जाए और इसको दुनिया में फैलाया जाए। टॉकिंग अमंगस्ट आवरसेल्व्स तो काफ़ी नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मसला कोई सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है। पाकिस्तान और कश्मीरी एक ही प्लेटफॉर्म पर है, तो इस लिहाज से कश्मीरियों को इस वजह से कि वो अफ्रीकी अव्वल है, असल मसला ही उनके मुस्तकबिल का है। तो पाकिस्तान जो है वो उसकी आवाज़ में वो असर नहीं हो सकता जो कश्मीर का कोई आदमी खड़ा होकर आलमी सतह के ऊपर कोई बात करे, तो जो असर उसकी ज़बान में है और उसके मुख्तसर लोग जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। इसलिए उनको फैसिलिटेट करना चाहिए जो लोग बाहर हैं कश्मीर के या वहाँ जो अंदर हैं। तो इस लिहाज से ये इसकी कोई असर नो सोच कर पॉलिसी राय साहब, आपकी बात से मुझे याद आया, गुज़श्ता कई अरसे से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक आवाज़ आ रही है। सबसे पहले ये आवाज़ आई बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, उनके साबिक़ पर्सनल सेक्रेटरी जनाब खुर्शीद हसन खुर्शीद KH खुर्शीद साहब। सबसे पहले उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की इस खित्ते के अंदर, जिसे आप पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पे जो हुकूमत कायम हो उसे कश्मीरियों की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम किया जाए। इस पर एक तवील बहस मौजूद हुई और एक तवील, आपका पॉलिटिकल कैरियर काफ़ी तवील है, आपने इसको बड़ा ऑब्जर्व किया होगा। फिर रिसेंटली हमने सुना आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो ब्रांच है मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में, उसमें हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब, वो भी इसी के ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते की हुकूमत जो है उसको अवाम की नुमाइंदा हुकूमत तस्लीम की जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले उसे तस्लीम करे और फिर रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को, उसकी हुकूमत को अपनी आवाज़, अपना मसला जो है आलमी सतह पर ले जाने का मौका फराहम किया जाए। आपकी इस मामले के ऊपर क्या सोच है? मैं समझता हूँ कि ये इससे पहले मरहूम सरदार इब्राहिम खान साहब ने, जिन्होंने नुमाइंदगी की थी कश्मीर की सिक्योरिटी काउंसिल में भी, और वो पहले सदर भी बने, बाद में भी वो 3 दफ़ा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सदर थे। वो भी यही कहते रहे कि आप हम पर एतबार करें और हमें सहूलतें दें, हमारी मदद करें कि हम इस फरीज़े को आगे बढ़कर कायदाना तरीके से इसको हल कर सकें। लेकिन बहुत लोगों ने फिर वहाँ से ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि जी ये जो रेजोल्यूशंस हैं
वो यही है कि ये पहले ये फैसला हो कि उन्होंने किस तरफ जाना है और उसके बाद फिर इसकी तरतीब जो है वो ये की जा सकती है। और वहाँ जब ये मामला आया तो फिर बाद लोगों ने कहा कि ये सिर्फ दो ही हाल नहीं होने चाहिए, तीसरा भी हाल होना चाहिए इंडिपेंडेंट कश्मीर का। लेकिन वो हमारे आइन के अंदर 257 है जिसमें ये कहा गया है कि जब ये फैसला हो जाएगा कि कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का फैसला वो करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर उसके बाद उन्हीं पर छोड़ा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ वो क्या रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, एक अलग रियासत के तौर पर या एक टेरिटरी के तौर पर या सारे कश्मीर की नुमाइंदा के तौर पर। तो ये जिस तरह वो फैसला करेंगे उसी के मुताबिक फिर अमल किया जाएगा। राजा साहब, अब जाहिर बात है आपने बहुत सारी बातें जो हैं वो छेड़ी हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो इसके ऊपर एक एक जुमला जो है बोलें तो काफी लंबा हो जाएगा। प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं आलमी सतह पे, वो ये है कि पाकिस्तान हुकूमत की जो सफारतकारी है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इंटरनेशनली आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सफारतकारी की फील्ड को, क्योंकि आपने एक तवील अरसा गुजारा, आप खुद भी सफीर रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं ये सारे मामलात। दुनिया जो है वो इन मामलात को जब भी एहतजाज होते हैं, पाकिस्तान के परचम उठाए जाते हैं कश्मीर के नाम पर, तो बड़ा एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो ये है कि वो समझते हैं कि शायद ये कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी झड़प हुई है और एक दूसरे के बंदे मार दिए गए हैं, बस इतना ही है। वो तो सारी दुनिया में होते हैं मामलात। अब एक और सवाल ये बनता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो इस खित्ते की जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम है, इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर हुकूमत मौजूद है, असेंबली मौजूद है और सारा कुछ है। आप ही की हुकूमत थी और आप बेहतर जानते हैं कि उसने 13th अमेंडमेंट दी थी। उस 13th अमेंडमेंट में इस खित्ते के अंदर जो गवर्नेंस है उसको थोड़ा बहुत एग्जेक्टिव पावर मिली। ये अलग बात है कि अभी भी 53 सब्जेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चलाती है अपने वजारत उमूर कश्मीर या कश्मीर काउंसिल के ज़ेर एहतमाम। 13वीं तरमीम बारकैफ मुस्लिम लीग नवाज की उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसकी काविशें और फिर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी उनकी काविशें थी, वो एक सक्सेसफुल था सिलसिला, जिसमें मालियाती तौर पर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इन्हें हकूक मिले या एग्जेक्टिव पावर्स मिली, अपना टैक्स वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं और दिगर। लेकिन इसके बावजूद बेशुमार चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली इम्पोज करती है। अब एक शोर मचा हुआ है दोबारा से कि 15वीं तरमीम, पहले 14वीं तरमीम का था, 15वीं तरमीम है और 15वीं तरमीम में इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तब्दीलियाँ आ जाएंगी। इसकी गवर्नेंस में इसका फ्लैग ख़त्म हो जाएगा, इसका जो बाकी सिलसिला है यानी कि टोटल एक बल्दिया की या म्यूनसिपल कमेटी की हैसियत रह जाएगी, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का एक तवील अरसे से स्टैंड रहा है, उसको पामाल करने के मुतरादिफ है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब हैं, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इज एक्सपर्ट ऑन यूनाइटेड नेशन जोरस्पोंडेंस एंड ऑन कश्मीर। उनका कहना है कि ये पामाल हो जाएगा सारा कुछ। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? मैं यही गुजारिश कर रहा था कि जिसके बारे में मैंने अपना इज़हार ख्याल भी किया है कि इसको सारे सिलसिले को एक दफ़ा फिर रिव्यू करने की ज़रूरत है और आगे कैसे बढ़ा जाए उसमें कश्मीरियों को आप फरीक अव्वल के तौर पर रखें और उनकी राय और उनकी क़यादत की जो उमंगें हैं जो लोगों की सही तर्जमानी करते हैं, उनको सामने रख कर एक तरतीब दिया जाए हालात के मुताबिक, एक बेहतर स्ट्रेटजी और उसको आगे बढ़ाया जाए, तो आलमी सतह पर भी और मकामी सतह पर भी। और कोई ऐसा काम ना किया जाए जो कुछ कुर्बानियाँ दी गई है उनको कोई नुकसान पहुँचे या उनमें कोई कमज़ोरी पैदा हो। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि
अगर और कोई नहीं करता तो कम से कम मोहतमर की तरफ से ही इनको सबको बिठा कर इकट्ठा करके और ये मामला जो है इसको दोबारा असर नौ इसको तरतीब दिया जाए जैसे आप फरमा रहे और उस पर फिर अमल किया जाए। राय साहब बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ, बाकी दोस्त जो हैं, अगर हमारे पास कोई 20 मिनट रह गए हैं और मैं चाहता हूँ कि बाकी दोस्त भी सवाल एक रख लें अपनी तरफ से, ऑथेंटिक सवाल हो। यहाँ पर राय साहब आपको श्रीनगर से भी दोस्त सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर दोस्त जुड़े हुए हैं। बैरून मुल्क जो डायस्परा है कश्मीर की वो भी सुन रही है, और JKTV पे भी आपको सुन रहे हैं दोस्त। बिलखुसूस मिडिल ईस्ट में हमारे जो रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी काम करते हैं वो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ और दोस्त भी हैं, अगर कोई दोस्त सवाल पूछना चाहे तो माइक की रिक्वेस्ट कर लीजिएगा और मैं आपको माइक भी भेज दूंगा। 15-20 मिनट में हम इस स्पेस को जो है करेंगे, समेटेंगे भी, क्योंकि राय साहब के पास जो वक्त है वो बड़ा महदूद है। जमील मकसूद हैं हमारे पास, और जमील मकसूद आपको जो है मैं माइक देता हूँ। अगर मुख्तसर अपना जो है तारफ करवा दीजिए और अपना रखिएगा जमील मकसूद सवाल, देन वी विल कंटिन्यू। जमील आपको माइक मिल गया? मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली शायद। तनवीर साहब आपको भी वेलकम है। तनवीर साहब आप पहले कर लें, आपका सवाल कर लें राय साहब से और फिर आगे। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। मारी दुश्मन ज़बान है कि या सो महरज नारा मटोर ना सुना लगा मैं सासा रखूं गुरुता कराया मैं उतना रंगारा। तो बाकी उर्दू में मैं बात कर लेता हूँ। राजा साहब की बहुत लंबी एक्सपीरियंस है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, और हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा इंतखाब है, जो सवाल है राजा साहब से, वो ऐसे हो कि वो हम सब के लिए आगे आने वाले वक्त में जो बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है आगे, उसमें हम सब की मदद हो। इन्होंने फरमाया कि जी असर नो देखना जरूरी है। तो असर नो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है या उसको फास्ट फॉरवर्ड करके यूनाइटेड नेशंस का मैकेनिज्म है, या इन दोनों चीजों के अलावा भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा तकनीकी अमल जिसके जरिए से जो राजा साहब ने कहा जी कि ये फरीक अव्वल है और ये मेन पार्टी है, तो मेन पार्टी अगर टाइटल रखती है और इंडिया और पाकिस्तान क्लेमेंट्स हैं, चाइना भी इफेक्टिवली क्लेमेंट है, चाइना की वजह से अमेरिका भी एक क्लेमेंट है, और सारा जो अमल है 1947 का वो ज़्यादा उससे कबल भी 100 साल 150 साल 200 साल जो अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस है वो आज भी बहुत वाज़ेह है। तो मेरे ख्याल से सवाल डॉक्टर साहब समझ गए होंगे। मैं जवाब का ख्वाहिश मानता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू जी राय साहब। ये आपने दुरुस्त फरमाया है और इसमें कोई शक नहीं कि ये सिर्फ अहले कश्मीर पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये कमिटमेंट पाकिस्तान की भी है, सिक्योरिटी काउंसिल की भी है, और अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्लेटफार्म है उसमें आपने देखा होगा कि जितनी 22-23 रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, हर रेजोल्यूशन जो है वो यूनानिमस है, इसमें किसी ने मुखालफत नहीं की थी, इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने भी नहीं की। और ये जब तक अंदर उनके जहन में क्या था, लेकिन जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने बरमला ये ऐलान करते रहे कि हमने जो कमिटमेंट दी हुई है वो कश्मीरी जो चाहेंगे उसी के मुताबिक हम करेंगे, ख़ाम पसंद इसे करें या ना करें। इसी तरीके से मैं 90 में UNO में गया, वहाँ पर मैंने एक वीडियो देखी जो राजीव गांधी वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलासों में इख्तिताम के ऊपर, तो उनसे एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सवाल किया कि आपके जो नाना थे उन्होंने तो ये कहा था कि जी हम प्लेबसाइट के लिए तैयार हैं और जो फैसला कश्मीरी करेंगे वो हमें मंजूर होगा, तो आप उससे कोई हट भी हैं? तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं हटे, कुछ चीज़ें पाकिस्तान ने करनी थी, कुछ चीज़ें इंडिया ने करनी थी और वो मामला वहाँ रुका हुआ है, वरना हम जो हमारी पुरानी कमिटमेंट है हम उससे बिल्कुल दस्तबरदार नहीं हुए या हमने उसको अलग नहीं किया। ये मोदी का जो दौर है या उसकी जो पॉलिसी है वो और है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, हिंदुत्व का है और वो वहाँ ना मुसलमानों को चैन और आराम से वो रहने देते हैं, ना कबूल करते हैं, ना क्रिश्चियनिटी को, ना दूसरे बुद्ध मजहब को, ना सिखों को। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है खुद इंडिया के अंदर भी इस चीज़ को ज़्यादा फैलाने का। जो अरुंधति राय है वो बड़े खुलकर बात करती हैं और भी बेशुमार लोग हैं जिनकी आवाज़ दुनिया भर में सुनी जाती है, वो भी कहते हैं कि इंडिया की पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर बहुत ही गलत है और ये नुकसानदेह है। अब ये कि उनकी आवाज़ कब तक और कितनी आगे चलती है और वो मुसलमानों के मुखातब जितनी करता है इतना ही वो उसको वोटें ज़्यादा मिलती है। इस वजह एक नाज़ी फिलॉसफी के ऊपर चल रहा है। और जी राज साहब, अगर मैं अगर एक मिनट, क्योंकि टाइम बहुत कम है और लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही है या इंडिया की क्या रही है या इंडिया का माइंडसेट क्या है या पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, देखिए जो ओरिजिनल जो टाइटल होल्डर्स हैं जो जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाका जात के जो लोग हैं, देखिए ये क्यों जरूरी है कि हम जो है ना ये कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया अच्छा है या बुरा है या पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है। हमें ये पता है कि हमारे जो हालात हैं, हम जो है ना फंसे हुए फ्यूचर और प्रेजेंट के अंदर। मतलब आप पाकिस्तान का जो बयानिया है वो फ्यूचर पर मबनी है। आर्टिकल 257 भी लफ्ज व्हेन से शुरू करता है, तो लफ्ज व्हेन में भी एक असम्पशन है जो आर्टिकल जो 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 ये एक्ट 74 यहाँ पे लागू है, वो भी प्रियम्बल में लफ्ज असम्पशन यूज करता है। तो हम असम्पशंस पर या प्रोपेगेंडा पर या इंडिया अच्छा है या बुरा है या पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, ये हमारे लिए शायद जो है ना बड़े पराये में ये कोई मैटर नहीं करता कि इंडिया कितना अच्छा है या पाकिस्तान कितना अच्छा है। हम तो न्यूट्रलिटी की बात करते हैं और हमें इल्म है कि स्विट्जरलैंड किस तरीके से न्यूट्रल बना और कैसे उसने अपनी न्यूट्रलिटी कायम रखी है और उसकी जो जियोग्राफी है और उसके जो वसाइल है वो बहुत सिमिलर है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे पास। में लंबी कहानी में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप यकीन समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ना, आप तो एज ए पाकिस्तानी आप यकीनन आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सोल्यूशन में क्या पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन या इंडिया की प्रेजेंटेशन या जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाका जात के लोगों के अलावा कोई प्रेजेंटेशन क्या वो माने रखती है? क्योंकि सोल्यूशन तो कहीं पे हमें नजर नहीं आया 75 साल से। तो सोल्यूशन अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने तहलीक करना है तो आप उन पर छोड़े ना, मतलब आप उसके ऊपर आप एंगेज करें कि क्या न्यूट्रलिटी के ऊपर आपकी क्या सोच है। और जो हम कह रहे हैं कि फरीक अव्वल जो है जो टाइटल है उसका, आप उसकी नैरेटिव की तरफ कब गौर करेंगे? ये मेरा सवाल है जी राज साहब। आपका और इसी में इसका जवाब भी है कि जो कश्मीरियों के ऊपर फर्ज आयद होता है वो उन्होंने सबसे बढ़कर उसके लिए कुर्बानियाँ दी है और उसे पूरा करने की कोशिश की है और कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो करते रहेंगे। अब जो फराइज हैं पाकिस्तान के, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है, उसे एक प्रैक्टिकल शेप देने की ज़रूरत है और उसमें भी मुशावरत
اہل کشمیر کی، خواہ وہ آزاد کشمیر کے ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے ہوں یا کشمیر کے ڈائسپورا ہو، ان کے ساتھ بھی رابطہ کر کے تو پھر یہ ایک پالیسی بنائی جا سکتی ہے۔ جی شکریہ۔ جمیل مقصود، آپ اپنا سوال کیجیے یا اپنے پوائنٹ رکھیے۔ بہت شکریہ۔ First of all, I would like to introduce myself. I hail from Pakistani administrated Azad Kashmir district Punch and currently living in exile in Brussels. From the last 22 years, I represent United Kashmir People's National Party. My question is directly to Raja Saab, since he is a seasoned politician and a very experienced political leader in Pakistan, also affiliated with the Muslim League, known. Sir, so far as we know, as a Kashmiri dissidents, the UN resolutions clearly asked Pakistan to comply with its stipulations. For instance, the most important UN resolution was passed on 13th of August 1948. The second was 5th January 1949, and later on many resolutions were passed. Interestingly, all the later resolutions were conditional with the stipulations of the truce agreement, which was agreed on 13th of August 1948. So, this is one thing. The other thing is, under which UN mechanism, methodology, or resolution, or agreement, Pakistan has suspended state subject rule in Gilgit-Baltistan. Pakistan has signed the so-called Karachi Agreement on 28th of April in 1949, whereas the Azad Kashmir government as an entity was not recognized and still not recognized even by the state of Pakistan. So these are two things. Why Pakistan suspended state subject rule in Gilgit-Baltistan, and why they did sign a treaty with a non-recognized entity, and why they did not comply with their own commitment, with their own stipulations enforced by the United Nations Commission for India, Pakistan and UN Security Council. Thank you very much. راج صاحب، سوال جو اس کو نٹ شیل میں آئے، ایک تو یہ کہ 1974 میں بھٹو صاحب کے دور میں گلگت بلتستان میں ریاست جموں کشمیر کا جو سٹیزن شپ ایکٹ تھا یا باشندہ ریاست جسے کہا جاتا ہے، اس کو سسپینڈ کیا گیا، اس کو معطل کیا گیا شمالی جموں کشمیر میں، شمالی علاقہ جات میں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس سے وہی کچھ ہوا جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو کیا۔ جی رائے صاحب۔ یہ میں نے بڑا بارملا اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کسی بھی حالات میں کہ جو الٹیمیٹلی کشمیر کی کاز کو نقصان پہنچا سکے، یا اس میں جو پلیبسٹ کی کمٹمنٹ ہے وہ اس کو کوئی زخم پہنچے۔ لیکن اگر وہ اس وقت ان کی ڈیمانڈ یہ تھی، اب بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ کوئی حکومت کا کوئی ڈھانچہ دیں ایسا جو آزاد کشمیر کی طرح ہو یا پاکستان کی طرح ہو، یا ریپرزنٹیشن کوئی اپنے قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ میں اس کے گلگت بلتستان کو بھی دے۔ تو میں نے پھر یہی کہا کہ آپ اس طرح کی کوئی حرکت ایسی نہ کریں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے پھر یہ کشمیر سے الگ کوئی بات ہو، کیونکہ وہ کشمیر کا ایک حصہ ہے، اور مہاراجا کے جو لوگ تھے انہیں کے اوپر قابو پا کر خود گلگت کے لوگوں نے وہاں پر قبضہ کر کے پھر گورنمنٹ پاکستان کو انوائٹ کیا کہ آپ یہاں کوئی ایڈمنسٹریشن قائم کریں۔ تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو کشمیر کے جو بیسک کاز ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ راج صاحب جی شکریہ۔ راج صاحب چند سوال رہتے ہیں اور 5-7 منٹ میں اس کو سمیٹیں گے، ختم کریں گے۔
साहब इस जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा तबका फ़िक्र है जो रियासत को अपना एक अलग मुल्क देखना चाहता है। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ रहने वालों की भी ख्वाहिशात हैं, हिंदुस्तान के साथ रहने वालों की भी ख्वाहिशात हैं, और ये तीनों तबकात फ़िक्र जो हैं वो मौजूद हैं अपने तई हर खित्ते में। लेकिन जब सवाल आता है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर जिसे कहा जाता है बिलखुसूस, वहाँ पर ये जो सोच रखने वाले लोग हैं जो एक आज़ाद मुल्क देखना चाहते हैं, यकीनी तौर पर इट विल नेवर बी एंटी पाकिस्तान, क्योंकि हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा तबका जो ये चाहता है उसको हमने देखा तसलसल के साथ जो है वो स्टेट रिप्रेशन के ज़रिए दबाया जाता है, उनकी सियासी आवाज़ को सुनवाई नहीं दी जा रही। और आपके इल्म में है कि ये तबका जो है ना तो इलेक्शंस में हिस्सा ले सकता है, ना ही उनकी नुमाइंदगी है असेंबली के अंदर, और ना ही इस तरह के कोई दिगर मामलात हैं। ये जो तनवीर साहब हैं, ये इन्होंने एक सर्वे किया था आज़ाद कश्मीर के अंदर, अराउंड 10 to 12 15,000, मुझे सही फिगर नहीं याद, 1000 लोगों के पास ये गए थे और घर घर में जाकर इन्होंने एक पूरा तफसीली सर्वे किया था, और उस सर्वे में बेशुमार सवालात थे, बड़े कम्प्रिहेंसिव किस्म का। नटशेल में ये है कि 70+% जो लोग थे उन्होंने उस सर्वे में बताया, और वो सर्वे जो है उसमें तमाम के तमाम ऑथेंटिक जो लोगों के एड्रेसेस मौजूद हैं जिन्होंने इन सवालात के जवाब दिए। 70+% लोग थे जो चाहते थे कि वो अपना एक अलग मुल्क रखना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को। रियासत की तारीख में सिर्फ 2 ही सर्वे हुए हैं जो कह सकते हैं कि बड़े सर्वे हैं। एक तो आपको याद होगा कि चैथम हाउस लंदन ने किया था, कर्नल कज़ाफ़ी साहब के माली तावन से उस वक़्त कश्मीर के उस बिलखुसूस उस हिस्से में, उसमें भी एक बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। और फिर दूसरा ये तनवीर साहब ने किया था जिसमें 70+% लोगों ने कहा था। क्या देखते हैं कि इस तरह के सर्वे जो कंडक्ट हुए उसमें आवाम की मजमूई जो रुझान है उसको देखने का मौका मिला। सवाल ये है कि इस तबका फ़िक्र को असेंबली में महज इस वजह से नुमाइंदगी नहीं दी जा रही कि उन्हें एक्सेशन टू पाकिस्तान का हल्फ उठाना पड़ता है, जो कि बुनियादी इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। क्या आप इस हक में नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर के वो तबका फ़िक्र जो एक आज़ाद मुल्क देखना चाहता है पाकिस्तान के साथ, वो एक पार्लिमानी सियासत जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी जो है स्पेंड की है, उसको उस पार्लिमानी सियासत में भी आने का मौका मिलना चाहिए? क्या कहेंगे राय साहब? गुजारिश ये है कि आपने कर्नल कज़ाफ़ी साहब के नाम लिया है। वो एक बड़े रहनुमा थे, बड़े लीडर थे, और इंजामकार, बड़ा अफसोसनाक ही सिलसिला हुआ उनके साथ भी। लेकिन उनकी बात बातें ऐसी हैं जो बंदा बिल्कुल ज़हन कबूल नहीं करता। मसलन उन्होंने खुद मुझे ये कहा कि मैं समझता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो गड़बड़ हुई है उसका एक ही इलाज है कि इनको तीनों को दोबारा फिर मिला दिया जाए। तो उनके ख्यालात इस तरह के बड़े इनकलाबी किस्म के थे, लेकिन उसका कोई अच्छा तासर नहीं बनता था जब कोई आदमी उनकी बात ये सुनता था। तो इस वजह से ये क्या इंटरनेशनल फोर्सेस क्या फोर्सी करती हैं और उसके लिए क्या ग्राउंड वार करती हैं और क्या माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल वो कबूल नहीं किया जा सकती वो चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि इसको उन्हीं लाइंस के ऊपर आगे ले जाना चाहिए जो एक डेमोक्रेटिक, जैसे आपने कहा, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसकी तरफ ले जाए, और कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जो मायूसी पैदा करे या तशद्दुद की तरफ उभारे या कुछ।
लेकिन बहरहाल उन लोगों की भी हौसला शिकनी नहीं की जा सकती जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं, कुर्बानियां की हैं। और मेरी अक्सर बेशतर बात होती थी मरहूम सैयद अली गिलानी साहब से, और वो कहते थे कि आप मुझसे खुल कर बात किया करें, मुझे जी चाहता है कि आप बातें करें और मैं सुनूं। उन्होंने कहा कि ये ना हम झुके हैं और ना हम थके हैं इतना कुछ सहने के बाद, तो पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा फिर क्यों ऐसी थकावट सी महसूस होती है। वो भी एक मतमा नज़र है, उसको भी आदमी इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो इनको नज़र में रखना चाहिए। राय साहब, आखिर में एक सवाल को रिपीट कर दूंगा, क्या आप इस हक में हैं कि रियासत की जो मुकम्मल आज़ादी चाहने वाला ग्रोह है उसको पार्लिमानी सियासत में आने के लिए अगर किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस आईनी तरमीम को मौका फराहम किया जाना चाहिए ताकि ये भी मरकजी इदारे की सियासत में आ सकें, यहाँ पर एक अच्छा तासर कायम हो सके, इसकी तरक्की आगे बढ़ सके और इनका भी हक बनता है कि वो भी जो है अपनी इस रियासत को सर्व कर सके। ये मेरे ख्याल है कि ये सबको साथ लेकर चलने वाली बात है जो बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन इसके लिए किसी खास तरमीम की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत जो है वो इंट्रा कश्मीर भी होनी चाहिए, और जो पाकिस्तान का जो रोल है जिसे कश्मीरी अक्सरियत के साथ कबूल करते हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये तो ऐसा है जैसे पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान एक खलीज हाल करने की बात दफ़ा कोशिशें मालूम होती हैं कि एक मुल्क जो हर लिहाज से कश्मीरियों के पीछे चलने को तैयार है उसे भी ज़रा दूर किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर और कौन रह जाएगा जिसकी बलबूते के ऊपर मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। जी जी, अगर वाहिद साहब मुझे मौका दें, सॉरी मुझे पहले भी बहुत मौका मिला है। एक मिनट में बात मुकम्मल करें जी तनवीर साहब। जी तनवीर, आप बात मुकम्मल कर ले, अपनी सवाल रख लें। जी अच्छा, देखिए राजी जफर साहब, आपकी हुकूमत जो थी यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2016 और 21 के दरमियान, उसी के दरमियान ये सर्वे पब्लिश हुआ। मुझे 17 साल हो गए यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नलिज्म और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जर्नलिज्म को छोड़कर मैं यहाँ 17 साल से काम कर रहा हूँ। तो आपकी हुकूमत के अंदर ही वो जिस अखबार ने शाया किया द डेली मुजादला रावलाकोट, आप ही की हुकूमत के अंदर वो बैन हुआ। आप ही की हुकूमत के अंदर मेरे खिलाफ जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो टेबल पर बैठकर रैशनली आप कह रहे ना जी कि आप तो ये करते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाका जात मुकम्मल के लोग हैं, वो पाकिस्तान के लिए कोई सॉफ्ट स्पॉट रखे। अगर हम सॉफ्ट स्पॉट आपके लिए रखेंगे तो हमें फिर जो जम्मू का हिंदू है वो इंडिया के लिए डेफिनेटली हॉट स्पॉट वो रखेगा। तो न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि हम आपको वही फैसिलिटीज दें जो हम बाकी दुनिया को देना चाहते हैं, और हर चीज को मेरिट के ऊपर ज़ाहिर है, उस मेरिट की अपनी एक मेजरमेंट होगी जो हम लोग यहाँ पे तकलीफ करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपके दरमियान मतलब आप मेरी भारी जुबान बोलते हैं, आप हवाई रास्ते से कम मैं यहाँ से 50 किलोमीटर से अंदर आप मुझसे दूर रहते हैं, लेकिन मेरा और आपसे जो फासला है वो इस दुनिया से भी ज्यादा है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं राजी साहब? जी जी, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में तो पोस्टुलेट कर सकते हैं। देखना, मैंने आपसे कहा कि आपकी जो मुल्क की एंट्री है यहाँ पे वो टोटली असम्पशंस बेस्ड है, ठीक है। आप ये अस्यूम कर रहे हैं कि यहाँ के लोग बिना जो है वो रिजर्वेशन जो है वो आपके लिए सॉफ्ट स्पॉट रखेंगे। ये चीज मुमकिन नहीं है, दुनिया ऐसे चलती नहीं है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी उम्र और आपकी जो तजुर्बा है वो मुझसे बहुत ज्यादा है।
तो मुझे आप बताएं ना कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के दरमियान मुझे तो कोई ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम तो नहीं लगता मुझे। यहाँ पे मैं किसी असेंबली मेंबर के पास जाऊँ, आप ब्रीफिंग जो है ना आप राजा फारूक हैदर साहब से ले सकते हैं। आपको याद है जुंजार हिंद तरंगरी में आप आए थे 24 अक्टूबर 2010 को, तो वो आपको एड्रेस कर रहे थे, वो आपसे कह रहे थे कि आप हमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो आपने महाराजा के साथ की थी, वो जो फ्रेमवर्क था आप उसके ऊपर वापस आए। और मैं भी आज के दिन आपको ये कहता हूँ कि अगर आप रियली सिंसियरली चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर ब्राइट हो और रीजन का फ्यूचर ब्राइट हो, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका चाइना की या इंडिया पाकिस्तान की या तुर्की चाइना की या मतलब जितने मर्जी आप पोस्टुलेशन करें वो चीजें होंगी अगर आपके लिए हम सॉफ्ट स्पॉट रखेंगे या इंडिया के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखेंगे या किसी और के लिए। सो वी वांट टू बी ऑन इक्वल टर्म्स विद एवरीबॉडी। And the first thing that should be done is that there must be a very clear communication link between the public of AJK and the state of Pakistan. Tanveer, conclude your remarks, please. Please conclude. We'll go. मेरा आखिरी जुमला यही है कि ये जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि आप एक ट्रांसपेरेंट शफाफ कम्युनिकेशन सिस्टम वो डेवलप करें जो आज तक 70 साल से नहीं है। ठीक। कोई कहता है जी कि कोई कहता है मेरे हाथ बांधे हुए, कोई कहता है जी कि ऊपर से ऑर्डर है। देखिए ये 2022 में चीजें चल नहीं सकती राजा साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर, thank you so much. Tanveer, I'm sorry I have no much time left. I've given you a lot of opportunity. I do apologize. राजा साहब इख्तितामी तौर पर ज़ाहिर तनवीर साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसके ऊपर अब आप क्या कहेंगे, और प्लीज गो अहेड राजा साहब। ये आपने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है कि मुख्तलिफ आरा रखने वाले हजरात को आपने दावत दी है और उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया है। और ये बात कम्युनिकेशन जो है वो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन इस पर संजीदगी से बात करनी चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो, काज को भी और इस इलाके के लोगों को भी, और जो कुछ कुर्बानियाँ दी गई हैं उनको भी किसी तरीके से बसे पुश डाला जाए। ये जी राज साहब आखिर में जाहिर बात आज 5 अगस्त योम सियाह है, योम इस्तेसाल है। उस मौके पे इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो आवाम हैं, जो आपके चाहने वाले भी हैं बेशुमार, उन सब को क्या पैगाम देंगे रियासत जम्मू कश्मीर के इस मसले के हवाले से, क्या कहेंगे इख्तिताम पर? हम ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, सियासी पार्टियाँ आपस में इख्तिलाफ भी करती हैं और उसमें शिद्दत भी आ जाती है बाज़ दफ़ा। लेकिन एक मसला ऐसा है कि वो कश्मीर के मामले के ऊपर सारी कौम यकसू है और वो चाहते हैं कि कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों को उनका हक मिले और वो फैसला करें अपने मुस्तक़बिल के बारे में। तो हम ये समझते हैं कि ये भी एक बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी है कि कम से कम एक मसला तो ऐसा है जिसके ऊपर पूरी कौम यकसू है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज आपने बातचीत सुनी, गुफ्तगू सुनी जनाब राजा ज़फ़रुल हक साहब की जम्मू कश्मीर टीवी पे हमारी खुसूसी नशरियात में। आप सबको खुश आमदीद है। राय साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे वक़्त दिया आज की इस महफिल में। गो कि हम लाइव जा रहे थे जम्मू कश्मीर टीवी पे, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बावजूद राजा साहब ने मौका दिया, बातचीत की, अपने ख्यालात हम तक पहुंचाए। मैं दिल किया था कि रईयों से आप सबका मशकूर हूँ और बिलखुसूस राजा साहब का मशकूर हूँ। पूरे 6 बजे बरतानिया में, यानी कि 1 घंटे बाद, less than 5 minutes less than 6 o'clock, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी। उनके साथ जो है गुफ्तगू होगी इसी मसले के ऊपर।
तो देखते हैं सिराजुल हक क्या कहते हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका मशकूर हूँ और looking forward to seeing you and hearing from you at 6 p.m. UK time, which will be 10 p.m. Muzaffarabad and 10:30 at Srinagar. आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो, जो जंजीरों से बाहर है आजाद उन्हें भी मत समझो। जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने शादाब रहेंगी जंजीरें। Kashmir
कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा टेप बॉल क्रिकेट मेला कश्मीर वॉरियर्स की जीत के साथ इख्तिताम पजीर। थोरार से हमारे नुमाइंदे आबिद शफात की रिपोर्ट के मुताबिक थोरार नरकोटली स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स क्रिकेट ग्राउंड में 14 अगस्त से शुरू होने वाला आज़ाद कश्मीर टेप बॉल क्रिकेट की सबसे बड़ी डे एंड नाइट कश्मीर प्रीमियम लीग कश्मीर वॉरियर्स की जीत के साथ इख्तिताम पजीर। फाइनल मैच कश्मीर वॉरियर्स ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से हराकर बआसानी जीत लिया। फाइनल मैच में कराची किंग्स ने 110 रन का हदफ दिया, जो तैमूर मिर्जा ताहिर पिंडी की तूफानी बैटिंग की बदौलत बआसानी पूरा कर लिया। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन टेप बॉल के तमाम बड़े सितारे जलवागर थे, मगर कराची और कश्मीर की टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और फाइनल में कश्मीर ने कराची को हराकर मार्का अपने नाम किया। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 5 लाख जबकि रनर अप को 3 लाख रुपए नकद कैश प्राइज और ट्रॉफी दी गई। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी डिप्टी एडिशनल कमिश्नर पुंछ सरदार नासिर फीक अरबाब एडवोकेट सरदार रियाज सरदार शफक खान ने बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पर सरदार अरशद महमूद एहतिशाम शामी नासिर सादिक अब्दुल कदीर तल्लत महमूद और खलीक समर को मुबारकबाद पेश की। जी इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नेड थोराड़ के मकाम पे। यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शोएब साहब। प्रोफेसर शोएब साहब आप कैडेट कॉलेज प्रांतरी में प्रोफेसर हैं और इस वक्त आप यहाँ पे सेमीफाइनल के मेहमान खुसूसी भी थे, तो क्या महसूस किया? आपका अपना आबाई इलाका, यहाँ पे एक क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी एक्टिविटी की गई, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ और जिन्होंने ये इतना खूबसूरत ग्राउंड, इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। चीफ ऑर्गेनाइज़र अरशद साहब और सरपरस्त आला ज़मीर साहब, निगरान जो है जायद साहब, इसी तरह जो इसके स्पॉन्सर हैं बिलखुसूस तल्लत साहब और ख़याम साहब और शफीक साहब, इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। ये इस तरह की जो खेल की सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं, ये नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज के दौर में नौजवानों में मनशियात और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं। जब ये इस तरह के इवेंट्स होंगे तो कौमी सतह के ऊपर मैं आपकी वसादत से JKTV की जो है वसादत से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने तमाम ओवरसीज़ अपने दोस्तों को कि ये ग्राउंड अभी नामुकम्मल है। इस मैदान को मुकम्मल करके बहुत ही खूबसूरत और इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ फुटबॉल के मुकाबले हो सकते हैं, या हॉकी के मुकाबले हो सकते हैं, या एथलेटिक्स के मुकाबले हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस बहुत ही ज़बरदस्त काम में, जो कॉमन हमारा काज है, इसके लिए जो वो सब कोशिश करें और यूनाइट होकर इस ग्राउंड की तकमील करें। इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट जब इवेंट होगा तो आप देखेंगे कि इससे भी अच्छा जो ऑर्गेनाइज होगा। मैं तमाम ऑर्गेनाइजर कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अतीक सलावत साहब, जो PTI के बड़े जो है सरगर्म कारकन भी हैं, रहनुमा भी हैं और स्पोर्ट्समैन भी हैं। अतीक साहब, आप साबिक़ा अदवार में क्रिकेट से बड़ी वालाना आपकी मोहब्बत रही है। आज यहाँ पे अरशद महमूद साहब और उनके दोस्तों की काविशों से यहाँ पे एक बड़ा इवेंट जो है वो मुमकिन हुआ। थोराड़ के अंदर इस वक्त हमें एक बड़ी खेल के हवाले से बड़ी कमी है ग्राउंड के हवाले से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी हुकूमत ने एक स्टेडियम की मंजूरी दी थी थोराड़ के अंदर, उस पर कितना अमल दरामद हुआ, और यहाँ जो खेल का मैदान है, जो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इतना बड़ा जो है वो मुमकिन बनाया इवेंट, उसके हवाले से आपकी जो हुकूमती सतह पे क्या जो है वो कोशिशें हैं? शुक्रिया आबिद साहब। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर TV, क्योंकि आप लोकल सारी कवरेज देते हैं, और इसके ऑनर्स जो कनाडा में मौजूद हैं, मैं उनको भी रियाज साहब हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अवाम की आवाज़ अवाम तक पहुंचाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर आपकी आवाज़ पहुंचती है। मैं सबसे पहले अरशद महमूद साहब और तमाम ऑर्गेनाइज़र को इतना खूबसूरत इवेंट करवाने पर, और मैं कहूँगा कि एहलियों ने नेड को और एहलियों ने टॉइंग को अपनी मदद आपके तहत ये ग्राउंड बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस अंदाज से, चूँकि मैं काफ़ी हद तक टच भी रहा हूँ, और जिस अंदाज से इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, और जिस अंदाज में यहाँ बड़ी मुश्किल जगह थी
اور پھر میں اس وقت UAE تھا جب یہ لوگ چندہ کر رہے تھے. اس میں بہت سارے لوگ اس کے پیچھے یقیناً شامل ہیں. نصرت عزیز صاحب ہیں, اعجاز نسیم صاحب, ارشد صاحب اور ارشد صاحب کے بھائی, اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن کا کنٹریبیوشن ہے. اور پورے نیٹ کے لوگ جس طرح یونائٹ ہو گئے, انہوں نے جس خوبصورتی سے انہوں نے یہ سارا کام کیا اور جس خوبصورتی سے آج یہ ایونٹ کا انعقاد کیا, یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس پورے کانڈی بیلٹ کے اندر کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے. تو آپ نے حکومت کے حوالے سے سوال پوچھا, تو انشاءاللہ جلد کچھ خوشخبریاں آئیں گی. موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ناصر رفیق صاحب. ناصر صاحب, آج اپنے قیمتی وقت سے آپ وقت نکال کے رات کی اس پیر یہاں پہ فائنل کے چیف گیسٹ ہیں. تو اس وقت جو اوور آل جو ہے ایک صحت مند سرگرمیوں کے حوالے سے بڑی اشد ضرورت ہے, لیکن یہاں ہمارے علاقے میں گراؤنڈ کی بھی اشد جو ہے کمی ہے. اس حوالے سے لوگوں نے اپنی مدد, آپ بڑے فنڈز جو ہے ریز کر کے یہاں پہ گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا اور اس وقت ایک بڑا میلہ سجایا کشمیر پریمیم لیگ کے نام سے. تو اس وقت یہاں پہ آپ آ کے کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میرے لیے یہاں پہ آنا ایک بہت خوشگوار حیرت کا باعث تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں, میرا تو گھر ہے, میں تو کیونکہ اسے قریب سے جانتا ہوں, لیکن ایک عام آدمی کے لیے, کوئی باہر سے آئے تو اس کے لیے اس علاقے کے اندر ایک اتنی بہترین سہولت کا ہونا ایک بڑی خوشگوار بات ہے اور ایک بہت خوشائند بات ہے. اس میں اس ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز کو, اس کے سرپرست اعلیٰ ہیں, ارشد صاحب ہیں, زاہد صاحب ہیں, اس کے جی ہاں ضمیر صاحب ہیں, اور ان سب لوگوں کا جی ان کا سب کا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے جو فائنینسرز ہیں, طلعت صاحب ہیں, خیام صاحب ہیں, شفیق صاحب ہیں, ان سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں نے ایک ماحول پیدا کیا جس سے ہمارے لوگوں کو, ایک تو پلیئرز کو ایک اچھا ایک پلیٹ فارم ملا اپنی سکلز دکھانے کا, اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا, اور یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی اور انٹرٹینمنٹ موجود نہیں ہے. تو وہ ایک انٹرٹینمنٹ, یعنی پچھلے ایک ہفتے سے یہ ٹورنامنٹ جاری ہے, ان سب کو ایک بڑا بہترین ایک انٹرٹینمنٹ پیکیج ملا ہے. میں یہاں پہ ایک بات کا ذکر کرتا چلوں. پورے پاکستان میں ایک مثال تھی واحد سیالکوٹ کی, کیونکہ سیالکوٹ بزنس کا ہب ہے. تو وہاں کے لوگوں کو جب ایئرپورٹ کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, جب ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ملی تو انہوں نے خود ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا اور پھر اس کے بعد سے ایک اپنی ایئر لائن بھی کھڑی کر دی. اس علاقے میں جہاں پہ لوگوں کی وہ وسائل نہیں ہیں, جہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, اس علاقے میں جب لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمارے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہونا چاہیے, انہوں نے خود سے فنڈز پول کیے, زمین خریدی, اس کی کٹنگ کے اوپر, اس کی ایکسکیویشن کے اوپر بہت بھاری رقم خرچ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں, اور میں یعنی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جہاں پہ بھی یہ ایشو اٹھا سکا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی گورنمنٹ کو اس طرح کے پروجیکٹس کو مکمل اونرشپ دینی چاہیے اور اس کی فنڈنگ کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. میری طرف سے تمام لوگوں کو, جتنے آرگنائزرز ہیں, سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد, اور اس علاقے کے لوگوں کو مبارکباد. دیکھیے میں آپ کی شاید میری بات لمبی ہو رہی ہو, لیکن اس کا ایک بہت بڑا جو امپورٹنٹ جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک سے یہاں پہ مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, پلیئرز آئے ہوئے ہیں, تو ایک قومی سطح کے اوپر ایک انٹیگریشن کا موقع ملتا ہے. ہمارے علاقے کا ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک امیج بلڈ ہوتا ہے, ایک علاقے کا تعارف ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی بہتر ہیں. اور جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کنگز کے آنر ارشد محمود صاحب. ارشد محمود صاحب, آپ کی ٹیم سیمی فائنل جیت کے فائنل پہ پہنچ گئی, بڑا شاندار کھیل پیش کیا, کیا اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ صاحب, پہلی بات ہے میں کراچی ٹیم کا آنر نہیں ہوں, لیکن یہ سربراہ تو اچھے ٹورنامنٹ کا, لیکن کراچی سے میرا تعلق ہے, میں کراچی سے ہوں اور کراچی میری ٹیم ہے, اور انشاءاللہ کراچی سے ٹورنامنٹ جیتے گی. ہم اس کے لیے بہت اچھی امیدیں لے کے آئے ہیں, اور جس طرح کے کراچی کے لڑکے کھیل رہے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کشمیر کی زمین پہ, کشمیر کی سرزمین پہ جو موسم اتنا ٹف موسم ہے, سرد موسم ہے, اس کے باوجود ان کی جو کارکردگی ہے وہ خوب داد دے رہے ہیں, انعامات دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ امپرومنٹ ان کی میچ بائی میچ ان کی امپرومنٹ نظر آ رہی ہے. اس سے میں مطمئن ہوں کہ ابھی ٹائم جو اگلی ٹیم ہے ان میں سے جو ٹیم جیتے گی تو بہت اچھا مقابلہ ہوگا فائنل کا, اور اس میں انشاءاللہ کراچی کنگ میرے فیوریٹ ہے, اور میں یہی چاہوں گا کہ کراچی فیوریٹ بنتے ہوئے آگے اچھا میچ کھیلے اور فائنل میں ون کرے. آپ کراچی سے اسپیشلی اس ٹورنامنٹ کے لیے یہاں پہ آئے اور بڑے وسیع پیمانے پہ آپ نے کشمیر پریمیئر لیگ کا جو انتظامات کروائے, کیا محسوس کر رہے ہیں اتنا بڑا کراؤڈ اس رات کے اس پیر اور ٹیموں کا یہاں پہ جو ہے وہ بڑا زبردست جو ماحول ہے, اس حوالے سے ایک دور افتادہ مقام ہے یہ نیڑ, اور یہاں پہ اتنا بڑا ایونٹ کس طرح ممکن ہوا؟
पहली बात है हमारा मकसद इस इवेंट का ये था कि ये हमने जो ग्राउंड बनाया है, ये आपको नजर आ रहा है, आज रोशनी रोशनी जगमगाता नजर आ रहा है। ये अपनी मदद आपके तहत हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें गवर्नमेंट का या किसी दूसरी एनजीओ का शेयर नहीं है। हमने इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 1.5-2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मजीद हमारा टारगेट ये है कि हम इंशाल्लाह 1.5-2 करोड़ रुपया और अपनी मदद आपके तहत इकट्ठा करेंगे। आज इस टूर्नामेंट का मकसद यही था कि हम लोगों को बताएं कि हमने अपनी मदद आपके तहत इस पसमानदा इलाके में दही इलाका है, जहाँ पे तरक्याती कोई बड़े मनसूबे नहीं है, लेकिन वहाँ पे अपनी मदद आपके तहत हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। और हम समझ रहे हैं कि ये आप इस प्रोजेक्ट की जो तशहीर भी करना चाहते हैं, और मकसद ये था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चले कि गाँव नाइट थोराट तहसील थोराट में ये इतना बड़ा ग्राउंड बना है और इतना बड़ा इवेंट हुआ। फेडरेशन पब्लिक सर्विस के ज़ेरे एहतमाम तमाम महकमा जात ने काम छोड़ हड़ताल कर दी है। मरकज़ी सदर PWD वर्कर यूनियन इफ्तार शाइन, ज़िले सदर गैर जरीदा मुलाजमीन जावेद अजीज़,
ज़िले सदर एबका आसफ हनीफ और दीगर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये कौन सा इंसाफ है कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने और अपनी तनख्वाहों और मराहत में इजाफा करने के लिए हुकूमत के पास फंड्स हैं, मगर छोटे मुलाजमीन जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए फंड्स मौजूद नहीं हैं। हालांकि स्केल 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन काम करते हैं और ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान अय्याशियाँ करते हैं। जब तक हुकूमत की जानिब से बजट में ऐलान करदा 15% डिस्पैरिटी अलाउंस, 15% एडहाक रिलीफ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और पीडीए मुलाजमीन के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इनका कहना था कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे न किए तो हमारा काफिला मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करेगा। अजमल शाहीन, JKTV, रावलाकोट, जम्मू कश्मीर। जनरल सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर आपसे मुखातब हूँ, क्योंकि इन दिनों हमारे जो जुमला तंजीमें हैं उनकी तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई है, जिसमें अंजुमन कानून गोइयाँ पटवारियान भी पूरे आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से शामिल हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे अंजुमन कानून गोइयाँ पटवारियान के लोग इत्तेहाद के साथ, इत्तफाक के साथ, जुमला तंजीमों के साथ हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो अब हमारे मुतालबात ये हैं कि जी अगर इससे पहले हमने 4 सूबों में तनख्वाह का नोटिफिकेशन कर दिया गया, लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर में अभी तक नहीं किया गया। आजकल क्योंकि बलदियाती इलेक्शन का दौर भी है, उस हवाले से भी बहुत से काम जो है वो हुकूमत ने लेने होते हैं, खासकर पटवारियान गिरदावरान से। तो मेरी जो गवर्नमेंट के जो आला इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों से गुजारिश है कि हमारे मुतालबात जल्द अज जल्द पूरे किए जाए और नोटिफिकेशन तनख्वाह वाला जारी किया जाए। मेरा नाम सरदार अतीक असलम है। सबसे पहले मैं अजमल साहब आपका, आपके TV चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप मुलाजमीन की आवाज़ को कौम बाला और मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में ये हमारा पैगाम है कि बजट में 15% हमारी तनख्वाहों में इजाफा हुआ और डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो भी 15% हमारा मंजूर हुआ बजट में, आज़ाद हुकूमत ने किया। लेकिन ये तारीख़ में एक अनोखा वाक़या है कि यानी आज़ाद हुकूमत पूरे सूबों को और वफाक को सबको वो 15% और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मिल गया। लेकिन बदकिस्मती से आज़ाद हुकूमत ने हमारे ये 15% इजाफा और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस पर पूरी रियासत में तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और हम उस वक्त तक अपने दफ्तरों में नहीं जाएंगे और हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारा ये 30% का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता। अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो ये एहतजाज इसको हम जो है अभी तो हम पूरा मन हैं, लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन हमें आज़ाद हुकूमत जारी नहीं करती, देखें आज़ाद हुकूमत ने करोड़ों की गाड़ियाँ ली और वो अय्यशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम मुलाजमीन जो पहले ही महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं, पहले ही मुलाजमीन जो है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 1 साल इंतज़ार होता है कि 1 साल के बाद हमारी तनख्वाहों में इजाफा होगा, तो वो मुलाजमीन की उम्मीदें होती हैं। अब जब 1 साल हुआ तो वहाँ फिर हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इससे कबल भी मुलाजमीन का माशी कत्ल किया गया और तारीख़ में 73 साल की तारीख़ में ये पहला वाक़ा था 1920 में कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। हम इस पर भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त को इस प्लेटफॉर्म से ये हम वार्न करते हैं कि अगर आपने 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो ये हमारी तहरीक पुरअमन नहीं रहेगी। फिर हम चोरों चौकों को बंद करेंगे और उस वक्त तक करेंगे जब तक हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। तो मैं आपका एक बार फिर आपका और आपके चैनल का अपने तमाम अबका की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हर दौर में हर वक्त मुलाजमीन की और मजलूम और बेसहारा लोगों की आवाज़ को जो है वो हुकूम बाला तक पहुँचाया। हम आप सब के शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया मज़ीद साफ़ी हज़रात। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एहतजाज आज 3 दिन से 10 तारीख से जो है ना तमाम लाजमी तंजीमें मुल्क गिर एहतजाज पे हैं जो है ना पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है ना, और वहाँ पे हमने 1 एजेंडा रख के निकले थे। तनख्वाह के में इजाफा है, वो चाहे अलाउंस के हवाले से है या एडाक इजाफा है जो है ना, उस हवाले से हमने 1 माह तक इंतज़ार किया।
تو جب ہم نے دیکھا پچھلے مہینے ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، باہر جا کے ہم سیکرٹری مالیات سے وزیر خزانہ سے ہم نے ملاقاتیں کی، وہ ہمیں کہتے رہے، حالانکہ یہ ہے کہ جب بجٹ میں وزیر خزانہ یا پرائم منسٹر کوئی اعلان کر دیتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے جو ہے نا، انہوں نے سب چیزیں کرنے کے بعد آج وہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے جو ہے نا۔ اس حوالے سے ملازمین نے متفقہ طور پہ جو ہے نا آل امپلائی پبلک سیکٹر کے پلیٹ فارم سے جو کال دی ہے، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جب تک نہیں حل ہوتا ہے اس سے پہلے ہم کبھی کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے جو ہے نا۔ یہ ڈسٹرکٹ پنچ کے لوگوں کا ویسے بھی ایک بڑا مخلصانہ سسٹم ہے، یہاں پہ تو لوگ بہت زندہ دل لوگ ہیں جو ہے نا، لیکن میں اس مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر میں چاہے وہ میرپور ڈویژن ہے چاہے وہ مظفر آباد ڈویژن ہے، اس لیے کہ یہ 1 نمبر اسکیل سے لے کے تو 22 نمبر تک تمام لوگوں کا تنخواہ کا مسئلہ ہے، شاید اس حوالے سے سب لوگ باہر آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم نے کل دوبارہ ہم نے جو یہ مرکزی میٹنگ بھی کر رہی ہیں، ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بھی کر رہی ہیں اور ڈویژن کی بھی، اور آگے کا لائحہ عمل دینا ہے، اور جو اگلا ہفتہ جو ہوگا یہ ہمارا بہت سخت ترین ہوگا، اگرچہ انہوں نے نوٹیفکیشن جاری نہ کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہمارا احتجاج 2-3 دن سے چل رہا ہے، 2 سے 3 دن کے اندر یہ معاملہ ہمارا حل ہو جائے گا، نہ حل ہوا تو پھر حکومت اس کی تمام تر ذمہ داری وہ حکومت پہ ہوگی جو ہے نا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں اس دائرے میں جو ہے نا، خاص کر کے جو جریدہ کے لوگ ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی تنخواہ لینی ہے، ان سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں کہ وہ بھی سب اس احتجاج میں آ جائیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا معاملہ 100% ہم لے کے تو واپس ہٹیں گے، اس سے پہلے ہم نہیں ہٹیں گے۔ ہماری یہ احتجاجی کال جو آج تیسرے دن میں داخل ہے، اس میں سب سے پہلے تو آپکا والوں کی کال تھی، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کی، اس کے بعد جوائنٹ پلیٹ فارم سے بھی ہماری کال آج سے وہ تقریباً سارے لوگ، چونکہ پچھلے 2 دنوں میں بارش بھی تھی تو پورے طور پر تمام تنظیمات جن میں تقریباً 14 تنظیمیں شامل ہیں، وہ پورے طور پر اس کاز کے لیے یہ جو ہمارا 3 نکاتی ایجنڈا ہے، جس میں ہماری تنخواہیں 15% جو حکومت نے اعلان کیا مہنگائی کے تناسب سے، اور پھر ڈسپیرٹی اعلانس جو انہوں نے اسے اعلانس کا نام دے کر ہمیں دیا، اور اس پر آج تک ہمارا نوٹیفکیشن جاری نہ ہو سکا، اس کے لیے سارے ملازم سراپا احتجاج ہیں، اور ہم نے اپنی مختلف مشاورتی اجلاس میں یہ طے کر چکی ہیں تمام تنظیمات کہ اس پر کوئی بھی تنظیم، خواہ وہ 1 درجہ چہرم 1 نمبر سکیل سے لے کر 16 نمبر سکیل تک جتنے بھی ملازمین ہیں، وہ اس بات پر بالکل اٹل ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر، اور ہم 2 دنوں کے بعد یہ سوموار کو انشاءاللہ ہم اگر ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم اس کی تجدید کے لیے ہمارا ایک مشاورتی اجلاس ہوگا، جس طرح کہ ہمارے یہ پروگرام میں بھی ساتھیوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کوئی بھی پہلے سے منظم انداز میں اور بہتر انداز میں ہڑتال کر کے ہم اپنے یہ جو ہمارا مطالبات ہیں ان کو منوائیں گے، اور اس وقت تک ہم اپنے دفاتر میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا ہوتا۔ اور دوسرے اس سے بڑھ کر ہم نے یہ دیکھا 2-4 دن کے بعد، چونکہ یہاں کی ہماری جو ریت ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ گھی سیدھی انگلی سے نکل جائے تو بہتر ہے، اگر نہیں نکلتا تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ لیاقت صاحب کے حوالے سے لوگوں نے احتجاج کیا، ہم 2-4 دنوں کے بعد مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے بھی رابطہ کر کے ہم اس کا دائرہ کار وسیع کر کے، اور یہ دائرہ کار اتنا وسیع ہو جائے گا کہ شاید اس کے بعد حکومت کو یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور ہماری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے جو بھی مطالبات ہیں ان کو فی الفور، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری تنخواہیں وہی ہیں، 2002 میں ہماری کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی گئی، اور پھر ہم نے اتفاق کیا کہ شاید ملک کو سدھارنے کی کوئی بات چلتی ہے تو ہماری قربانی لگ جاتی ہے 2000-4000 کی، تو ہم نے اس پر اتفاق کیا، لیکن اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ جو راج ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے ہم نے احتجاج کی کال دے کر باضابطہ طریقے سے
कोयटा कश्मीर की बदलती सूरत हाल पर तहसील प्रेस क्लब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के अफराद ने शिरकत की। इजलास में रावलाकोट में मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती किया गया। कश्मीर की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास के इख्तिताम पर एक एक्शन कमेटी तश्कील दी गई, जिसके सरपरस्त कयूम राजा, सदर राजा खुर्शीद अहमद, एडवोकेट ताजीम मुगल, सीनियर नायब सदर मारूफ मुगल, जनरल सेक्रेटरी यासिम राजा, सेक्रेटरी इतलात मुस्तफ़ा चौधरी और मुजीब अकबर राजा मेंबरान नामजद किए गए। हमारे नुमाइंदे जाहिद सुल्तानी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आज के इस शुरा इजलास को सलाम पेश करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बीइंग ए कश्मीरी आज आप एक काज के लिए इकट्ठे हुए हैं और आपने एक इसी रियासत जम्मू कश्मीर की धरती के बसने वाले पुंछ के उन गयूर लोगों की तकलीद करते हुए आप आगे निकले हैं, जिन्होंने ये सच साबित किया और पुंछ के लोगों ने हमेशा कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी जो नस्लें हैं वो ये साबित कर रही है। और उसमें कितना है मीरपुर जो है, ये मीरपुर डिवीजन है, इसके लोगों ने भी दी है, लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि जो उन ख़ानदानों की औलादें हैं वो आज बिल्कुल खामोश हैं। और उसी तसलसल को मद्देनज़र रखते हुए कयूम राजा साहब ने भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जवानी की जो आम बहारें थी वो भी आपने कश्मीर के लिए एक जेल को दे दी और आपने कश्मीर को के हकूक़ के हवाले से आवाज़ हमेशा बुलंद की और जेल से भी आपने आवाज़ बुलंद की। आज मीरपुर डिवीज़न से कयूम राजा साहब ने बीमार होने के बावजूद ये सोचा कि सब खामोश हैं तो क्या मुझे भी खामोश होना चाहिए। ये इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। और इस वादी बना कोयटा के अंदर राजा खुर्शीद साहब जैसे, मारूफ मुगल साहब जैसे लोग मौजूद हैं जो जद्दोजहद करना जानते हैं। आज वो वक्त फिर आन पहुंचा है जबकि आपकी रियासत की आइनी और कानूनी हैसियत को जिस तरह के भारत ने 375 और 35A को ख़त्म किया, आज उसी तनाज़र में हुकूमत पाकिस्तान भी करने जा रही है। वो हमारे जो बुनियादी आइनी और कानूनी इख्तियारात थे वो छीन कर हमसे पाकिस्तान के उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो कश्मीर के बायोडेटा को भी नहीं जानते हैं। बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें आई उनकी पॉलिसी हमेशा जो है कश्मीरियों के मफाद के खिलाफ है। ये बड़ा अलमिया है। मैं आज भी ये कहता हूँ, मेरा भी किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ है और इस बुनियाद पे जो है जो आज सूरत पैदा की जा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो एक हिंदुस्तान ने किया है उसी को यहाँ दोहराने की कोशिश की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इनके गवर्नमेंट के इख्तियारात हैं, मादी इख्तियारात, वो ख़त्म किए जा रहे हैं। इवन क्या यहाँ इस गवर्नमेंट को किसी तकर्री का भी कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा। ऐसी सूरत में जो है ये बदतरीन गुलामी की तरफ जो है ये निकला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि दाखिली मुख्तारी में एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। इस पे ज़रूरत इस अमल की है कि तमाम कौम जो है यकजहती का मुजाहरा करते हुए तमाम जमातें इसी नुक्ते पे इकट्ठे होकर जो है इसको रोकें। ये मीटिंग का इनकार किया जिसका इन्हें मशवरा करना और मज़ीद आगे इस पर इन्हें काम करना ही नहीं। मैं वसीयत, पर्सनल वसीयत इस्लामी का एक मेंबर होने के नाते से आपको ये पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हर लिहाज से जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से जो सोच और बचाव जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनकी पहले तो हम भरपूर मज़ामत करते हैं। मज़ामत करने के बाद उनको ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आखिर दम तक हम कश्मीरी इस बात को न होने देंगे और न इसको हम तस्लीम करेंगे। मेरी गुजारिश यही होगी कि तमाम कश्मीरियों को बाहर निकलना चाहिए और अवामी एक्शन कमेटी बनानी चाहिए और जो ये काबज़ मुल्क इसकी असलियत को, इसकी पहचान को ख़त्म कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस वाली बात है। लिहाजा अब कोई मौका नहीं है कि हम बाहर ना निकलें। इंशाअल्लाह ये जो कमेटी बनेगी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, माली लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, वक्त के लिहाज से। आप एक बेहतरीन काज के लिए बाहर निकले हैं, जिस काज के लिए आप और आपके साथी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे तमाम नौजवानों को इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये बुनियादी तौर पर इशू क्या है। इस इशू के ऊपर हम सबको निकलना होगा। अपनी आज़ादी के लिए अगर हम जद्दोजहद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आगे हमारे लिए जद्दोजहद नहीं कर सकता। वसीयत कश्मीरी होने के नाते हर आदमी का ये हक बनता है कि पाकिस्तान हमारी हैसियत कैसे ख़त्म कर सकता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान हमारे मुल्क पर काबिज है, उसके बाद इंडिया हुआ है। जिस दिन यासीन मलिक उधर सजाए 15 उम्र कैद, तो इधर ये धरना दे रहे थे इमरान खान, ये हमारे हल्के के लोग भी वहाँ पर गए हुए थे।
उस दिन इन सबको भी कोटा में जमा होना चाहिए था, तमाम जमातों को, कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। ये ऐसी बात नहीं सोचते, बस ये कहते हैं जहाँ से हमें मिले वहाँ बस खाया जाए। बाकी काम कश्मीर के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ चंद लोग जो कर रहे हैं राय साहब की तरह या इनकी टीम। तो मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे ये जो नस्ल है वो इन लोगों से सीखे ताकि उनको शऊर पैदा हो। नौजवानों में इस तरह की थोड़ी सी करनी चाहिए कि नौजवानों में इसका शोर पैदा हो। दूसरा, जो हमारे हल्के के 2 मिनिस्टर हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम भी बहसीयत कश्मीरी हैं, रियासत होगी तो सियासत होगी, जब रियासत नहीं होगी तो सियासत भी नहीं होगी। इजलास के इख्तिताम पर आज हम जिस नतीजे पर पहुँचे हैं मुझे इंतहाई खुशी है और मैं आप सबका मशकूर हूँ। तो मशावरत के बाद यहाँ इजलास ने ये फैसला किया है कि यहाँ एक कमेटी बनाई जाए और वो जो वसी पैमाने पर जो है ना वो ऑर्गेनाइज करेगी तो इस एक्शन कमेटी को, और फिर वो आगे कोऑर्डिनेट करेगी ज़िले की हद तक, और फिर ज़िले से डिवीज़न तक हम जाएंगे और डिवीज़न से फिर हम जो 3 डिवीज़न से उनके दरमियान जो है वो एक सेटअप बनेगा। तो ये जो आज की जो नशिस्त है हमारी और यहाँ हल्के के हवाले से जो सेटअप रह गया है, गो कि मैंने माजरत की थी कि मैं सब मुशावरत के हद तक रहूँगा, लेकिन इजलास ने फैसला किया है कि मुझे जो है इसका सरपरस्त रहना चाहिए। तो सदर जो है वो हमारे बड़े बासलाहियत दोस्त भाई राजा खुर्शीद अहमद एडवोकेट साहब, सीनियर नायब सदर ताज़ीम मुगल साहब, जनरल सेक्रेटरी महबूब मुगल साहब, सेक्रेटरी इत्तलाहात आसम राजा साहब, मुस्तफ़ा चौधरी और मजदूर अकबर राजा साहब जो हैं वो मेम्बरान हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कमेटी जो है वो जो हमारे अहदाफ हैं और जो हमारे मकासद हैं उनको हासिल करने में हमारा अपना पूरा किरदार अदा करेगी और दिन ब दिन जो है इसमें जो है ये तकदीर पकड़ेगी। और आइंदा जो इजलास है वो जुमे के रोज़ 2 बजे, अगले जुमे के रोज़ 2 बजे राजा खुर्शीद साहब के दफ्तर में जो चैम्बर में है उसमें होगा। महकमा बरकियात का लाइनमैन करंट लगने से शदीद जख्मी हो गया। ताहिर आज़ाद नामी लाइनमैन जो बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा ही था कि करंट लग गया और नीचे सीढ़ियों पर जा लगा। इसके बायस वो शदीद जख्मी हो गया। ताहिर आज़ाद को CMH रावलाकोट पहुंचा दिया गया है, जहां ताहिर आज़ाद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लाइनमैन को करंट लगने का वाकया ग्रीन टाउन में पेश आया है। लाइनमैन ताहिर का ताल्लुक यूनियन काउंसिल सिंगोला के पसमानदा घराने से है और वह इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अजमल शाहीन, JKTV, रावलाकोट, जम्मू कश्मीर। रियासत बार बिलखसूस पुंछ डिवीजन की तरह तहसील हजीरा में भी ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स फोरम की कॉल पर हजीरा शहर और गिरदनवा, तेतरीनोट, डूंगा क्रास, मुदारकपुर, बटल मंडोल, टांडा गंभीर, सावाताई, दवरांदी, शेर कुकुटा क्रास, दार बाजार में भी मजवजात 15वीं आईनी तरमीम, बिजली के बिल्लात में बेजा टैक्सीज, टूरिज्म एक्ट के खिलाफ और असीरान पुंछ की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुकम्मल पहिया जम शटरडाउन हड़ताल रही। धरने चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी तक एजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया गया। मलिक जुल्फकार, JKTV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।
रियासत बार की तरह गड़ाला सदनूती में भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, खालिद मरहूम यूनिट गड़ाला, अंजुमन ताजरान गड़ाला और सिविल सोसाइटी के जेर एहतमाम मुजवजा 15वीं आईनी तरमीम, टूरिज्म डेवलपमेंट एक्ट, आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग और बिजली फ्री देने, बिजली के बिल्लात में नाजायज टैक्सीज के खिलाफ आटे पर सब्सिडी और सीराने पूंछ की रिहाई के लिए शटर डाउन पहिया जम हड़ताल की गई और एहजाजी जुलूस निकाला गया। इस मौके पर फिजा आजादी के नारों से गूंज उठी। मलिक जुल्फकार, JKTV, गड़ाला, सदरूती, जम्मू कश्मीर। किसने पिटिए, किसने पिटिए, सुनता कोई नहीं, पूछता कोई नहीं, लुट के खा गए, लुट के खा गए, कमिश्नर वाले लुट के खा गए, टीटा वाले लुट के खा गए, दरिया वाले किसने पिटिए, किसने पिटिए, किसने रहिए, कहीं कहीं सुनता, कहीं कहीं बुझदा, कितना जाइए, कितना जाइए, बिजली महंगी, बिजली महंगी, आलू महंगे, प्याज महंगा, की करिए, कितना जाइए, नहीं कोई सुनदा, नहीं कोई बुझदा, नहीं कोई बुझदा, नहीं कोई सुनदा, किसनू रहिए, नहीं कोई सुनदा, किसनू पिटिए, किसनू पिटिए, का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार है, इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार है, सिविल है, सरकार है, गद्दार है, गद्दार है, अब तो है या गैर है, गद्दार है, गद्दार है, नारे कश्मीर, तेज हो भाई, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, तेज हो भाई, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, आलमू के खिलाफ, जिद्दोजहद तेज हो, काबजू के खिलाफ, जिद्दोजहद तेज हो, टूरिज्म अथॉरिटी आर्डर, आर्डर जिसका ला है उसका आर्डर, इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर, ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, ना हमें छोड़े पाकिस्तान। अरे कोई तो हमसे भी पूछे हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, ताजर क्या चाहते, मजदूर क्या चाहते, हक हमारा हम लेके रहेंगे, इस बार यकीनन हम छीन के लेंगे, इंडिया से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान को सुना दो, अमेरिका को सुना दो, हक हमारा। अख्तर बंदे काले डाले, ना मंजूर, ना मंजूर, अख्तर बंदे काले डाले, ना मंजूर, ना मंजूर, बिल्लू पर ये टैक्स निराले, ना मंजूर, ना मंजूर, 74-75 एक्ट ये सारे, ना मंजूर, ना मंजूर, फासले तकसीम वाले, ना मंजूर, ना मंजूर, जेब हमारे कब्जे तुम्हारे, ना मंजूर, ना मंजूर, 74-75 एक्ट ये सारे, ना मंजूर, ना मंजूर, अख्तर बंदे काले डाले, ना मंजूर, ना मंजूर, फतेह किस्म मुत्तहिद, बड़े चलो, बड़े चलो, फतेह तुम्हारी मुंतजिर, बड़े चलो, बड़े चलो, कभी तो होगी रोशनी, बड़े चलो, बड़े चलो, नफरतें समेटते, बड़े चलो, बड़े चलो, मोहब्बतें बखेरते, बड़े चलो, बड़े चलो, फतेह तुम्हारी मुंतजिर, बड़े चलो, बड़े चलो, तेज हो भाई, तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, खेतों और खलियानों में, जिद्दोजहद तेज हो, चौकों और चौराहों में,
में जद्दोजहद तेज हो, स्कूलों और कॉलेजों में जद्दोजहद तेज हो भाई तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, सरमायादारी के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, जागीरदारी के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, अफसरशाही के खिलाफ जद्दोजहद तेज हो, तेज हो तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। नून लीग का तो मेरी बीवी भी यहाँ बैठी हैं, वो गवाही दे सकती हैं कि मैं अपने घर से रोटी खाकर अपने दफ्तर में सोता था। मैंने हुकूमत से कोई बरात नहीं दी और मेरा काम यतीम बच्चों को स्कूल में ले जाना था। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो 2 मिलियन बच्चे मैं भर्ती कर चुका था। और इस दौरान मैंने ना तनख्वाह ली, ना दिए लिया, ना रिहायश ली। आज तो कोई अफसर ऐसा नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, जिन्ना साहब के पाकिस्तान में, जो बिस्तर पर अपनी कुर्सी के साथ बिस्तर लगा के सोता हो और वहां बैठ के काम करता हो। मैं नून लीग के साथ नहीं था, मैं उन गरीब बच्चों के साथ था, यतीम बच्चों के, जो स्कूलों का मुंह नहीं देख सकते और 42% बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। ये वो दर्द था जिसके लिए मैंने पेशकश कबूल की। लेकिन मैंने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा और मैं कोई आसाइश नहीं लूंगा। 7 साल मैंने काम किया और 7 साल बगैर किसी मुआवजे के। कई दफा मेरी बीवी को ये ख्याल आता था कि तुम कितने पागल हो कि बगैर तनख्वाह के जाकर काम करते हो और क्या तुम्हारा नजरिया है और ख्याल है। लेकिन मेरा नजरिया और ख्याल यही था कि वो पैसे जो मैं उनसे लूंगा ये गरीबों के पैसे हैं। अगर मेरी वजह से 2-2.5 लाख बच जाते हैं महीने के तो ये गरीबों के हैं, अमीरों के नहीं है। तो मलिक साहब आपके लिए तो मेरा जवाब दे दिया राजा साहब ने पहले। आप ही दे उनको राजा साहब, मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि पाकिस्तानी सियासत में मंगला डैम की गाय का मुंह कश्मीर की तरफ का रखा है और थन अपनी तरफ रखे हुए हैं। मैं ये आपसे बहुत पहले कहता चला आया हूँ, राय साहब हुआ है इस बात। ये भी कहते हैं चारा आप डालते हैं तो दूध ये दूध लेगा।
आप सुन के थके नहीं हैं? आपकी बातें रूह है हमारी। मैं मलक अब्बास साहब को बिलखसूस शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने तन तनहा आप सब लोगों से रब्ता किया। मेरा तो बराह रास्त रब्ता नहीं था आप में से बहुत से हजरात के साथ, ना आपको पता था। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और दिन रात एक करके अब मुझे पता नहीं कि घर से इनकी क्या हालत होती होगी। शायद आपको एक कमरा देना पड़े अंकल साहब को अपने घर में। कमरा एक अंकल को उधर देना पड़ेगा। के बाद एक कमरा देना पड़ेगा अंकल को। और जो हमारी नई नस्ल है पाकिस्तानियों की, उसे पाकिस्तान के मुताबिक सोचना चाहिए। और जो कश्मीरियों की नस्ल है नौजवान, वो सिर्फ बरतानिया की नौकरी पर न कनायत करें, बल्कि वो सोचें कि असल जिदोजहद क्या है और असल मकसद क्या है। मेरा ख्याल है अब काफी है। बोले जी बोले, हम आपके लिए बैठे हैं। पाकिस्तान की हालत ये है, मोहतरमा तशरीफ फरमाए हैं, वो इस बात को समझती हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, उसमें जो बहुत असास पॉइंट्स को समझता है कि एक तो होता है कि कहते हैं कि डूबने वाले हैं। पाकिस्तान की हालत ये है कि डूब रहा है, वाले नहीं है, अभी इंतजार वाले नहीं है। जिस जगह पर 250 रुपए का लीटर पेट्रोल हो जाए, उस जगह पर आप क्या समझेंगे कि कोई आदमी गाड़ी पर बैठने के काबिल होगा, पोजीशन में होगा? नहीं। जहां बिजली की खराबी 14-14 घंटे रहे, गर्मी में लोग मर रहे हों और कोई पुरसाने हाल ना हो, बल्कि उस पर उल्टा टैक्स लगा दिया जाए। मैं खुद पाकिस्तान में भी रहता हूँ, लेकिन यहाँ आपके यहाँ भी रहता हूँ, तो हमारा जो बिजली का टैक्स है, हम तो थे नहीं, हम दोनों बंदे तो इधर थे। बिजली का टैक्स तो कोई 17,000 रुपये आया, 50,000 रुपये उस पर जुर्माना है। ये फालतू टैक्स है, और ये शायद वो टैक्स है कि तुमने तनख्वाह क्यों नहीं ली। मैंने बताया था कि दे लेते तो फिर कहाँ बात बढ़ जाती। ये सरकार पाकिस्तान में मुस्तकबिल पाकिस्तान का मखदूश है। इस वक्त जो जमातें सियासत के मैदान में उतरी हुई हैं, उनमें से किसी जगह से कोई आवाज नहीं आती कि मैं पावर में आया तो क्या करूंगा, इतनी फैक्ट्रियां लगाऊंगा, इतने कारखाने लगाऊंगा ताकि लोगों को, गरीब लोगों को काम मिल सके, वो बाहर के धक्के ना खाएं। वो कहते हैं कि पैसा वहां से लेकर बाहर मुंतकिल करेंगे। चले, ठीक है। लेकिन हादे साहब पढ़ा छोड़े हैं ना। बड़िया कीमती गल्लां सी सुन रहे हैं, तो प्लीज 2 मिनट बात सुने।
ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਪੀਰੋ ਪਿੱਛੂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਇਤਨਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ख्वाजा भी पाकिस्तान की मौजूदा सियासत जो है वो दो धड़ों में तकसीम है। अब कोई आवाज़ ऐसी नहीं आती मुझे कि कोई जगह ये कह रहा हो कि हम आवाम के लिए ये करेंगे, आवाम के लिए फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, मिलें लगाएंगे, उनको रोजगार मुहैया करेंगे अपने मुल्क के अंदर, कि बाहर के धक्के न खाएं, और जो बाहर आए वो भी इज्जत से वापस जाए और इज्जत से वहाँ भी रहे। और जो आवाज़ आती है डाकू है वहाँ चोर है, चोर है डाकू है, चोर है डाकू है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत दो लफ्जों पे है, चोर है डाकू है। जो कह रहा है वो क्या है? तो ये माहौल खत्म होना चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल बने जिसमें लोग आराम से रहें, बच्चों के स्कूल खुले, कोई करो कि स्कूलों का कुछ हो, कि अभी तक 42% है अभी तक, यानी जितनी कोशिश की कुछ नहीं बना। 700 साल में सिर्फ 2 मिलियन बच्चे मैंने इकट्ठे किए और स्कूल में लेके आया उन्हें, और उनकी फीसें दी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराए। लेकिन हालत बहुत खराब है, बहुत नाजुक है, बहुत ही भारत के यौम आज़ादी पर जमात इस्लामी का यौम स्याह और एहतजाजी मुजाहरा बल्दियात इंतखाबात मौखर करने और 15वीं आईनी तरमीम असम्बली में बुलाने की मजम्मत। वहदत कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेंगे, रियासत होगी तो सियासत होगी। साबिक उम्मीदवार असम्बली जमात इस्लामी हल्का शर्की बाग काजी साजिद की एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर TV से मुख्तसर गुफ्तगू। एहतजाजी मुजाहरे से मुकर्रीन ने मजीद क्या कहा, जानते हैं बाग से यूसुफ कश्मीरी की रिपोर्ट। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आसार कुछ और नजर आ रहे हैं। हमें रियासत पाकिस्तान के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर पाकिस्तान की रियासत के साथ चलने का फैसला किया था। इसलिए फैसला नहीं किया था कि कोई इस्लामाबाद में बैठकर कश्मीरियों के तशख़्ख़ुस के खिलाफ काम करे। मैं आज ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ और सब
नहीं कहना चाहता। इस्लामाबाद में बैठे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और दीगर जो हुकूमती लोग हैं उन समेत सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम इशूज बाद में, लेकिन उस रब की कसम जिसने हमें ये जान दी है, अगर रियासत के तशद्दुद के खिलाफ, रियासत की इबादत के खिलाफ किसी ने साजिश की तो उसके खिलाफ तुम्हें कामयाब होने के लिए एक ही रास्ता है कि तुम 1,40,00,000 कश्मीरियों पे खून की नदियां बहाओ, आखिरी कश्मीरी को खत्म करो। उसके बाद तुम यहाँ मौज मस्ती करना, इस इलाके के वसाइल लूटना जो तुम कर रहे हो। आज भी 4,000 मेगावाट बिजली आजाद कश्मीर में पैदा हो रही है और आप देखें दिन रात यहाँ लोग भी लगते हैं, सिसकते हैं। मैं यहाँ ताजू को भी देख रहा हूँ, आज कोई काउंटरों के अंदर बैठा हुआ है बहुत अफसोस के साथ मुर्दों की तरह, और अपनी दुकानों के अंदर तो बैठकर बात करते हैं। लेकिन आज जब चौक में खड़े होने की बात की, ये कोई मेरा ये इन भाइयों का मसला नहीं है, आपका भी मसला है। आपको यहाँ खड़े होना चाहिए था आधे घंटे के अंदर। अगर आपकी तिजारत का कोई नुकसान होता तो ये गरीब सफेद कारकुन आपका नुकसान भरने के लिए तैयार थे। आज हम सब का यहाँ इकट्ठा होना किसी पार्टी के बेस नहीं है, हम सब यहाँ कश्मीर के मसले पे इकट्ठा हुए। आज का दिन जो कश्मीरी के लिए यौम सियाह का दिन है, जब हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ आए और यहाँ पे पाकिस्तान, जिसको हम कलमे की निस्बत से अपने भाई समझते हैं, जिसकी हम कतई मुखालफत नहीं करते क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन वहाँ के गासिब हुक्मरान, टिके हुए हुक्मरान, सूद पर चलने वाले हुक्मरान और आर्मी ऐसे गद्दार जनरल कर्नल जिन्होंने कश्मीर की आवाज़ को, कश्मीर के मसले को एक फुटबॉल बना दिया, कभी इसके कोच कभी उसके कोच। मेरी उन रास्तों से, उन जालमों से ये अपील है कि कश्मीर का खेल छोड़ दो। कश्मीर का जो हक है वो सिर्फ कश्मीरियों का है। उन कश्मीरियों को जिनकी माँ बहनों और बच्चों ने, नौजवानों ने, तलबा ने अपने खून के कतरे बहा दिए कश्मीर की आज़ादी के लिए, ये हक तुम्हारा बाप भी हमसे नहीं छीन सकता। 32 सालों से उन्होंने इस्तेसाल किया मेरे और आपके नाम पे। आप अपने गांव के लिए उठाकर देखें तो कहीं तादाद के अंदर, लाखों की तादाद में ये वो फंड खाते हैं, वहाँ से स्कीमें लेते हैं और ये जुल्म और ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि आज इस स्टेज की वसातत से आपसे ये कहता हूँ कि जितने भी सियासी कारकुन हैं, सियासी कारकुनान की एक बरादरी होती है। आप गांव-गांव, करिया-करिया, चौक-चौक में एक ऐसे लाएअमल का सब मिलकर ऐलान करें कि ये जो एक माफिया है जो मुझे और आपका जो इस्तेसाल कर रहा है। और आपने देखा कि ये जो एक ऐलान के बाद उन्होंने फिर वो मिली भगत करके इसके ऊपर बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे थे उसको मुलतवी किया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान और आर्मी चीफ और चीफ सेक्रेटरी से भी गुजारिश करते हैं कि खदारा ये जुल्म और ज्यादती, ये जो आपके दरवाजों के ऊपर जाकर बैठते हैं, भौंकते हैं, अगर आप इनको क्यों ऐसा इस्तेसाल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जमात इस्लामी जिला बाग के तमाम यहाँ पे भी हम यौम सियाह बना रहे हैं। उस जबर के खिलाफ, उस जुल्म के खिलाफ, हम इंडिया की बर्बरियत के खिलाफ हम पूरी रियासत में यौम सियाह बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा बल्दियाती इंतखाबात जो 30 साल के बाद मुनक्कद होने जा रहे थे, यहाँ पे जो अशराफिया बैठे हुए लोग असम्बलियों में 30-40 लोगों ने मिल के जो इस प्रोग्राम को मुअख्खर किया, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और अगर ये ऐसा कानून को पास करने की कोशिश की गई तो हम मुजफ्फराबाद असम्बली का घेराव करेंगे। फिर 15वीं आईनी तरमीम जो कि किसी न किसी लालच के जरिए से आज़ाद कश्मीर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनके सामने पेश की जा रही है, हम उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी का नजरिया यह है कि सबसे पहले वादत कश्मीर, उसके बाद कोई और सियासत होगी। रियासत बाकी रहेगी तो सियासत करेंगे, अगर रियासत को बेच के सियासत करनी है तो ऐसे बेज़मीरों का घेराव करेंगे, ऐसे बेज़मीरों के घरों तक जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि कश्मीरी अवाम का हाथ होगा और इन बेज़मीरों का गिरेबान होगा। मोहम्मद शफी कश्मीरी सदर महाजर कैंप बोदाबाड़ी बाग। आज हम भारत के यौम आज़ादी के मौका पर यौम सियाह मनाकर भारत से अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं और भारत को ये पैगाम देते हैं कि तुमने कश्मीरियों की आज़ादी को गस्ब करके तुम्हें आज़ादी का हक, अपनी आज़ादी मनाने का कोई हक हासिल नहीं है। इस मौका पर हम अक़वाम आलम से भी मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को राजशुमारी का मौका दिया जाए ताकि कश्मीरी अवाम अपनी किस्मत का फैसला कर सकें।
अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ायदा फ़ारूक हूँ। मैं फ़ायदा फ़ारूक हूँ। मैं बनजोसे की रहने वाली हूँ। मैं इधर रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे, मैं अपने 2 बच्चों को लेके इधर रहती हूँ। मैं कल स्कूल गई थी अपने बच्चों की मीटिंग के हवाले से। पुलिस ने मेरे घर पे छापा मारा है कि ये चर्च का कारोबार करती है। तो जब पुलिस ने छापा मारा, चीज़ें तोड़ फोड़ की हैं और मतलब उनको कुछ भी नहीं मिला। मोहल्ले वालों ने उनसे पूछा कि ये लड़की इधर मतलब 4-5 साल से रहती है, इधर कोई चीज़ मिली है? तो मोहल्ले वालों के सामने पुलिस ने मना कर दिया है कि मतलब उसके कमरे से हमें कोई चीज़ नहीं मिली। जब वो वीडियो बना के मैं लेके आई हूँ, तो मैं एप्लीकेशन लेके तो DIG साहब के दफ्तर में जाना चाहती थी। आगे पुलिस ने मुझे रोक लिया है कि मतलब आप अगर आगे गई तो मतलब हम आपको बंद करेंगे, हम आपको यहीं से जाने ही नहीं देंगे। तो मतलब ठीक है, आप अगर घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, हम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जब मैं नीचे आई हूँ तो DSP तारक साहब के दफ्तर में आई हूँ, तो तारक साहब ने मतलब मुझे बताया कि वो एप्लीकेशन लेके आओ। ऊपर एक पुलिस ने एक बंदे से मेरे हाथ से एप्लीकेशन ले ली है। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा बंदा था, लेकिन पुलिस ने मतलब मिल के तो ये काम किया है। और पुलिस ने मुझे DIG साहब से मिलने नहीं दिया और पुलिस ये गैर कानूनी काम करते हैं। देखें कि मैं इज़्ज़तदार घर से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। पुलिस ने जाके कल बिला वजह मेरे घर में ये काम किया है। उसके बाद मालूम खान ने मुझे घर से निकाल दिया है। इन्होंने जो तोड़ फोड़ किया है उसका कोई नहीं है। मतलब अब पुलिस कहती है कि जी अगर आपने इस तरह का कोई काम किया तो मतलब हम ये करेंगे वो करेंगे। अब मुझे पुलिस से खतरा है क्योंकि वो मतलब मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या पता वो चर्च का कह रहे हैं, कल मेरे बैग में डाल के ज़बरदस्ती मुझे मतलब मजबूर कर दे इस बात पे कहने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं सबके साथ ये बात अपनी मतलब कहना चाहती हूँ कि कल मुझे अगर कोई भी नुकसान हुआ, मेरे बच्चों को नुकसान हुआ, मुझे हुआ, अगर कल मुझसे अगर कोई चीज़ मतलब बरामद भी हो जाती है, वो पुलिस का हाथ होगा। मैं इस बात में नहीं हूँ। ये पुलिस मुझे बहुत ख़राब करने के चक्कर में लगी हुई है, तो लिहाजा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए क्योंकि ये और उस जात को अकेला देख के ये मतलब बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं मजबूर लड़कियों में लोगों के घरों में काम करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब पुलिस मेरा फ़ायदा उठाए। मतलब पुलिस का इस तरह मतलब पुलिस ने खुद जब वीडियो देखी है, मेरे फ़ोन में वो वीडियो मौजूद है, पुलिस कहती है कि हम तो ये काम ही नहीं कर सकते। तो उधर पुलिस वाले मुझे ये कहते हैं कि आपने खुद ये काम किया। मैं तो ठीक है, मैं झूठ बोलती हूँ, पूरा मोहल्ला इस चीज़ का गवाह है जिनके सामने इन पुलिस ने कल जाके मेरे घर में ये काम की है। आप मुझे बताएं कि ये वीडियो किसने बनाई है? जब आप घर में मौजूद नहीं थी तो पुलिस की वीडियो किसने बनाई है? पुलिस की वीडियो नहीं है सर। मैं जब अभी स्कूल में बैठी हुई थी, मेरी मीटिंग थी, 2 बच्चों का रिजल्ट लेने के लिए मैं स्कूल में गई थी। तो जब मैं उधर बैठी हुई थी, उधर एक आंटी थी, उसने मुझे कॉल किया जिसके घर में मैं काम कर रही थी। उसने मुझे कॉल किया कि पुलिस आपके घर में आई है। फिर मैं आके तो इधर वीडियो किसने बनाई है? वीडियो वो मैं आपको बताती हूँ ना पूरी बात। मैं जब गई हूँ, मैं मतलब जब घर गई हूँ ना वापस से स्कूल से होके जब मैं घर गई हूँ तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कि कमरे का बहुत बुरा हाल है। वो वीडियो भी अब मेरे पास मौजूद है फ़ोन में। ये तोड़फोड़ के बाद आपने वीडियो हाँ, ये तो मतलब पुलिस के जाने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। देखे कि पुलिस को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। हम औरतें अकेली, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मतलब पुलिस वर्दी पहन के वो कुछ भी कर सकती है। वो जो पुलिस का धमकी आपको दे रहा था वो मर्द था या एक मर्द था, एक औरत थी। नाम जानते हैं उनके? नहीं, मैं उनके नाम नहीं जानती। उनके आपको धमकी दी है या नहीं? अभी उन्होंने मुझे दफ्तर में बिठाया। एक पुलिस वाले ने मुझे दफ्तर में बिठाया कि DIG साहब बाहर गए हुए, आप बैठे। तो उधर से एक लड़का आया कि वो मुझे कहता है कि आप जाके अंदर बैठे कमरे में। उसने मुझे कमरे में बिठाया। वहाँ से एक लड़का आया, उसने मेरे हाथ से मतलब वो मतलब लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ वापस दे रहा हूँ, वो लेके गायब हो गया। तो फिर वहाँ से वो जिसके 3 स्टार होते, क्या बोलते हैं उसको, SHO क्या, मुझे नहीं पता वो। और मतलब वो पुलिस वाले मुझे अंदर लेके गए। मुझे कहते हैं कि मतलब तुम ये चीज़ कारोबार करती हो। वो मतलब ज़बरदस्ती मुझसे मतलब कह रहे हैं कि मतलब तुम ये चीज़ मानो कि वो तुमने चर्च किधर रखे जो तुम कारोबार करती हो। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ 4-5 साल से रह रही हूँ। DSP तारुक है, उससे आप मिली हैं? जी, अभी उनसे मिल के आई हूँ। क्या कहा है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मतलब वो एप्लीकेशन दो। जब मैं उनके पास गई हूँ कि मतलब मैं एप्लीकेशन आपको दूँ, तो वो कहने लगे कि अगर नहीं है एप्लीकेशन, अगर कोई उसका सबूत है तो ले आओ। मैंने कहा मेरे फ़ोन में वो तस्वीर है, मैंने वहाँ से प्रिंट निकाल के अभी उनको दे के आई हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि आप घर जाओ, हम कर लेंगे जो मेरा डिटेल बताइए आपने? हाँ, मैंने उनको बताई है, बल्कि मैंने उनके व्हाट्सएप पे वो वीडियो भी भेजी है सुबह। मतलब अब पुलिस ये कह रही है कि हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। नहीं, उनका पहले से आपके पास व्हाट्सएप कैसे मौजूद है? तारक अंकल का नंबर था मेरे पास। अंकल कैसे आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, वो एज उनकी ज़रा ज़्यादा है तो फिर अंकल ही बोलना है ना, और क्या कहना है। क्या चाहते हम क्या चाहते
लिबरेशन फ्रंट को आज बुलंदरी के मुकाम पे अपना कामयाब जोनल कन्वेंशन करवाने पे और डॉक्टर तोकीर गिलानी जहांगीर मिर्जा को दोबारा से जोनल सदर और सेक्रेटरी जनरल और उनके साथ जितनी भी काबीना आई है सबको जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी, खुदमुख्तारी और खुशहाल माशरे के क़याम के लिए एक गैर मुतज़लज़ल जदोजहद जारी और सारी रखेंगे। और इस तीरा वक्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत मिले ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग बेबस, लाचार, गुलामी के खिलाफ अमन, बेहतर निजाम की खातर। दोस्तों साथियों, आज रियासत जम्मू कश्मीर तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को न सिर्फ उसकी जो तकसीम थी उसको मुश्किल करने के जो साम्राज्यी मंसूबे हैं वो अपने आखिरी जो एक स्टेज पे ड्रामा है उसकी इंतहा को छू रहे हैं। उस तरफ हिंदुस्तान ने अपने हिस्से को अपनी यूटी यूनियन टेरिटरी में शामिल किया। इस तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिर्फ 1 साल के बाद 2020 को उसी अगस्त के महीने में एक नाम नहाद किस्म का नक्शा जारी किया जिसमें यह शो किया गया कि ये खित्ता रियासत जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का खित्ता बन गया है। मैं ये समझता हूँ हम इस देश की वसात से ये बात कहते हैं कि हम तुम्हारे नक्शों को जूते की नोक पे मारते हैं। हम ये महसूस करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर क्योंकि पाकिस्तान के अपने आइन के खिलाफ भी है। 257 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी राय से ये फैसला करना है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या करना है। किसी पाकिस्तान या हिंदुस्तान के हुक्मरानों को ना इंटरनेशनल किसी साम्राज्यी ताकत को ये हक हासिल है कि वो हमारी मर्जी और मंशा के खिलाफ फैसले करें। इसलिए हम ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग यूनानिमसली आर पार बल्तिस्तान समेत तकसीम कश्मीर के एजेंडे को मुस्तरद करते हैं और वहदत की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम यह ऐलान करते हैं, हम इस बात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते से जो मसाइल लूट रहे हैं वो उनको इस खित्ते के आवाज से ज्यादा यहाँ के वसाइल से दिलचस्पी है। वो हमारे दरियाओं को चोरी कर रहे हैं, वो हमारी मदनियात खा रहे हैं, वो हमारे खैर खोए नहीं है। इस पाकिस्तान की हालत ये है, वो किसी ने कहा था अभी हाल ही में जब इस्लामाबाद में अमेरिका की आर्मी घूम रही है, किसी ने कहा था कि डॉलरों की मोहब्बत में हम माशफ्ता सगुन है। वो फौज भी बुलाई है जो कुफार की थी। ये पाकिस्तान फौजिस्तान है, ये किसी कलमे की बुनियाद पे नहीं बना है। ये मजलूम तबकात का, मजलूम कौमियतों का कब्रिस्तान है। मैं ये समझता हूँ, मैं तोकीर गिलानी को इस बात का खराज तहसीन पेश करता हूँ। तोकीर गिलानी ने आज जो सजा उसको देने की कोशिश की गई थी वो बुनियादी सजा ये थी, वो जिस बयानिया की बात करता है, वो जिस नैरेटिव की बात करता है, वो नैरेटिव उनको पसंद नहीं है, वो नैरेटिव इस्लामाबाद को पसंद नहीं है। वो ये बात कहता है कि इस्लामाबाद और दिल्ली दोनों वासिल हैं, दोनों कातिल हैं, दोनों हमारी मुल्क से निकल जाएं। वो ये बात कहता है। लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों, आपको इस तरह की गुफ्तगू करने पे मैं समझता हूँ मुश्किलात आएंगी, इसलिए कि ये बातें यहाँ पे नहीं की जाती थी। ये बातें मुख्तलिफ अंदाज में कही जाती थी। आज 5 अगस्त के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 2 नैरेटिव हैं, 2 बयानिए हैं। उन पे जो चलेगा वही
वो वाज़ेह तौर पे आजादी खान करवाएगा। एक बयानिया है, ये जो माजी की बातें थी, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर हिंदुस्तान बनेगा, ये 5 अगस्त के बाद ये नारे खत्म हो चुके हैं, मतलूब हो चुके हैं, बेबुनियाद और लघु हो चुके हैं, इनकी हैसियत खत्म हो गई है। अब एक नारा है, वो रियासत की वहदत का नारा है, आजादी का नारा है, गैर मुल्की अफवाज के इनखला का नारा है। दूसरी तरफ वो कुव्वतें हैं। जम्मू कश्मीर खुद कफील तहरीक जम्मू यूनिट के ज़ेरे एहतमाम खुद कफील तरबियती मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ इलाका की ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई के अलावा दीगर शोबों में तरबियत फराहम की जाएगी ताकि इनको मर्दों के जाना बचाना खुद कफील तहरीक का हिस्सा घरेलू दस्तकारियों में महारत फराहम की जाए। याद रहे, खुद कफील तहरीक लोगों को ज़राअत लेकर घरों में तैयार की जाने वाली मसनूआत की तरबियत फराहम कर रही है। तरबियती मरकज़ की इफ्तिताई तकरीब में मर्द व ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दौरान तकरीब खिताब करते हुए मुकर्रिन ने खुद कफील तहरीक के फ़वाइद पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस तहरीक में शामिल होकर लोगों को अपने हाथ से उगाई खालस खुराक मैसर और घर में तैयार मियार और सस्ती से भी इस्तेमाल कर सकेंगे। से खिताब में JKTV के डायरेक्टर पब्लिक अफेयर ख्वाजा कबीर अहमद, खुद कफील तहरीक के बानी सरदार लियाकत खान, अब्दुर्रहीम कादरी और दीगर शामिल रहे। तकरीब के इख्तिताम पर सरदार लियाकत खान ने तरबियती मरकज़ का किया और मरकज़ में रखी मशीनरी और दीगर तरबियती आलात दिखाए गए। अजमल JKTV रावला जम्मू कश्मीर। एक रिमोट इलाका है और इसमें खास कर हमारी बहनों के लिए हमारी के लिए ये इंसानियत का हामिल ये इदारा है और यकीनन ये आगे चलकर इस और अफादियत का आपको उस वक्त अंदाजा होगा जब आपके 2-3 बैच यहाँ से फारिग हो। कहा जाता है कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान होता है। अगर हम उन दिमागों को करने के लिए को किसी तरफ लगाते हैं तो ये हमारी बहनें के लिए बेहतरीन किरदार अदा एक रोल मॉडल बन उस तरफ रागब कर सकते। यकीन लोग रागब होते हैं जिस माशरे में आप अपनी माँ बहन बेटी को वो इज्जत वो एहतराम नहीं देंगे जिससे वो एक अपना किरदार अदा कर सके तो वो माशरे कभी तरक्की नहीं किया करते। जिन कौमों ने तरक्की की उनकी बेटियों ने, उनकी माओ ने, उनकी बहनों ने उनके कंधे के साथ मिलाकर किस्म की हमारी बेटियां हमारी बहनें रोल गुलाम कौम के अंदर गुलाम कौम की बेटियों को गुलाम कौम के बहनों
ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پہلا رول ہمارا بنتا ہے کہ ہمیں اپنے دماغوں کو ہوگا. جب تک آپ کے پاس جیسے لوگ، سردار لیاقت جیسے لوگ، دیگر وہ لوگ جو واقعہ یہ بہنیں بیٹیاں اپنا بنا سکیں موجود ہیں، یقیناً آپ اس سوسائٹی کا سرمایہ ہیں.